Ladies and gentlemen, my name is Desdex and I will be welcoming every one of you to UG Esports presents Battlemania Season 1 powered by Carry Esports. Definitely, the matches will get started in no matter of time, but yes, we'll be having 5 matches action as of now in this day, and it is none other than the finals. So, definitely, the actions will be in much more frequency, but as of now guys we'll be moving towards directly the pp distribution, that is the prize pool distribution chart. So here we go. So as of now, the prize pool that is on stake at this moment of UDG Esports presents Battlemania Season 1 powered by Carry Esports is 10,000 rupees, and the first team will be getting around 5,000 rupees, the second team will be getting around 3,000, third team will be getting 1,500, and the MVP of this finale will be getting around 500 rupees. But not this is not everything. We'll be having around 5 matches which will be deciding that what who will be the team that will be claimed as the champion of Battlemania Season 1. Well, we are having our map schedule as of now, where the first match that will be seeing is ERANGEL, followed by the second one, it will be Miramar. Third match, it will be on VIKENDI. So, yes, the winter is about to get real. Fourth match will be SANHOK, and the fifth match, it will be ERANGEL once again. So, we'll be starting this competition with ERANGEL, and we'll be ending this competition with the ERANGEL, one of the favorite maps of each and every team in this lobby. But the match number one, it will get started in a few minutes. Till then guys, you should enjoy the map cinematics which will be coming onto your way, and I'll be meeting you guys once the match is getting started. So just you enjoy the map cinematics. We'll be meeting you in no time.
ladies and gentlemen, I am welcoming you once again to our first match of this Battlemania Season 1 finale. That will be played in the map of ERANGEL. Of course, it is the most played map in the game of BGMI. And talking about the teams, yes, we'll be having Nefarious Esports, Zype Esports, Glory Official, Swarajya Esports, Team Earthquake, Team Hope, Team NSG, Team BONGCHIE, Team Rod, Team XNOR Esports, Team RBT Esports, MS13 Esports, Team Kirti, Lone Boys, Team Fabulous, Unstoppable, Team Fresher, and Extreme Volt. So these many teams are all total of everybody's 18 teams we will be looking for in this match, and definitely we'll be seeing around 5 matches in this finale. And at the very end of it, we will get to know that which of the team will be crowned as a champion of our UDG Esports Presents Battlemania Season 1, powered by Carry Esports. Nevertheless, talking about the flight path, guys, yes, the flight path is getting initiated from the areas of hospital, and it will be ended in the areas of military base. So definitely the flight path is having a southern edge onto it, but will be a thing to see that how this team will be playing with each another. And for your reference, we started this tournament with 240 teams, but now we are having only and only that our top 18 teams. These teams, of course, they have managed to get up to this position with a lot of struggle, with a lot of their dedication, of course, and with a lot of their grind set. But let's see how their mentality is in the map of Erangel, because this map, I believe if each and every one of the team has that knowledge about this map, and particularly saying now the we are having our team number 3, Team Nefarious Esports. They are looting onto the areas of Georgopol Northern City. Meanwhile, we are seeing that no team, literally no team, has gone to the areas of Georgopol, but there will be another neighbors in the areas of Georgopol Northern City, where we'll be having team number 16, Lone Boys. The 4 players are standing from this team, and well, they are looting in the areas of Georgopol Northern City to the western areas, I should say. And there will be another team who are prioritizing to the Jerky area. Meanwhile, we are having team number 10, that is Team BONGCHIE. If I'm not pronouncing it wrong, then it should be that. But let's see which of the team will be taking the first fight in this match, because no team wants to get into the action in the first, and when the prize pool is of course on the stake, you do not want to get eliminated at the first spot. We are having team number 9, that is none other than Team NSG. They are looting onto the areas of Water City, but definitely Water City is not one of those areas where multiple teams can accommodate to loot sufficiently, because this is a comparatively small area. We can see team number 9 as well as team number 17, that is none other than Team Fabulous, who are also engaging in their loot. But they definitely know that some of the team have arrived in this area while jumping. They might have seen the parachutes, and for that reason only they are also just backing off from this area. But one fight has been engaged, and let me know where the fight has been engaged. Well, the fight has been engaged in the areas of Milta, yes, Milta and the Bridges area. Well, where team number 19, that is Team Fresher, they will be claiming their first ever finish point. Yes, the first ever finish point has gone to them, but will be moving towards other team who have definitely suffered one casualty. That will be team number 5, that is none other than Team Glory Official. And it will be tough to see that how the approach will be in the later stage from team number 5, because if you lose out one player at the very start of the map, then the rest of the map will definitely not be easy for you. But for now, team number 5, yes, they are prioritizing their loot, and slot 12, yes, will be going towards slot 12 as well, from where you can see Team XNOR Esports. Yes, XNOR Esports, they are also currently prioritizing their loots, and they are looting into the areas of Gatka. Well, some of the teams have prioritized Gatka, and I just want to know that how these teams can manage to loot sufficiently, because the loots will not be sufficient as of my opinion, because the compounds are not that much in this area, and also there are multiple teams. So maybe there is chances that the loots also have to be completed in the later stage for some of the team. Well, we are having team number 18, that is Team Unstoppable, who have also faced one of the casualties in the form of Piyush OP. And 3 players, well, 3 players are now just will be moving towards that circle. But first circle of our day,
Yes, our first match. It is our first match. Definitely, that is a wrangle. And the first circle, it is being located onto the eastern area. Team number 15, that is none other than Team Kirthi. Most probably, yes, they are looting onto the areas of school apartment, a brilliant area to complete your loot, and they are currently present almost to the center of the circle. So no need to hurry on the rotation part. But I should think that other teams who are actually present into the out of the zone, they need to get the rotation done a little bit prior, because you know that this is the grand finale. No one want to get involved in the fight in the first stage of the match, and you just want to secure that those placement points at first, and then you'll be prioritizing on the finishes. So it will be interesting to see that how these teams will be competing against each another, and which of the team will be getting the first chicken dinner of the day in the map of a wrangle. But as you can see, most of the teams are now just completely prioritizing on the loot. Well, we have one team that also have gone to the areas of military base. That is team number 7. That is Team Earthquake. But let's see, this team, will it be managed to bring some of the earthquake in the form of finish point or in the form of placement points in this lobby? Will they be able to manage to do some destruction in the lobby? As of now, there are 4 players: Janitsu, and with them Wrecker. The Mooj is also playing, and the last player, it is Wave. 4 players are completely engaged onto their loots, prioritizing their loots at first. And let's just go to another team, who is team number 6, who is as of now, this is Swarajya Esports. Swarajya Esports, yes, they are present at the very eastern part of this map. They will be looting in the areas of Lipovka, and saying about Yashnaya Poliana. Yes, we are having Team Z, VP Esports, Show Team NFS. Of course, we'll be moving towards Team NFS because they are playing a little bit safe. Almost all of the team will be playing safe in the first stage, because no one want to get casualties in the first stage of the match, and they know that if they face any kind of casualties, it will be very hard for them to uh, make their approaches in the later stage of the match, and they will definitely need to compromise in certain aspects in the game. But as of now, team number 3, they have completed their loot. They will be initiating their rotation, but 3 players are rotating with a single vehicle. This will be a little problematic. I think they will be searching for their vehicles. Yes, as of now, they are having 2 vehicles, but most of the player will be spotting down those vehicles. Yes, as I can see, they have already spot down their vehicles. One monster truck as they are having as of now. So 4 players, and 4 players uh, will be rotating on their self individual vehicles as of now. Well, Fusey, he has left the Dacia. He will be continuing with the monster truck. And for your instance, I can I can tell you that the monster truck, it is one of the good vehicles on which you can make a rotation, because the durability, the shots it can take, it is much more as compared to other vehicles. And of course, you can do that drive by situation, which has been in meta as of now. So it will be interesting to see that how the circle is going to shift onto the later stage, because if the circle shifts to a more eastern area, then certainly some of the teams will have to initiate the rotation. But in this instance, the one fight has been broken out into the areas of a school apartment. Meanwhile, team number 15, Team Kirti, they are certainly facing the challenges. And Oxy, yes, Oxy will be taken down. His kill will be confirmed, and this is not looking good at all for Team Kirti. 3 players are standing as of now, and they will definitely ensuring that no one gets knocked out as of now. Another player, if another player gets knocked out, then it will be totally dependent upon those 3 players. But Kid, as of now, he's taking the TPP angle. Surely, yes, he's totally relying on the TPP. And Avi is also player. He's also present with him. And coming to other player, there is another player who is Kunal at this moment. All of the 3 players have came down to one single building, and if multiple nades have been spammed into this area, then it would be difficult for them to survive. But it is currently interesting to see that how these two teams are how these two teams are going to react to each another, because team number 12, Team XNOR, they have already gained that one finish point, and there is no need to aggress in this situation. But if they manage to
knock up one more enemy, then I think they will be surely going for that Russian. But yes, all the grenades that is been initiated to spam up. You can see that some of the players, yes, they are just trying to find out that single pixel. If they can get that single pixel, they will surely ensure that knock up is coming up. But as of now, they are not that much able to do so. But team number 15, I think this approach, this thing is not what they are expecting, and not they are expecting to start like this manner in this match. Because if you see, three players are standing as of now, and the three players are absolutely still in the position. They are not moving a single inch. They are just holding onto their areas. But this is one of the, I think there is a drawback into the scenario, that if grenades, if those throwables, they make connection, then it will be very much difficult for them. Abhi, definitely he is onto those 10 HPs, but XNOR, yes, XNOR, one of the player of XNOR, he has been taken down. The equation has been balanced out in the by these two teams. But let's see whether or not these two teams will able to survive in this area, whether these two teams will back off, that is also a concern in this moment. But team XNOR, they are certainly feeling those challenges from team number 15. Yes, at first I thought that team number 15, they are in this trouble situation, but it seems the trouble right now, it is on bigger scale on team XNOR. Team XNOR, they also have to ensure that they do not get finished up in this 16th position, because if they get finished up in the 16th position, it will be very difficult for them to survive. But now, as you can see, that team number 12, Mickey, yes, he has also been finished up. All those finishes that has been confirmed. Addy, he has also been finished, and it all now boils down to the last player, that is Vavai. But Vavai, what you can do, I just strongly I want to say that the player of XNOR who is remaining at this moment, he should back off, because he is the last player, he is the lone ranger from his team, and he, if he gets down, then then the team will be eliminated at the spot of 16. And you know what is a team, what is slot number 16 means. They will be getting 0 finish point, and as of now they are having 2 finishes, so they need to just get satisfied with those 2 points. But I do not think that it is what team XNOR what is expecting. But as of now, the approaches that has been made from team XNOR, it is quite casual, because I can see that only one player in standing, and team KT, they are also back into their normal position. But we'll be moving towards another team, guys, because this fight is taking much longer. We'll be moving towards team number 18, who are actually present onto the very center of the circle. As of now, team number 9, that is none other than team NSG. They have not initiated their rotation, but they will initiate their rotation in a little bit of time, because they are now completing their loots, and they are ensuring that they do not complete their they do not need to complete their loot in the latest part, so they are accumulating the loot as much as they can. But Mohit, as well as Athex, Yash, YouTube Jetli, yes, his name is YouTube Jetli. Well, these 4 players also need to do the rotation as fast as they can, because the stage to circle is already here. Show slot number 13. Well, we'll be moving towards slot number 13, but one fight has been broken up. Let's see where the fight has been broken up, because after this update, all this red spot blinking, this has made pathetic the life of casters, especially. But as of now, team number 18, they are not moving, they are just holding. But let's see whether or not the fight has been initiated into these areas. Well, not the fight has not been initiated into these areas. Well, the fight has been initiated into this area, well, where team number 16, yes, team number 16, they are in a close encounter with the team number 11. And you can see that team number 11, the player of team number 11, they are on to a very dead scenario. And team number 11, they will be the first team who are getting eliminated at the 16th spot. And team number 16, that is none other than our Alone Boys. Well, they are not alone, they are getting those 3 finish points. But one casualty, yes, one casualty, I think that is a fair trade. If you're getting 3 finishes also in trade of one of your casualty, then that is also fine. But they'll be prioritizing the loot once again, because the resources, some of the resources, they might have been utilized in this fight, so they needed to complete all those resources once again. And coming onto the circle, yes, the circle is about to shrink in.
Yes, the circle is about to shrink in, but I want to see that whether the fight has been initiated or not. No, these two teams are still into the exact same spot where we have left that fight, because if you can see team number 15, they are once again trying to find out that single player that I think they are thinking of, that where that player have gone, where he is. So I think they have now just thought to disengage this fight, and that can be one of the great decisions they need to make, because if you spend the time that is not required, so you can then get caught up in the later stage of the match, because it is of course a time bound game. You cannot spend the maximum amount of time in a particular scenario where you have to move, also you have to find a shelter also, but as of now the fights, the things, we have witnessed a little bit amount of fights, but we are now witnessing a slot zone where no team is keen to join into the fights. We can see that team number 19, they are just holding onto the areas of shelter backyards. They are having a clear vision onto, I believe, what is team number 8. Yes, team number 8, they are prioritizing the rotation. They will be having 4 player as of now. Most of the teams are prioritizing their rotation. They are finding their ways into the circle, and definitely this is one of the way by which you can survive in this erangel. And I believe in the third or the fourth circle, most probably in the fourth circle, the fights will ramp up, because all of the teams they need to get into the circle, and you know that the shelter, it is limited, so they have to fight for their shelters. But as of now, there is no fight. You can see that we are just left with only and only 15 teams. Yes, only one team have left this lobby. So we are having our 15 teams, 52 players are still standing, and most probably all of them will get incorporated in the circle, because the circle, it is uh, it is a little bit onto the huge size as of now. But guys, who are we are actually present into the stream, I would request you guys, if you are new to the channel, please do subscribe the channel, as well as do like the stream. And at the same time, you can support your favorite team, because these teams have struggled, these team have shown their dedication, these team have reached up to the level of grand finale, so they do need your support. So continue to provide your support in the chat section. But in the meanwhile, team XNOR, yes, they are once again starting their fight. We'll have to see whether or not team XNOR is surviving. Well, they are surviving. Vavai, he has I believe knocked out one of the players, and one player is standing. Most probably, yes, one of the player is standing, but I believe XNOR Bawai, if he try to enclose, then it will be a great initiative for him. But as of now, XNOR Bawai, he has been challenged quite heavily by his opponents, and you can see that he's trying to escape from the scenario, because he also know that if he gets eliminated out in this position, it will be very deadly for him, and it will be very deadly for him to make a comeback in the later stages of the match. So he is trying to at least get some survival point done, but he is not having any of the health kit, any of the first aids as of now with him. So it will be very difficult for him in this scenario. Particularly, it will be very difficult for him to recover of his health. If you can see here, team XNOR, they are pretty much onto their knees, and I believe team number 15, they can charge up in any moment. XNOR Bawai, he has to defend for his pride, he has to defend for the pride of his team, but he is just escaping from the scenario. He's doing that one building to another building, jumping Japan kind of thing he is doing right now. But let's see whether or not he will be able to survive. It is completely dependent on the time, and with the time we will get to know that how XNOR Bawai is going to react. But at this time, the circle, yes, the circle has been shifted towards that eastern area, and you can see that team NSG, well, team NFS, yes, they have already initiated their rotation from the northern part of the map. They I believe they landed onto the Yashnaya, so it was very easy for them. But team XNOR, yes, they are once again also indulged into the fight, and I believe XNOR Bawai, okay, he has been finished up, and that does mean that XNOR, they will be finished in the position of 15.
and it will be tough to see that how these team will manage to make up one of the comeback in the later stage of the map. Yes, we are having 5 matches, so you definitely can make those comeback, but it is not that easy because we are having these much of OP teams, this much of deadly teams. So you definitely need to push up your game, you definitely need to kick your engine, because if you fail to do so, then you will be exempted from the prize money, and the prize money that is on stake at this moment is 10,000 rupees INR. So it is a huge chunk of money, and definitely the teams wanted to be a part of those prize money. But as of now, team number 13, we can see that they are present on the areas of shelter, but a rush is coming up from team number 9, and team number 9, suddenly the game has been changed. Their two-player, yes, their two-player has already been down. Three players has already been down. The last player was standing, and why? I think what was the reason for them to direct charge into the areas? Because you know that some of the teams may present in the areas of shelter, because it is one of the good areas to hold in, and they definitely will be charged up for that, and team 13, team RBT, will be able to manage up to get those 4 finish point. And the very best thing about is that they are still the 4 players strong, so it is the advantages for them, and definitely it shows up in your coordination, in your calls, how you react to the total fight. That is what we are seeing from team RBT. But as of now, Clown, he exploded a vehicle of I believe what is Gobby, most probably. But let's see, team number 18. Yes, team number 18. We are also seeing team number 18 who are charging on to team number 15. Team number 15, they are rotating very close to the compound, and you cannot do this thing because in the lobby of finale or grand finale, you know that there will be team who will be holding down in the particular areas, and if you rotate this close to apartment, this close to a building, it is quite obvious that we will be charged up. The guns will get blazed onto you. But team Kirti, the fight, after the fight into the onto the areas of apartment, after getting those 4 finish point, they are coming into the crossroad area, and definitely it is one of the good areas to hold in. But the circle has already moved from this area, so they definitely need to move from this area, and the vehicle has already been exploded up, so it will be very tough for them to move from this area. But as of now, the circle has moved another time to the eastern area, so the circle is playing with the emotions of each and every team. But you can see that team number 5, they are present onto the dead center of the circle, and definitely the areas which they are holding, it is, I will not say that it is a good area, because we are having some covers in this area, and if the team charge onto the area with the 2 angles, then it will be very problematic for the team who is currently holding into the area. But let's see team number 5 how they are approaching onto this area, how they will be reacting to the fights, because as of now there are no team in the close vicinity of them. We can see team number 6. Yes, team number 6, Beast has already been spotted up, and some of the shots have already been landed up onto them, but the connection is zero. So you can see, guys, we are having 13 teams, 46 players are still standing. Team number 6, they are holding on to those higher ground. Yes, URG Beast, he is spotting down. He is continuously spraying down onto the enemies of team number 3, team Nefarious Esports. I believe I am pronouncing their name correctly, because the name is a little bit on the complex side. But team 3, they are present onto the areas of mansion, and they are having only a slight portion of the circle with them, so it will be very difficult for them to rotate from this area, because they do need to rotate from this areas. The circle will not be coming into these areas, and as of now, multiple teams, yes, multiple teams, they need to get into the inside the circle. You can see the team number 19, yes, they are still present onto the edges of the circle, and they can easily gatekeep the team who will be coming from there behind. As of now, team number 16, yes, meanwhile team number 16, there are 2 players in the lobby right now. 3 finish point is what we are witnessing from them, but they also need to rotate to get into the circle. But whether or not they will be able to get into the circle, it is a big question, because multiple teams are initiating the rotation, multiple teams will be going into the area. But it will be tough to see that how team number 16 will be able to manage to get into the circle, and Lone Boys is their name is, and they are rotating quite far into the blue, and they are taking the damage of the blue, because it is the only way you can get into the circle. Team number 13, that is team number 13, team RVD Esports, after holding for a minute or so, they also
they also made the decision that the time has came and they definitely need to move into the circle. Well, team number 19, they are into a trouble because team number 17 have already pushed into them. Team number 17, well, they are finishing up one up by one, and at this time point, I believe team number 17 is dominating us in this fight. Team number 19's Novi, he is already down to the 50 HP mark, but let's see what he can do. Those two players are present in the same area, and it will be very difficult for them to survive, because if one nade manage to land up in the same position, in the correct position, then it will be game over for this team. But as of now, team number 19, they are somehow managing into the area. Mikey, meanwhile, his finish point has already been confirmed. We can see team number 17, they are pushing aggressive, but the circle has already been moved. So the teams, I believe, are very confused at this moment, because you can see teams are coming into the area, into the circle, and as soon as they came into the area, the circle, it start moving to another side of the thing. But Navi, meanwhile, he is down. Last player surviving from team number 19, that is Team Fresher, and Team Fresher, it is now problematic for them. They are onto a disadvantageous situation, and I believe team number 17 will be trying to push into them. Yes, team number 17, they are pushing into them. There are two players. Yes, he will be definitely pushing into the area, and Kakrod, yes, his name is Kakrod. He will be taking down the last enemy with a banger S12K. This weapon, I should say, this is one of the deadliest weapon in the close range. Be it S12K, be it DBS. One shot and you are down. You cannot do much in front of that DBS or shotgun kind of thing. But as of now, team number 5, yes, they are present into the dead circle. Yes, dead center of the circle. But they are also charging onto the other teams. They are finding it is easy to charge onto the other areas. You can see team number 10. Yes, they are also spotted up by team number 5, and team number 10, I believe they are not inside the circle currently. Yes, they are not inside that circle. Saranana spray. Well, guys, yes, I am a Hindi caster, but I am doing English casting as of now. But let's see how team number what is it? Team number 8, team number 16. Yes, team number 10 will be managed to get into the circle, because the circle is of a 5th stage, and you cannot stay outside the circle for long extent, because the damage that will be provided by the blue would be heavier, and it will be pretty heavier for you, and I don't think you will be managed to survive in the circle. But team ZYP, they are also engaged into the fight, will be moving towards team ZYP, and as of now, they are 3 player in this lobby. But Rex, he is down. One revival is needed, but the circle, as of now, we are having 9 teams. What a chaotic lobby we are witnessing at this moment. Team number 17, yes, the players of the team is also down. Omi is down. One revival is needed to him as well. Kakrot, he is present in the vicinity, and I believe, yes, the revival will be initiated. As of now, team number 4, yes, they are 3 players strong, but at any cost, I don't think Rex will be getting that revival, because he is present at very far from his teammates, and it will be very much problematic for his teammate to come into the area and execute that revival. Meanwhile, we are having also team number 18, who are just present on the verge of that edge of the circle, and I think it will be difficult for them to also move into that area. But team ZYP, with this, they are also eliminated out. We are having 7 teams, 18 players in this lobby currently. Team number 8, yes, team number 8, they are having a part of the circle, but only and only last player standing. And you definitely know, when the last player in standing from your team, it is totally dependent on the luck of that particular player, because if he gets spotted up, then it is totally game over for that team. But team number 5, well, the area they have hold it. Yes, they have the decision, I should say, they have made prior to that 3rd or 4th circle has finally paid off for them, because you can see that they are already having 3 finishes. Moreover, they can also get some of the finishes, but the circle has already moved away from them, so they also need to get into the circle. But as of now, team number 10, they are also outside the circle. Immortal, well, is he trying to get that heal battle run? But no, he does not have that much amount of first aid with which he can initiate the heal battle, and of course he will be spotted up. And team GLY with their weapon, of course, will be taking down the last player. But team NFS, they are still 4 players strong, and definitely the 4 player advantage is one of the things that you want to maintain at the later stage of the match, and which is present as of now for team number 3, that is team
Nefarious Esports, and let's see why. Yeah, I think Team Nefarious Esports, they have a pretty chance to get the chicken dinner, but the circle, yes, it has already moved once again to Team Glory Official, and I think in this match, especially BGMI God, they are also favoring Team Glory Official because the circle, it is moving towards them each and every time. First of all, they were present into the compound where they managed to get into the circle for a longer period of time, and now the circle have moved to them. So it is what it is, and let's see team number 6, they are also getting started off. Viper, meanwhile, he will be taking down the last player standing from team number 6. It is Clown, but Clown, will you be managed to survive, my friend? Will you be able to continue your journey? But as of now, we are seeing team number 3. Yes, team number 3, the 4 players are still standing. They do need to create those smoke walls, because without those smokes, they literally cannot get into the circle. So yes, they at first they do need to create those smoke wall, but Team Glory, you do need to ensure that you are not losing out your players. But as of now, we are seeing that Team Glory, they are losing out their players. They were 3 players, but but at the current moment, we are having only 2 players, and out of them also Rage is down, so it is problematic for them, and it will be very much deadlier for them. Let's see how the team is going to react, because the last player is standing, and if he make any kind of mistakes, then it will be what it will be, because I think they will be then limited to the 3rd position. But Prajit, yes, he is totally controlling his nerves. He is totally relying on to the circle, because the circle, as of now, it is favoring them. So it is very good for them. It is absolutely very good for them. But team number 18's Lunar OP, he is still standing, but the way he is crawling into the circle, I think the damage that will be provided by the circle, it will be pretty much more, and ultimately he will be spotted up by Team NFS, and he will be taken down. Team NFS, one chicken dinner is going into their way, because they are having 4 players, and Prajit, ultimately I think he will also be taken down by Team NFS. Team NFS, yes, the player are charging in. Prajit, he does not have that much of breathing area. Yes, he do have some area, but the area is not sufficient for him. Arnav, yes, he is also charging. Meanwhile, the player are charging, and they are trying to get the finish point by their name. Prajit, 5 finish is what he is having. DBS is what he is having, but ultimately, it is not for him, because the numbers game, it matters, and the numbers game were maintained perfectly by Team Nefarious Esports. And at this, the first match of UTG Esports presents Battlemania Season 1 powered by Carry Esports. It is going towards the hand of Team Nefarious Esports. What a brilliant gameplay, what a brilliant performance, what a brilliant man count maintained by them at the very later stage of the match. And definitely they are having 6 finish points. So yes, they are having 6 finish points. But Glory Official, I think they were having each and every chance to capitalize on this match. They were having the vehicles, so if they exploded those vehicles in about the areas of the trees, so they could make some potential covers, and they could fight from that area. But ultimately, as of now, they will be limited to the 2nd position with 5 finishes. Third, the team who have appeared in the 3rd, they are having also 5 finish point. But yes, some of the teams, they do need to make some comeback, because they got eliminated at a very initial stage of the match. So it will be interesting to see that how these teams are going to react, who have already eliminated out in the initial stages of the match. But moving towards to the other stage. But at first, I have been instructed by the management to take the screenshot, so yes, I'll be taking the screenshot first. Well, guys, with this, our first match has came to an end, and coming to the start of the match, God OP, yes, God OP, he is having 6 finishes in his name with a total damage of 551. RBD Aman will be that player who has executed the maximum number of rescues in this lobby with the 2 rescues, and NFS Arnav OP. The way NFS especially has played this match, the way they have maintained the composure, the trigger discipline, it was amazing to see. And I should think that Team NFS, they have already climbed up onto that leaderboard, but the thing that is very crucial in this kind of finals or grand finals or any kind of competitive scenario, that you do need to maintain your consistency. You do need to maintain that
consistency of yours, where you are not only relying onto your placement points, but you are also relying to your finish point. Yes, finish point is also important, placement points is also important. And Arnav OP is on to is on to our chat. Yes, chicken or what? Chicken is going towards team NFS, but it will be interesting to see that how the other teams are going to react to the chicken dinner of team NFS, because it is not NFS who are playing in this lobby. There are certainly other teams who are playing in this lobby and who have traveled to this far by their dedication, by managing to struggle in the deadly of scenarios. So we'll be seeing that how the next matches will be going. But as of now, guys, we'll be taking one short break, and after the short break, we'll be coming back with the next match, which will be most probably Miramar. So yes, the deadliest of the map will be coming onto your way. But as of now, guys, we'll be taking one short break. Till then, guys, you should sit back, relax, and you can also watch your performance by reversing onto the stream. So yes, taking a simple, short, and crisp break, and we'll be meeting you guys after the break. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. La 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 la, oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears,
empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. La 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 la, oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Oh, So, hello guys, this is me, your caster Des DX, and yes, so welcoming you everyone to the our second match of UDG Esports presents Battlemania Season 1, powered by Carry Esports. But let me walk you through another time with the prize pool distribution. Yes, so moving towards the prize pool distribution, guys. So the prize pool that is on stake at this moment is 10,000 rupees INR, and the champion of UDG Esports presents Battlemania Season 1, powered by Carry Esports, will be getting 5,000 rupees. Second team will be getting around 3,000 rupees. Third team will be getting 1,500, and there is a special reward for the MVP. It is 500 rupees INR. And the first match, yes, it is done as of now, and team Nefarious Esports, what a brilliant performance. They won the winner and a chicken in the first match, but it is interesting to see that how Nefarious Esports is going to perform in the next upcoming matches, because we are having five total matches, and in these five matches, the thing that is most important, that is the utter important thing for each and every team, it is the consistency. But let me move you through the map schedule. Yes, the first match that was done, that had gone to the name of Nefarious Esports, but the second map this that is coming onto your way, it will be Miramar. And definitely you know that Miramar, it is a diverse map. It is fully occupied with those deserted areas, so you definitely do need to
do need to make some of the changes in your strategies, because the strategies you have implemented in the map of Erangel may not work in the map of Miramar, and it will be interesting to see that how the teams are going to react, how the teams are going to approach in the map of Miramar. But yes, we are having a slight delay uh, in this for the start of our next match. So guys, I will be meeting you guys once again when the match will be started. So till then guys, you make sure ki you enjoy the matches. You definitely want to enjoy the matches, you definitely want to enjoy the fight, you do not want to miss out any of the actions. But if you are present in the stream and you still haven't liked the stream, what are you waiting for? Just hit the like button, hit the subscribe button, and also share the stream as much as you can. And do make sure that you are following UTG Esports as well as Carry Esports onto their Instagram handle, and also join the Discord server of the respective esports networks. But as of now, guys, we'll be moving towards our second map, which will be starting in a couple of minutes. So till then, you enjoy the map cinematics, and I'll be meeting you guys once the match gets started.
So, guys, we are once again back with our second match. Yes, the second match of our UDG Esports presents Battlemania Season 1, powered by Carry Esports. It is live, it is here in front of you, and it is definitely in the map of Miramar. The challenges will be a bit more, the struggle will be a bit more, but let's see how the teams are going to react in this scenario. But at this current scenario, guys, we are having these much amount of teams. Yes, 16 teams are playing to this lobby. And saying about the flight path, yes, so flight path, the flight has already been taken off from the areas of Trader Park, and it will go into the areas of Puerto Paracio. So definitely the flight path, it is one of the good one. The teams who want to go into the areas of for say Chumacera, Minas del Valle, Valdemar, they can easily travel into those areas. And if some of the teams want to get into the areas of Cruz del Valle or Torre Ahmada, Campo Militar, they surely need some vehicle. But for your reference, guys, I should tell you, if well, I know that everyone knows this, but I will tell you once again that as comparison to other maps like Erangel, the vehicle spawn rate in Miramar, it is a little bit on the lower side. So the vehicle, I think players should need to get it. If any team want to get into the areas of Cruz del Valle, Torre Ahmada, then they do need some vehicles. But let's see, guys, where the first fight will be initiated in this lobby. Well, I think there are some drive-bys what we are witnessing at this moment. Yes, the drive-bys have already been witnessed by team number 3. That is none other than we are Team Nefarious Esports. And with that being said, Team Nefarious Esports, they have already get their one finish point, but at the cost of one of their player being eliminated out. Yes, Team Nefarious, they are onto a very difficult scenario at this moment, because the team number 16 is already passing by from the area, and you can clearly see that two of the players have already exited the vehicle and already trying. I think they are trying to find out the players of team number 3, but Fuzi is trying to disengage from this fight, and he does know that in the previous match, Team Nefarious Esports has earned a chicken dinner with some decent amount of finish points. So there is no need to engage in the initial fights when you have the entire match left. You can easily get those finish points if you manage to get up onto the placement. So that is the first rule. That is the first thing that these teams are following. But meanwhile, team number 16, after losing out their one player, they are also initiating their rotation. They are also going toward their drops. Yes, they are going towards their drops. But as of now, guys, the circle, yes, these things are occurring onto a very much frequency, because I am casting multiple events, and multiple events we are witnessing that if the for say if the flight path, if it is prioritizing that south western region, then the entire circle, it is getting formed onto the completely of a different northeastern region, and which is currently happening in this map as well. But we have some teams who have gone to the areas of San Martin definitely is one of the beautiful cities in the map of Miramar, especially where we can witness at this time point Team Hope. They are playing with 4 players. Yes, they are playing with 4 players. Zinx Gaming, he is also present at the same time. Rishi, he is also present. Ankit and Night OG, the 4 players are present. But let's see how OG they can be in this match of Miramar, because the Miramar, it demands that skill, it demands that potential from you, because it is not like other maps. It is not like Erangel where you can uh, get those. I think Erangel has a touch of everything. You say the higher ground advantage, the compounds and the open areas. But Miramar, it is completely present onto the open areas. So it completely depends upon your gameplay style, how you can react onto the areas of open areas. But at this time point, the match is not going at all good for team number 3. We can see that Team Nefarious Esports, they are already down to 2 players. Yes, they are one of the player as was down at the first stage. Yes, and now they are also losing out this another player. So it all boiled down to the 2 players. Arnavovi, yes, he had played one of the integral parts in the previous match, but in this match they need to pull out some X factors right now. But I think NFS, the player of NFS, they are getting spotted. Yes, and team number 16, I think
they will be going for it because they do know that they have already eliminated out those two players. So the only two player will be remaining in this fight, and they can easily finish out those two players. Let's see Earn Emoji, what he can do at this time point. Team NFS, yes, they are completely present on the back foot. Earn Emoji, he is also getting spotted up, and Arnav OP, he is knocked out by the team. Meanwhile, it is completely down to Team NFS. Sid OP, I think this is one of the things that teams face. One match they are getting chicken dinner, and the other match they are playing in, they are finding it difficult to survive. We can see here that Team NFS, they are being completely pushed up from the lobby. They are completely destructed in this lobby, and they will leave the lobby in the position of 16. Yes, so that does mean that all the teams who are present here, all the teams who are playing this lobby, they have that chance, they have that zeal in them so that they can climb up onto the position. And at this point, I think Team NFS, they do need to, I think they if they did quit this fight earlier, then it should be possible for them that to survive in this match. But as of now, they tried to get the fight, they tried to convert the finishes, but you know the results has been quite pathetic for Team NFS. But I strongly hope that Team NFS will be making another comeback in the next matches, because the team who had the potential to earn a chicken dinner have the potential to make a comeback as well. But as of now, team number 16, they will be prioritizing their loots. Yes, that is Team Alone Boys. After getting those four finishes, they are quite happy, and they will be focusing on the loot. But Team XNOR, one of the teams that did not perform that well in the previous match, because a sudden rush from them onto the areas of school apartment have completely destructed them in the previous match. And in this match, I think they also do need to they do need to make some goals that where this match we will be performing, and we will be getting into the top 3 position. Because if there we are having a total of 5 matches, and you have a leverage to at least you can in which you can play 2 games, I should say, casually, but the rest of the 3 games, it should be played very much seriously, and in the rest 3 games you should get some good amount of points, so that it is not difficult for you at the last match, in the last match, to climb up on the points table. But as of now, guys, all the teams, they are looting onto the area. We'll be checking out one by one teams. Team Glory, yes, they have a brilliant match in the previous one, and as of now, they are looting in the areas of La Cobre area, where they do not have any kind of challenges. Yes, they are the single team in this area, and UDG Esports is providing you this opportunity where you can showcase your talent, where you can showcase your real potential. So guys, make sure you support UDG Esports as well as Gary Esports. Make sure if you are not subscribed to the channel, you definitely subscribe the channel. Along with it, do make sure that you press the like button. Yes, you press the like button and share the stream. And if you are not yet joined into the Discord server of UDG Esports as well as Carry Esports, make sure you join the servers, because the latest and greatest information will be available in the server, and you do not want to miss out those, I think so, because you are competitive players, and competitive players just need that chances. If you get the chance, you do need to convert those chances. As of now, Team Glory, they are having their chance to loot, and the circle, yes, we'll be talking about circle, but we'll be moving towards other team, guys. Team number 8, which is Team Hope. Yes, they are also they have prioritized their loot. Team Fabulous Esports, yes, guys, we do need to move up to Team Fabulous Esports, because there is a lot of support that is being going around in the chat for Team Fabulous Esports. And at this time point, Team Fabulous Esports, Kakarot, along with it, Omi, Karan, and Banerjee, Bain JR, okay, his name is Bain JR, 10, जो भी नाम है, at least they are also prioritizing their loots. And where they are present at this moment, I just want to know that they are present in the areas of El Pozo. They do not have any kind of competition in loot, in terms of loot, in the areas of El Pozo. So they will be having a complete loot, and they will be having their individual vehicles as well. Yes, we can see that Banerjee, he is currently having his buggy. And in the map of Miramar, I should say that if you are rotating with buggies, that is one of the favorable points for you, because buggies are one of the things that is very much efficient in the drive-by scenarios, where you can drive by onto your opponents and sort of things. So
it will be interesting to see that how these teams are going to rotate, because the circle, it has been formed under the areas of eastern areas. So, and most of the teams, we can see that most of the teams are already present in the areas of the circle, where you can see that team number 11, they are playing with the two players. So it is what it is, but it is very difficult for them to survive, because other teams are playing with four players and they are having only and only two players. So we'll see that how these two players are going to perform, because if your team is having only and only two players, then I think you should carry out a defensive approach in this match. Although all the teams all the teams who are present in this lobby, they are carrying out entire defensive approach as of the third or the fourth circle, because each and every team, they do want to climb up one of the points table, and they do know that it is the placement points which they do need to earn at the first point. But with this, our second fight, I should say, that has already been broken up. And let me just try to find out where the fight has been broken up. I think this in this area, yes, in this area the fight has been broken up. Team number 10, that is none other than your team BONGCHIE. Yes, they have lose out one of the player in the form of Exo Senpai. I think Exo Senpai is their IGL, and he was doing his IGLing task, where he was just scouting ahead. But one very good angle is what having Snow, but Snow, you failed to do the knockout, and I think these are the mistakes which you do not want to perform. But at this time point, if you are making this much mistake, you have the entire visions. No, you can easily make the knockout, but at this time point, you just fail to do so. But team Kirti, at this time point, I think they are also engaged to another fight. And let me spot team Kirti, that is slot number 15. Yes, so we are having slot number 15. And yes, we are having they are also having a fight, where the fight has been initiated with team number 16, and team number 16 being the team who have initiated the first fight in this match, and one of the greatest grenades I have seen in this day, that came to Bichara Optic. And another grenade, and grenade after grenade, and with the grenade itself, the team will get eliminated out. When you can do this much of, when you have this much of grenading skills, I think you do not need those guns, because you are eliminating the player with grenades itself. And it is fantastic to see that grenades, yes, grenades and molotovs, these are some of the things that that can be very much efficient in this kind of scenario. Banner JR, okay, Banner Junior, yes, Banner Junior, sure, Banner Junior, as of now he's present. But the circle, guys, we the circle itself, it also have moved up to the northeastern edge once again. But I think the some of the fight that has been cooking up in this area, that is team number 18, that is none other than team Unstoppable. But let's see how much unstoppable this team is, because the areas from which they are making their rotation, it will be difficult for them, it will be very much difficult for them. I think one of the team that is present very nearby to them was most probably team number 8. Yes, team number 8 and team number 8 will be spotting down them as well. Multiple teams, guys, multiple teams now, they need to make into the circle, because it is the circle which will be deadlier for you at the later stage of the match. And you're seeing team number 17, yes, they have also initiated their rotation, and they are currently, I think, trying to get into the circle from the very western edge. But at this time point, yes, some of the fight have also been initiated up, and at this time point, team number 8 will be the team who have initiated the fight, who have came close to team number 18. Well, Ankit, he is cooking up one of the grenade, but let's see, this grenade will not be going into the area, but one of the player have is just present in the vicinity. Well, he will be taken down, Drancer X will be taken down, and team number 18, most probably they are down to one last player. Yes, one of the last player will be surviving, but team number 8 will be pushing up. And with this, team number 18, the name of the team was Unstoppable, but it is what team number 8, that name is a good example of. But guys, we are having now 13 teams, so some of the teams have already initiated up those fight. But team Rod, yes, I was saying this, that team Rod was having only and only 2 player, and most probably they are also eliminated out from this lobby, because you do know that if 4 players are charging up on you and you are only and only 2 players, then it is very much difficult for you to survive in this particular scenario. But team XNOR, they are also initiated into a fight, where we can see that Days Boy,
Okay, I think his name is Zeddy. Yes, Zeddy is down, and at this time point, team number 19, the player of team number 19 is in the close of vicinity. But let's see what the team number 812 can do. Well, he is trying to get some knocks, but he will be indeed knocked up. And team number 19, they are climbing onto this fight. They are just charging onto the fight. Well, Draken, he will be taken down, and team number 12's Mickey, he is surviving at this moment. Team number 12, let's see how they are going to react in this fight, because Mickey, the way he is fighting in this lobby, the way he is dealing with the fight, it was pretty good. But you do not play with one player, you play with four players in a team, and in the in a team, the contribution should be made from the four players itself. Mickey was playing excellent, but the other team players, the other members were failed to do so, and that was the prime reason for which Team XNOR back to back setbacks for the team. And I think so now they do need to take it seriously, because there will be three matches after it, and if Team XNOR, if Team XNOR misses up on those three opportunities, then it will not be a good result for them, because the five matches, yes, UDG Esports and the management has provided five matches, so that each and every team to get those opportunities in a correct fashion, so that if any team misses up, if any team do get eliminated up in a initial stage on one of the matches, so the team will be having another four matches left. But Team XNOR, they are having only and only setbacks in these two matches. But let's see. We are having now 11 teams, 40 players are still standing in this lobby, and the circle, yes, the circle will be a crucial factor as of now. Team number 10, Snow, yes, been spotted up from very far, where Team RVT Aman, yes, he has spotted him, and with M16, yes, I should say that M16, guys, M16 is uh, one of the X Factor weapons in Miramar, especially because in Miramar we see that players do. But how these player is interesting speed by this, by which Aman is blazing. Aman is blazing his ammos onto the areas of his opponent. But the thing I was saying that if you do not get if you do not manage to get one of the Mini 14 or SLR or SKS, whichever you prioritize, then you can rely on to M16, because if you manage to get up to the accuracy level of M16, it is as good as Mini 14. But it will be a thing to see that how Team RVT, yes, how Team RVT is going to play in this lobby, because if you see the particular split that this team is having, Beast, well, he has already acquired that higher ground advantage, and from the higher ground advantage, he is ensuring that he can provide that cover fire to his each and every teammate. Well, four players and four different angles, and yes, this is a good strategy as of now, because in the stage 2 or in the stage 3 circle, you can do this kind of strategies, you can perform well in this kind of strategies, where the rotations, yes, you can cut out the rotation of your opponent. But in the stage of 4th or 5th circle, you definitely need to get with your team. Yes, but guys, as of now, the circle, yes, meanwhile the circle, it now also has been moved up to the northern area, and team number 7, yes, they did their landing on the El Hazar region, and they are still present on the El Hazar region. But at this time point, I think some of the fight has also been initiated up for team number 19, where Nervi, he will get caught up in the rotation, and he will be taken down as well by the team number, I think team number 6, yes, team number 6, team Swarajya Esports. Definitely in the segment of semi-final, Swarajya Esports, they did perform very well, but in the first match they were not able to perform that much good. But I am hoping to get one of the good performance from team Swarajya Esports in this lobby, because as we can see, they are having 3 finish point as of now. One of the player has already been lost in this lobby, but 3 players, yes, the 3 players are quite enough to get the chicken dinner done. Meanwhile, Team Fabulous, yes, Team Fabulous Kakarot, meanwhile he is down, the vehicle has been exploded up, and with this he has been knocked up, and these things
Definitely, these things are very much crucial in the map of Miramar, where there is a lot of open ground, where there is a lot of open areas, and definitely you know that in open areas, if you try to do that rotation and if the guns got blazed onto you, then it will be very much problematic for you. But team number 9, they are trying into some sneak into some grenades onto the areas of team number 7, team number 17. Yes, but let's see how team number 17 is going to react. Well, Karan, he is providing out good amount of good amount of cover fire. भाई हिंदी आती है तो हिंदी में बोलो, हिंदी में ही बोलो भाई, क्या कर सकते हैं ब्रो. I have been directed to cast in English, that is why I am doing so. But let's see if management give me the green signal to cast in English Hindi as well, then I'll be shifting towards Hindi as well, probably in the later matches. But as of now, guys, team number 17's Karan, he was present onto the open areas, and you do know that in the open areas, if you try to engage for a longer period of time, your gun sounds, your gun sound, they do get noticed up by your opponents, and in this time point, team RBT will be taking the advantage of it, and they will be claiming that one finish point. But they also do need to make the rotation. Meanwhile, team Fabulous, it is what team Fabulous, they are facing a lot of challenges. You can see that Banner JR, he is down, he will be completely finished up, and at the same point, one of the player Kakrot, yes, he is also down, and I think so that finish point of him will be confirmed in no time. Yes, the finish point will be confirmed, and Omi, he does need to make sure that he carry his team to a later part of the map, because if you get eliminated up in the position of 11 or 12, it will be very much problematic for you to survive, for to climb up onto the points table, because back to back bad games can lead to a very destructive position onto the points table. But along with it, guys, another fight that has been brought up into our attention, that is team number 8. Yes, team number 8, their players are one by one getting knocked out. We can see that multiple players of team number 8, that is none other than Team Hope, they are getting knocked out, and it is team number 8's Night OG who is actually trying to survive. But Night OG, meanwhile, I think he understood the situation very well, and for this reason, he now trying to escape. He is now trying to escape from the area, because he's trying to disengage. He's trying to disengage the fight. He's trying to survive for his team. He's trying to earn some placement point. But the circle has moved up to a little central position, and team number 8's Night OG, he is present onto a very good area. But the area in which he is present right now, I think some of the teams will be targeting for this area, and if some team tries to target into this area, then it will be very much disadvantageous for Night OG to survive. But team number 7, yes, will be moving toward team number 7, that is Team Hope. The hopes are still alive, the chances are still alive, the gameplay is still alive. Meanwhile, he will be targeting team number 13, team RBT Aman. Yes, oh my goodness, Aman will be taken down. Yes, Aman will be taken down, and in turn, I think the finish point will also get confirmed, because Aman does not have his teammates in the nearby vicinity. Well, he does have God OP. He is present onto the vicinity of Aman, but one grenade and it will be a game-changing scenario for Team RBT. Meanwhile, Aman, he is very low on HP, and he will be confirmed up. Yes, he will be confirmed up by the team number 7, Team Hope, Team Earthquake. Most probably that was Team Earthquake, team number 7. Yes, Team Earthquake. With this, they will be getting the first finish point, and they are now getting started in this lobby. And let's see how Team Earthquake is going to perform from this point of time. And guys, if you are new to the stream, do make sure that you have pressed the like button, as well as you have subscribed to the channel. But we'll be moving towards team number 10. Yes, team number 10, they are playing onto the higher ground, and definitely if you have the higher ground advantage, you have that wilder field of view from which you can spot down the enemies, and you can make your enemies life a little bit worse. But if you are playing to the higher ground, you are also very vulnerable to spot up by your enemies as well, and in that scenario it will be problematic for you to survive. But in this time point, we'll see how Snow is going to react, because his players, I think they are already scattered up, and they are already providing that valuable information to each other. But team number 6, yes, they are also present. They are having a good amount of information with them, and they are now, I think they have spotted down team number 15, which is none other than Team Kirti. Yes, Team Kirti, they have a
I should say they have a decent game in the previous match where they managed to get up some finish point, but the placement points, yes, they completely lacked on the finish on the placement point. But the teams, yes, guys, the teams are number are getting increasing in the circle, but the circle, the area in the circle, it is getting decreased. It is getting exponentially decreased. So the teams they do need to struggle. They do need to make sure that they are playing onto the safest areas. But cross op will come and he will put down that smoke. Yes, he will execute that smoke and he will execute that revival as well. But team earthquake with this, the circle has been moved away from them, and it will be difficult for them to move up because they are having only and only 1 minute and 30 seconds of time. And after this time point, all the teams who are actually present outside of the circle as of now, they do need to move up. But I think team number 7, yes, team earthquake, they do have vehicles, so it will be easier for them to rotate. But it will be a question that whether or not they will be able to get into inside that circle, and whether or not they will get a good amount of area inside the circle, because you do need that area, you do need those good amount of breathing space to survive into the circle. Well, team number 7, where they are going, actually I think there is team present into this area, and they are actually spraying down to the vehicles of team number 7. Asta, he is surviving, he is trying to move up, but along with it, team number 10, yes, team number 10, they are also playing close to them. Team number 10's cross OP, he is getting knocked up. Yes, he will be knocked up. And with that being said, team number 7, they are also getting spotted up. They are also getting those shots with them. Meanwhile, team number 9, team NSG, that is team NSG most probably. Yes, team NSG, as of now, they are having those 2 finish point, and the 4 player are still standing. They are having a good amount of breathing space. They are having a good amount of value, and the value they are having, it is significantly being utilized by them. But let's see how team NSG is going to perform in this lobby, because as of now they are having the information, but I do not think that they have the information that one of the solo player is actually present onto the left hand side compound, that is Night OG. And Night OG has a brilliant angle onto team number 9's player. Yes, I think team number 9's player, let's see, team number 9 player, he's trying to get into those areas. Night OG, he still didn't give any kind of footsteps. He still did not compromise his position. We are having 9 teams, 26 player is still surviving, and this is what a competitive player means. Because you are the solo player standing, because you are the last player from this lobby, you do want to ensure that you are taking a good amount of placement points from this lobby. And for this, Night OG, yes, he did not compromise his position. But as of now, team number 19, they are getting completely smoked up. Yes, they are trying to get some smokes done, because it is smokes what actually can survive them. But if you see team earthquake, yes, the players of team earthquake are getting sandwiched up between team number 9 and team number 19. So it will be a problematic situation for team number 9, team number 7, especially team earthquake, because they are having 2 teams onto a different side. Asta, he is actually charging, and he is having that Groza in him, and the Groza, it is one of the deadliest weapon in the close range. But let's see how Asta is going to utilize it. Well, he is actually trying to smoke up into the areas, and in the closer vicinity there is actually player present from team number 19. Well, team number 19's player, he is already low in HP. Asta, he is trying to push in, he is trying to get this finish point, he is trying to get those knocks. But as of now, team number 19's player will be surviving. Yes, he is surviving, but not much more, because Asta, he will be doing that knocks. And with this team earthquake, yes, they are actually managing to do some earthquake in this lobby as of now. But team number 6, yes, I think they are also surviving. Yes, team number 6, they are also surviving, because the circle, it has been shrinked up to a very confined area. So it is very much problematic for each and every team to survive. Team number 6, they are having those 2 player with them, Trickster and Thunder. But let's see, Trickster and Thunder, how much amount of time they can survive. Well, they are trying to grenade up on the areas, but there is actually a team who is actually present adjacent to the team onto the right hand side, that is team number 15, that is most probably team Kirti. But they are also getting spotted up, they are also getting those shots onto them, and it will be difficult for them. I think they could easily spot out team number 4, who initiated the rotation as close as them. But team number 15, yes, it is problematic for them. And you especially face these kind of challenges when you do not prioritize the zone at first. If you do the zone rotation at the later stages of match, you do face this situation. And team number 15, well,
the last player of them, he managed to get up into the circle, but I think Abhi, he is also vulnerable right now. He has a player onto the left hand side. Team RVT most probably is the team. They are having two players, and one by one, the players of each and every team, yes, they have been slapped out by the circle. And Team NSG, I believe, is the team who will be taking a chicken dinner in this match because they have a good control, they have a good amount of information, they have a good amount of potential to execute the chicken dinner in this match. But they are having multiple teams. They do need to make sure that their back is clear, because if the back is not clear, then the team do need to face a little bit of difficulties, or I should say heavy difficulties, because your back should be always clear. Yes, your back should be always clear, because if a single player is surviving and he is coming onto from your back, and no one is looking onto your back, then he could a lot of lethal damage to your team. But team number 7, they are playing with they are having only and only last two players surviving. Team Earthquake, this comeback, yes, this comeback was needed, and indeed they are initiating that comeback. But at the same time, team number 5, that is Team Glory Official, what a consistent performance these lads are delivering. Because if you see, this team was I think present on the second position in the previous match, and they have already managed up to get into the top 5 into this second match. So yes, the consistency that has already been proved up. But Team Earthquake, with this, the elimination of them has also been confirmed by team number 9, that is Team NSG. Team NSG, they are having 4 finish points, they are having 3 player in them. But team I think that is Team Glory Official. Yes, Prajit. In fact, Prajit was the last player who was surviving in the last match, and if you see right now, he's also the last player. But Abhi from Team Kirti, he is trying to survive. He is trying to get the heal battle done. But with this, his healings has already been utilized up. But now he will be spotted down, and I think he will be taken down by Prajit. So one more finish point is going towards Team Glory Official. We are having only and only 3 teams. The top 3 titans of this lobby, the top 3 teams in this lobby is present in front of you. But let's see which of the team will be getting the chicken dinner. Well, Prajit, he's also trying to get some finish point done. But Prajit, with this, he has also compromised his position. 1v1 will be taken down. But with this, Prajit, he is also been taken down, and we are having only now 2 teams, Team NSG versus team number 13, that is Team RBT Esports. Both team have the same number of player, both team have the same number of advantage, but I think it is a Team RBT that is having a slight advantage of the rage, and by which they can play. A grenade has already been cooked up by Beast, and let's see whether or not this grenade will be a killer one. Guys, we have came to a very end in this match where we are having only and only 2 teams. You can see Beast and another player, that is Believe. Yes, Beast and Believe, those 2 players are surviving from team number 13, and these 2 players, they are ensuring that they do not make one of the single mistake, because if you make any kind of single mistakes in this lobby, you will be punished so hard that the chicken dinner, it will be left out from you. But Team NSG, yes, little by little, they are also trying to get into the circle, because 3 meter is what they need to, especially Mohit need to get into the circle. He has already got into the circle. But let's see who will be taking out the first knock, because the team will be taking out the first knock have the most advantage in this fight to get the chicken dinner done. Will it be Team NSG or will it be Team RBT? We'll have to see, we'll have to witness, because these 2 teams, they are just present vicinity to one another. Yes, they are present quite close to one another. Believe and Beast versus, it will be, I believe, Ethics. And Ethics, well, he tried to sneak out on the position, but with this, I think last player will be surviving. That is Mohit, and Mohit will be taken down as well. And with this being said, Team RBT, they are grabbing the chicken dinner of the second match of Miramar of our none other than UDG Esports presents Battlemania Season 1, powered by Carry Esports. One brilliant comeback has been done from RBT. Yes, the finish point that they have acquired in this match is 9 finishes, so they'll be taking around 24 total point, and the 24 total point will be reflecting down onto the point standing. And I think with this match, they will be climbing a lot higher in the position as compared to what they were been into the previous match. So, and the second position, guys, it goes to Team NSG. Well, they did have the chance, but the circle, it is what the circle that was not favorable to Team NSG, and Team NSG,
they will be limited to the second position with a 4 finish point. But coming on to the third position, guys, yes, team that is none other than Team Glory Official. What a glorious performance these guys are giving, these lads are giving, because you see, they were having second position in the first match with some good amount of finishes. I believe that was 6 to 7 finishes. But in this match, if you see, they are not having those much amount of finish point. They are having only one finish point, but they are having that third position. That means they will be getting around 11 total points out of this match, and that will help a lot a lot, because I think by this they can be in the first spot after this match. But in the coming into the fourth position, guys, so Team Kirti, after a disastrous previous match, so they managed to get into the fourth position in this match with the 7 finish point. And Team Earthquake, yes, one of the comeback that was needed by Team Earthquake has already been proved up in this match with 5 finish point. But at this time point, guys, I do need to take the screenshot. Just wait for a few minutes. So yes, the screenshots has already been captured, and we'll be moving towards, guys, our start of the match. So Team RVT, believe, what a performance, what a miraculous performance, what an awesome performance this player have provided in this lobby. If you see, he has already got those 5 finish point. Along with it, the damage that has been provided by RVT, believe, is 827. And from Team Earthquake, it is Electro will be providing the maximum number of rescue, that is 2 rescue along with 1 assist. And RBT believe will be the player, will be taking down the last player of NSG, and will be handing out the chicken dinner to his teammates. But with this guys, our second match, it came to an end. And the third match, yes, the third match, it will be Vikendi most probably. So that winter is about to get real. You do need to get your warm clothes, yes, for the next match. But guys, yes, the strategies and all those things we will be seeing in the next match, because next match is Vikendi. It is one of the deadliest maps in the total BGMI scenario, because the compounds, yes, the compounds are present in an abundant number in Vikendi. And we will definitely see that which of the team will be conquering Vikendi in our next match. But before that, guys, we'll be taking one short, simple break. And I request each and every one of you guys, if you have not yet pressed the like button, so do press the like button and do subscribe to the channel. Do make sure that you are joined onto the Discord server of UTG Esports as well as Carry Esports, and do make sure that you are following both of the respective esports networks, because there is something cooking, there is something about to come, and one of the good opportunities for you is about to get knocked up onto the door. So you do not want to miss out on those opportunities, and for that you do need to follow the Instagram handle. So make sure you are following Instagram handle. But as of now, guys, will be taking one short and simple break, and we'll be meeting you guys once again with the Vikendi in the next match. Till then, guys, you enjoy the music. I'll be back once again with the next match. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver
turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Oh no. Empty hearts and neon lights, they're playing with my. Turn it all out, tell me every secret. Said that I care, ask do you mean it? It's been months since we've been okay. I'm putting off what's coming. Another night staring at the ceiling. You deserve to be alone, to be the one they're always thinking of. And I'm sorry I couldn't be there for you. I admit that I ignored it. You deserve to be alone. You deserve to be alone.
Said that I care, asked do you mean it? It's been months since we've been okay. I'm putting off what's coming. Another night staring at the ceiling. You deserve to be alone, to be the one they're always thinking of. And I'm sorry I couldn't be there for you. I admit that I ignored it. You deserve to be alone. You deserve to be loved. You deserve to be struggling 'cause I'm all you have. You should know that's all in your head. 'Cause it's been weeks and you're not okay. You're putting off what's coming. It's alright to be scared of being lonely. Don't you know that you deserve to be alone, to be the one they're always thinking of. And I'm sorry I couldn't be there for you. Admit that I ignored it. You deserve to be alone. You deserve to be loved. You deserve to be. You deserve to be loved. You deserve to be. Turn it all out, told me every secret. Said that I care, asked do you mean it? It's been months since we've been okay. I'm putting off what's coming. Another night staring at the ceiling. You deserve to be alone. तो जी हाँ गाइस, इसी के साथ हम आप वापस जरूर आ चुके हैं। जी हाँ, अंग्रेजों का भाषा छोड़ के हम जो है वापस आ चुके हैं हमारे हिंदी प्यारे हिंदी भाषा के ऊपर। बट फिलहाल के लिए गाइस जो तीसरा ये मैच है, जी हाँ, ये आपको शुरू होता हुआ नजर आ जाएगा कुछ ही देरी के ऊपर। बट फिलहाल के लिए बात करें हमारा यूटीजी ई स्पोर्ट्स प्रेजेंस, ये जो बैटलमेनिया सीजन 1 चल रहा है, जी हाँ, 240 टीमों के साथ शुरू हुआ था। उसके बाद देखे तो ये जो टीमें हैं कितना ज्यादा मेहनत करके, कितना ज्यादा वो स्ट्रगल करके, कितना ज्यादा वो जो एक बात करें पोटेंशियल अपना दिखा के इस स्तर तक पहुंचे हैं। उसके बाद हमारे 2 मैचेस भी कंप्लीट हो चुके हैं, जहां पे शानदार जो एक्शन है वो हम लोग को देखने के लिए मिला था। बट एक बार हम फिर से जो है वापस चलेंगे हमारे प्राइज पूल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। जी हाँ, प्राइज पूल पे बात करें, हमारे पास कुछ 10,000 INR का जो प्राइज पूल है वो है। एंड उसमें बात करें जो डिवीजन कुछ इस प्रकार के ऊपर होने वाले हैं, जहाँ पे जो टीम चैंपियन होगी उनको यहाँ पे 5,000 INR मिलने वाला है। वहीं पे जो टीम दूसरे पायदान पे आएगी ओवरऑल स्टैंडिंग में, उनको आपको 3,000 रुपए देखने के लिए मिल जाएंगे मिलते हुए। तीसरे पायदान पे जो टीम आएगी उनके पास आएंगे 1,500 रुपीज। एंड MVP मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इस फिनाले के 5 मैचेस के बाद वो जो एक उभरता हुआ सितारा हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, उनको यहाँ पे मिला जाएगा, उनको नवाजा जाएगा यहाँ पे 500 रुपए से। तो समझ ही सकते हैं MVP के लिए भी जो रेस है वो पूरी तरीके से अभी के लिए ऑन हो चुका है। बढ़ेंगे हमारे जो मैप शेड्यूल के ऊपर। जी हाँ, हमारा जो पहला मैच था दैट वाज एरांगेल, जो कि
आई बिलीव हमारे टीम इन्फीरियस ई स्पोर्ट्स के जो नेफेरियस ई स्पोर्ट्स की टीम थी जो कि चिकन रन निकाले थे, वहीं पे दूसरे मैच दैट वाज मीरामार जो कि शानदार तरीके से यहाँ पे चिकन निकालते हुए नजर आए थे हमारे आरबीटी ई स्पोर्ट्स के प्लेयर। बट तीसरा मुकाबला वो रहने वाला है वीकेंडी का, एक अनएक्सपेक्टेड सा मैप है, कुछ बहुत ज्यादा ही यहाँ पे जो है घर देखने को मिलते हैं। इतने घर है कि यहाँ पे टीम्स जो है वो चाहे तो ना फाइट लिए पूरा का पूरा मैच ही निकाल दे, बट फाइट तो लेना पड़ेगा, फाइट तो लेना ही लेना है। देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वीकेंडी वो कौन सी टीम का सबसे बेहतर होता है। एंड अभी के लिए जो टीमों का कहीं ना कहीं वो जो दो मैचेस उतना बेहतर नहीं गया है, जैसे कि यहाँ पे टीम एक्सनॉर हो गए, टीम फ्रेशर हो गए, तो वो देखना पड़ेगा किस तरीके से कमबैक करते हुए नजर आते हैं। काफी टीमें ऐसे हैं जिनका दोनों मैचेस में प्रदर्शन उतना कुछ अभी तक शानदार नहीं रहा है, उनके तरफ से मैं एक कमबैक का आशा जरूर करता हूं, क्योंकि 5 मैचेस है, अगर आप 2 भी मैचेस अच्छे खेल देते हो तो आपके पास चांस है कि आप वो लीडर बोर्ड के ऊपर आ सकते हो। बट फिलहाल के लिए देखेंगे कि क्या सिनेरियोज रहते हैं। बट उससे पहले गाइस वीकेंडी के जो सिनेमैटिक्स हैं वो आप एंजॉय करें। हम आप सभी लोगों से मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जब तक यहाँ पे मैच स्टार्ट नहीं हो जाता। तो मैच स्टार्ट होता है एंड हम मिलते हैं आप सभी लोगों से, तब तक के लिए जो है आप जो वीकेंडी का मजा जरूर से जरूर उठाइए।
तो एक बार फिर से देवी और सज्जनों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूडीजी स्पोर्ट्स प्रेजेंस बैटलमेनिया सीजन 1 पावर्ड बाय कैरी ई स्पोर्ट्स। टोटल प्राइज पूल दैट इज ऑन स्टेक एट दिस मोमेंट इज 10,000 रुपीज। जो धनराशि कहीं ना कहीं अभी के लिए दांव पे लगा हुआ है वो है 10,000 रुपए। जी हाँ, इसी के साथ हमारा जो तीसरा मुकाबला है उसका यहाँ पे शुरुआत हो चुका है। ये कुछ टीमें आपको इस मैच में भी जुड़ते हुए नजर आएंगे एंड डेफिनेटली इस बार जो है वो वीकेंडी रहने वाला है। तो वीकेंडी तो भाई यहाँ पे एक शानदार मैप है एंड अगर आप अभी के लिए देखें तो जो वीकेंडी का फ्लाइट पाथ है जी हाँ, वो इस बार आपको शुरू होता हुआ नजर आ रहा है सीमेंट फैक्ट्री के कुछ इर्द गिर्द एरिया से एंड ये जाएगा टूवर्ड्स पोर्ट। थोड़ा सा यहाँ पे छोटा मैप है एज कम्पेयर टू एरांगेल एंड मीरामार। तो अगर प्लेयर्स चाहें तो वो पैदल यात्रा जो वो करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक, जी हाँ, वो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। बट देखना यह है कि इस बार इनिशियल फाइट वो कौन सी टीमों के बीच में हम लोगों को होता हुआ नजर आता है एंड साथ ही साथ ये वेकेंडी को कौन सी टीम कॉन्कर करती है, क्योंकि वेकेंडी एक अनएक्सपेक्टेड मैप है एंड वेकेंडी में फाइट शायद हमें टीम एक्सनॉर के साथ एक बार फिर से देखने को मिल जाएगा। टीम एक्सनॉर वो आपको जाते हुए नजर आ रहा है इस बार कहीं ना कहीं थोड़े से बहुत ज्यादा ही हमारे नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ट्रेबनो के एरियाज में एंड साथ ही साथ उनको एक और टीम वहां पे ज्वाइन करने वाली है। जी हाँ, वो टीम नंबर 8 रहने वाले हैं, दैट इज नन अदर देन टीम होप। दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने, बट लेट्स सी क्या किसी को डाउन करेंगे। चलिए, एक प्लेयर को वो नॉक कर निकाल चुके हैं, बाकी के खिलाड़ी के ऊपर अभी के लिए जो नॉक करने का प्रयास है वो किया जाएगा। दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने, दोनों टीमों के बीच में फाइट फिलहाल के लिए जो है शुरू होता होगा। टीम एनएफएस उनका भी जो फाइट है वो शुरू जरूर हो चुका है, क्योंकि उनके एक प्लेयर वो ऑलरेडी फिनिश आपको होते हुए नजर आ जाएंगे। कितने ज्यादा टीम्स यहाँ पे आ चुके हैं। वेल, अभी अगर बात करें टोवार में इतने ज्यादा टीम्स आ चुके हैं, माय गुडनेस। 3 टीमें आपको देखने को मिलते हुए, जहां पे टीम नंबर 10 जो कि टीम बोंगचाई वो रहने वाले हैं। बट इसी के साथ टीम एक्सनॉर उनका भी एक बार जो फाइट है वो शुरू जरूर होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे 2 फिनिश पॉइंट वो निकाल चुके हैं। तीसरे प्लेयर के ऊपर भी जो शॉट्स है वो देने का प्रयास रहेगा, बट क्या वो प्लेयर को डाउन कर पाएंगे। जहां तक अभी के लिए बात करें तो टीम नंबर 8, जी हां, उनके तीनों प्लेयर इस मैच में पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएंगे। टीम होप, वो होप तो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल नहीं रहा है। वो जो एक उम्मीद जिसके साथ हम जीवन में भी आगे बढ़ते हैं, वो होप तो इनके पास अभी के लिए पूरी तरीके से ये टीम के पास देखने के लिए मिल ही नहीं रहा है। जहां तक अभी के लिए देखें तो अंकित ही इज द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग। वो इकलौते अपने टीम से एक जो कहीं ना कहीं आशा है, एक जो किरण है वो रहने वाले हैं एंड ये आशा, ये किरण अगर बुझ गया तो टीम होप के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। बट लेट्स सी अंकित क्या वो फॉल बैक करते हुए नजर आते हैं। अगर वो फॉल बैक कर लेते हैं तो उनके लिए बेहतर हो सकता है, उनकी टीम यहाँ पे कुछ देर तक सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में भी हम लोगों ने देखा था कि एक जो प्लेयर थे उन्होंने काफी देर तक जो है सर्वाइवल दिखाया था, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली हमारे नन अदर देन आई बिलीव टीम कीर्ति के थे वो। बट इसी के साथ गाइस जो फाइट है वो शुरू होता हुआ एक बार फिर से टीम फैब, जी हाँ, वो भी आपको देखने को मिल जरूर जा रहा है एंड साथ ही साथ इस बार टीम नंबर जो 4 है दैट इज नन अदर देन टीम जेवाईपी ई स्पोर्ट्स के प्लेयर वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे स्नोमोबाइल के साथ। फिलहाल के रोटेशंस कंटिन्यू करते हुए हमार बैग डारे, ठीक है, ठीक है, चलिए इसी के साथ हम देखेंगे ये पर्टिकुलर फाइट को विटनेस करते हुए। मीनवाइल टीम फैब, जी हां, वो एग्रेसिव टीम जरूर है एंड अभी के लिए बात करना चाहे वो एग्रेशन दिखाते हुए नजर भी आएंगे, जहां पे जेनेक्स नो उनको डाउन किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ वो जो सामने प्लेयर प्रेजेंट है डीबीएस, तो गाइस अभी के लिए वो हर एक प्लेयर चलाता हुआ नजर आ रहा है। डीबीएस क्यों ही ना चलाए, क्योंकि जब एक शॉट में आप एक प्लेयर को डाउन कर सके, बट ऐसे शॉट तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुश्किल भरा जरूर रहेगा। बट टीम नंबर 17 उनके प्लेयर, खुद के प्लेयर ने खुद को ग्रेनेड मार दिया, ये तो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। अगर आप ऐसे ग्रेनेड करोगे तो आपके लिए मुश्किलें दुगने से तिगने यहाँ पे बढ़ जरूर जाएंगे। पर टीम नंबर 17 बुल के प्लेयर वो क्लोज प्रेजेंट थे, जिसके चलते जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा एंड आई बिलीव कोई तो एक प्लेयर ऊपर चढ़ के बैठे हैं। जी हाँ, वो टीम नंबर 10 के ही प्लेयर है जो कि चढ़ के अभी के लिए बैठे देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि नन अदर देन टीम बोंगचाई वो रहने वाले हैं। बट इसी के साथ टीम केपी उनका भी जो फाइट है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार चलना चाहेंगे फाइट्स की तरफ, जहां पे टीम केपी उनके प्लेयर भी यहाँ पे मैच से पूरी तरीके से मुश्किलों में आपको देखने को मिल जरूर जाएंगे। इतने ज्यादा फाइट्स हो चुके हैं, क्या टीमों को यहाँ पे एक बार फिर से ज्यादा फाइट लेने का मन हो चुका है, क्योंकि इतने फाइट्स तो हम लोगों ने इनिशियली दोनों मैचेस में हम लोगों ने नहीं देखे थे। बट इस बार शायद से वो टीम्स को अंदाजा लगता हुआ कि अगर वो फाइट नहीं लेंगे तो उनके जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ेंगे नहीं। बट इतना भी फाइट नहीं लेना होता है जहां पे आपके प्लेयर्स लूज आउट हो जाए, तो ये चीजें भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। बट सर्कल, जी अगर आप सर्कल देखें तो वो पूरी तरीके से एक सदर्न एरिया का देखने को मिलता हुआ इस बार कोई ना कोई टीम
जी हाँ, जो कि नॉर्दर्न एरिया की तरफ गए हैं, उनके लिए थोड़े से मुश्किलें बढ़ जरूर सकते हैं, बट विल बी टेकिंग अ लुक इनटू द टोवार, क्योंकि टोवार का जो फाइट है वो अभी के लिए पूरी की पूरी तरीके से एक इंटरेस्टिंग होता हुआ। स्लॉट 6, जी हाँ, स्लॉट 6 के ऊपर भी चलेंगे। एंड गाइस, यहाँ पे स्ट्रीम डिले है, तो आप थोड़ा सा वेट जरूर कर लीजिएगा। आपके जो भी कमेंट्स है मैं पढ़ रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली, बट स्ट्रीम डिले होने के कारण वो मेरा जो एक रेस्पॉन्स है वो आप तक थोड़ा सा देरी के साथ जाएगा, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए। बट अभी के लिए गाइस, जी हाँ, टीम नंबर 6 जो कि नन अदर देन हमारे स्वराज्य ई स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं। 4 प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे, वहीं पे 3 फिनिश पॉइंट उन्होंने निकाल लिया है, तो ये तो बेहतर शुरुआत है, ये बहुत बेहतर शुरुआत है, जहां पे आपको ऑलरेडी 3 फिनिश पॉइंट मिल चुके हैं। अभी के लिए वो जो आप गेम है वो थोड़ा सा धीरज के साथ खेल जरूर सकते हैं। धीरज कोई प्लेयर नहीं है, धीरज एक इमोशन है, तो आप धीरज के साथ यहाँ पे जरूर खेलें। एंड साथ ही साथ देखें कि आप कितने पॉइंट्स इस मैच से निकाल के लेके जा सकते हैं। बट टीम नंबर 18, दैट इज टीम अनस्टॉपेबल। पिछला मैच एक इनिशियल स्टेज में ही वो फिनिश हो गए थे, तो इस बार देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो जो एक कमबैक है वो करते हुए नजर आएंगे। अभी के लिए जिस तरीके से इनके प्लेयर एक ही व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं, ये मुश्किल भरा जरूर रहने वाला है। एंड इनफैक्ट ये बहुत मुश्किल भरा हो जाएगा अगर यहाँ पे कोई टीम इनके ऊपर जो है स्प्रे डाउन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच टीम 13, टीम आरबीटी, उनका भी एक आई बिलीव थोड़ा सा मिड रेंज के ऊपर क्या फाइट देखने के लिए मिला है। जी हाँ, मिड रेंज के ऊपर ही शायद से फाइट देखने के लिए मिला है, जहाँ पे टीम नंबर 16 के शायद से एक प्लेयर को डाउन किया गया था। एंड उनको टीम नंबर 16 नहीं थे, वो दूसरे प्लेयर है शायद से वो टीम कीर्ति के प्लेयर थे जिनको फिनिश कर दिया गया। मोस्ट प्रोबब्ली लेट्स सी टीम कीर्ति क्या वो बची हुई अभी के लिए नहीं है। जी नहीं, टीम कीर्ति उनका एलिमिनेशन हो चुका है, तो ये भी थोड़ा सा दर्दनाक एक सिचुएशन उनके लिए। चलिएगा, इसी के साथ हम देखेंगे जो हमारा ये साउदर्न सर्कल देखने के लिए मिल रहा है, ये कितना ज्यादा डेडली हो सकता है वो टीमों के लिए, क्योंकि मैं मानता हूँ डेडली तो जरूर होगा, बट टीम एक्सनॉर वो 4 फिनिशेस के बाद वो महंगे गाड़ी में फिलहाल के लिए आपको रोटेशंस करते हुए नजर आ रहा है। इनका भी वही सेम चीज है, एक ही व्हीकल है, बट टीम एनएफएस इस बीच उनका भी जो एक लौता प्लेयर शायद से बचा हुआ था उनको मैच से बाहर कर दिया जाएगा। जी हाँ, लास्ट प्लेयर बचे हुए थे जिनको मैच से बाहर करेंगे। एंड इसी के साथ एक और टीम वो फिलहाल के लिए मैच से बाहर जाते हुए टीम फैबुलस, फिलहाल के लिए एक फैबुलस एंगल तो जरूर इनके पास है। यश मीनवाइल वो छत के ऊपर चढ़ के बैठे हैं, बट वो जितना अच्छे तरीके से स्पॉट कर सकते हैं उतने अच्छी तरीके से उनको भी स्पॉट किया जा सकता है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा तो केयरफुली जरूर से जरूर देखना पड़ेगा। वेल यस, क्रॉस ओपी वो स्पॉट करेंगे एंड वो तो अच्छा है। चलिए, वो समय रहते यश जो है वो कवर के ऊपर पहुंच भी जाएंगे, जिसके चलते वो अभी के लिए आपको बचते हुए नजर आएंगे। ये दोनों टीमें, दीज टू टाइटन्स आर क्लैशिंग इनटू द एरियाज ऑफ टोवार, एंड टोवार का राजा कौन बनेगा उसके लिए जो जद्दोजहद वो चलता हुआ नजर आ रहा है। टीम नंबर 10 उनके पास भी एक फिनिश पॉइंट, एंड जो हमारे सामने वाली टीम है दैट इज टीम नंबर 17, उनके पास आपको 2 फिनिशेस देखने को मिलते हैं। बट दोनों के दोनों टीमों को ही कहीं ना कहीं सर्कल का एज का एक्सेस है अभी के लिए, जहां पे मुझे नहीं लगता कि सर्कल बनने वाला है, तो थोड़ा सा सेंट्रल एरियाज की तरफ इनको भी चलना पड़ेगा। वहीं पे टीम ग्लोरी एक ऐसी टीम जो कि दोनों मैचेस में बहुत ही ज्यादा ग्लोरियस परफॉर्मेंस दिखा जरूर चुके हैं, वो जो एक कंसिस्टेंसी है वो तो प्रूव जरूर कर चुके। बट इस बार अभी के लिए उनके पास एक बढ़िया मौका कि एक जो अच्छा एरिया उनको अभी तक मिला है वो होल्ड ही कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जो प्राइम एरियाज के ऊपर लूट कर रहे हैं, वही सर्कल का एक बेहतर एरिया है, तो वो होल्ड अगर बेहतर तरीके से करे, इनफैक्ट अगर कोई टीम इस एरिया के ऊपर आना चाहे उनके लिए मुश्किलें जरूर क्रिएट किया जा सकता है। जहां फैबुलस का जो टीम है उनका सपोर्ट तो जो पूरी तरीके से चैट सेक्शन के ऊपर देखने को मिलता हुआ, एंड अभी के लिए मैं ये जरूर बोलूंगा कि फैबुलस का जो सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा फैबुलस है, इतना फैबुलस है कि उतना फैबुलस किसी टीम का सपोर्ट अभी के लिए देखने के लिए मिला नहीं है। बट चलिए, सारे के सारे जो टीम्स हैं डेफिनेटली उनके सपोर्टर्स भी यहाँ पे हमारे साथ चैट सेक्शन के ऊपर जुड़ जरूर रहे हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो है सपोर्ट दिखा रहे हैं। बट अभी के लिए टीम नंबर 10 के प्लेयर्स वो स्टिल वही प्रयास कर रहे हैं। दोनों टीमों के बीच में ये क्या चल रहा है, ये फाइट लेने का ही उत्सुकता इन दोनों टीमों के बीच में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे पीछे से टीम नंबर 16 उनका भी आगमन हो सकता है, एंड ये टीम वो मौके के ऊपर चौका मार सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। टीम फैबुलस उनको थोड़ा सा यहाँ पे संभलने का जरूरत है, क्योंकि अगर अगर उनके ऊपर शॉट्स आ जाते हैं तो बच पाना मुश्किल भरा रहेगा, क्योंकि अगर आप अभी के लिए देखें तो प्लेयर एक दूसरे से थोड़े से स्प्लिट है। वहीं पे टीम नंबर 10 के प्लेयर वो ओपन एरियाज में जाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन सेनपाई इनको नॉक किया जाएगा। जी हाँ, मुझे लग ही रहा था नॉक करेंगे एंड इंस्टेंटली उनको टेक डाउन कर देंगे।
ये चीजें होते हैं। अगर आप ज्यादा देर तक एक ही एरिया के ऊपर होल्ड करते हो, अगर आप थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं ऑफ एरिया के ऊपर जाते हो, तो आपको मुश्किलों में डाला जाएगा। इस बार वो जो फिनिश पॉइंट है वो टीम नंबर 16 दैट इज टीम अलोन बॉयज वो अपने नाम करते हुए। एंड गाइस व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, अगर आप स्ट्रीम को ऊपर नए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल में नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बट इसी बीच टीम फैबुलस उनके भी एक प्लेयर का जो है एलिमिनेशन जरूर हो चुका है। बट मॉडल जी हाँ, उनके तरफ से एक शानदार स्प्रे आपको देखने को मिलेगा। ओमी उनको नॉक कर दिया जाएगा। बट क्या इस बार टीम नंबर 10 के प्लेयर वो चार्ज इन करने का सोच रहे हैं? जी हाँ, स्नो वो आपको देखने को मिल जाएंगे। उनके हाथ में एक थॉमसन देखने को मिलता हुआ। दिस इज गोइंग टू बी अ पोएट्री ऑफ 50 बुलेट्स। जी हाँ, पोएट्री तो जरूर चलता हुआ नजर आ रहा है। देखते ही देखते टीम फैबुलस वो अभी के लिए पूरी तरीके से एक डिसएडवांटेज सिचुएशन में देखने को मिलते हुए। द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग फ्रॉम टीम फैबुलस इट इज नन अदर देन यश। अपने टीम के ऊपर अपने टीम का जो भार है वो लेके इस मैच से आगे बढ़ेंगे। बट कितने देर तक वो सवाल रहने वाला है, क्योंकि जिस एरिया से ये आगे बढ़ रहे हैं उसी एरियाज के ऊपर प्लेयर भी देखने को मिल जा रहे हैं। चलिए वो जो प्लेयर है वो देखने के लिए मिलेंगे। एंड इनफैक्ट प्लेयर जो है वो देखने के लिए मिल ही रहे थे, साथ ही साथ वो अपने आप को प्रोन इन भी कर लेंगे। एंड फैबुलस के लिए ये जो है एक चुनौती भरा समय है। यश वो अपने ट्रिगर डिसिप्लिन अभी के लिए दिखाते हुए नजर आएंगे। रॉड के प्लेयर्स के लिए भी मुश्किल यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है। अभी के लिए बात करना चाहे रॉड के जो टीम है, जी हाँ गाइस, उनके दो ही प्लेयर खेल रहे हैं, हर मैच में दो ही प्लेयर खेल रहे हैं। एंड ये पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा मुश्किल भरा है। वेल जीनोस एफटीडब्ल्यू ही इज द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग। एंड चलिए उनको यहाँ पे मैच से बाहर करेंगे एक्सनॉर की टीम 6 फिनिशेस के साथ इस मैच में। शायद से द कमबैक इज ऑन, शायद से तो कमबैक यहाँ पे एक ऑन हो चुका है। बट इस मौके पे एक टीम का एलिमिनेशन हो चुका है, जो कि टीम रॉड रहने वाले हैं। दो ही प्लेयर्स के साथ अगर आप खेल रहे हैं वो भी फाइनल्स में, तो ये मैं नहीं बोलूंगा कि एक उचित डिसीजन आपके ऊपर है। बट शायद से दो प्लेयर्स को कुछ मुश्किल हुआ होगा। कुछ यहाँ पे ऐसा सिचुएशन होते हैं जो कि आपको भी लाइफ के ऊपर काफी ज्यादा पीछे धकेल देते हैं। बट यश इसी के साथ उनको मैच से बाहर किया जाएगा। दैट डज मीन कि टीम फैबुलस उनका एलिमिनेशन हो जरूर चुका है। 12वें पायदान पे वो मैच से बाहर होंगे। टीम नंबर 16 उनके पास जाते हुए अभी के लिए 2 फिनिश पॉइंट। अभी भी बात करें वो सर्कल के बाहर देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बार टीम नंबर 10 उनके काफी ज्यादा नजदीक। बट लेट्स सी ये फाइट क्या होता है हम लोग को नजर आएगा। वेल आई बिलीव नहीं। टीम नंबर 10 वो भी यहाँ पे व्हीकल जो है वो ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। स्नो वो ऑलरेडी अपने टीम से आगे आ चुके हैं। व्हीकल यहाँ पे अगर नहीं मिलता है तो पैदल यात्रा ही यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड पैदल यात्रा करने के साथ साथ अपने टीम को सर्कल के ऊपर भी लेके आना पड़ेगा धीरे धीरे। हर एक टीम को यहाँ पे सर्कल के ऊपर चलने का जो समय है वो जरूर आ चुका है। बट इस बीच यहाँ पे हम थोड़ा सा चर्चाएं करें टीम नंबर 19 के भी बारे में, जो कि नन अदर देन हमारे टीम फ्रेशर रहने वाले हैं। वेल टीम फ्रेशर पिछला मैच भी यहाँ पे आई बिलीव ये टीम टॉप 6 के ऊपर आए थे। बट इस बार टीम SRE दैट मीन टीम नंबर 6 उनका भी जो फाइट है वो शुरू हो चुका है। वाइपर जिनको नॉक किया गया तो उनको फिनिश कर दिया जाएगा। दैट डज मीन की टीम फ्रेशर वो एक जो प्लेयर है वो पहले लूज करेंगे। 3 ही प्लेयर अभी के लिए आपको जीवित इस मैच के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। अभी के लिए बात करें तो बीस्ट, ट्रिक्स्टर, थंडर, ये 3 प्लेयर को कुछ तो यहाँ पे शानदार करना करके दिखाना पड़ेगा। बट ट्रिक्स्टर वो भी नॉक हो जाएंगे। अगर आप इस तरीके से नॉक हो गए तो सामने वाली टीम तो चार्ज इन करने का प्रयास पूर्ण तरीके से करेंगे। लेट्स सी टीम ZYP क्या वो एक चार्ज इन करने के लिए जाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अगर आप अभी के लिए देखें गाइस, एक टीम जो है कंपाउंड तभी छोड़ेगी जब आपके ऊपर मल्टीपल वो नॉक्स निकाल लेते हैं। एंड वो मल्टीपल नॉक्स अगर आप खुद ही निकालने देते हो तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा मिस्टेक कर रहे हो। अगर आप जितने भी मिस्टेक्स पहले मैच में किए हो अगर आप दूसरे मैच में सुधार लेते हो तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे काफी अच्छा खासा रिजल्ट आ सकता है। बट टीम नंबर 6 उनके पास अभी के लिए मौका मिला था, रिवाइवल यहाँ पे दिया गया। वो तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा वो खुद खुशकिस्मत है कि उसके उनके ऊपर जो एक क्लोजिंग है वो आया नहीं। अदरवाइज मुश्किल थोड़ा सा और नहीं बहुत ज्यादा बढ़ सकता था। बट टीम नंबर 6 जो कि हमारे स्वराज्य ई स्पोर्ट्स के प्लेयर है वो इस एरिया को पर्टिकुलरली अभी के लिए डिसएंगेज करते हुए थोड़े से सर्कल के सेंट्रल एरियाज की तरफ बढ़ने का जो प्रयास है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बट जितना आप सेंटर जाओगे उतना ही आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो भी बनोगे। तो थोड़ा सोच समझ के खेलिए, क्योंकि ग्रैंड फिनाले है। द प्राइज पूल दैट इज ऑन स्टेक इज 10,000 रुपीज। एक मैच आपको काफी ज्यादा नीचे धकेल सकता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा टीम नेफेरियस स्पोर्ट्स। जी हाँ गाइस, एक ऐसी टीम जो कि आज के दिन का जो शुरुआत है वो बहुत बेहतर लिए थे। एक चिकन डिनर उनके पास गया था। बट अभी के लिए बात करें जो 2 बाकी मैचेस उन्होंने खेला है वो दोनों के दोनों मैचेस में ही एक इनिशियली उनको फिनिश होना पड़ा है। स्लॉट 13 यस चले स्लॉट नंबर 13 के ऊपर टीम RVT के ऊपर
चिल है, ये टीम अभी के लिए चिल कर रही है, वो पूरी तरीके से एक एज ऑफ द सर्कल गेम प्ले इनकी तरफ से देखने को मिलता हुआ। टीम आरबीटी फिलहाल के लिए तो इनके पास एक मोमेंटम भी आ चुका है, वो जो पिछला मैच का मोमेंटम है वो इनको कहीं ना कहीं फायदा तो जरूर देगा, बट टीम एसआरई एक बार फिर से उनके प्लेयर यहाँ पे डाउन हो जाएंगे। इस बार मुश्किल इतना ज्यादा कि जिनको नॉक किया जाएगा उनको कंप्लीटली फिनिश भी कर दिया जाएगा। बीस्ट एंड ट्रिक्स्टर ये दोनों प्लेयर को ही अपने टीम से वो जो कहीं ना कहीं सर्वाइवल गेम है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बट लेट्स सी वेदर और नॉट दे विल बी एबल टू डू सो, क्योंकि मुश्किल वो बहुत ज्यादा है एंड मुश्किल वो आपको जीवन में भी कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। जीवन का यही सत्य है कि आपको वो जो एक कठिन परिस्थितियां, वो कठिन परिस्थितियों का सामना करना भी पड़ता है, कठिन परिस्थितियों से अपने आप को उभार के लेके आना भी पड़ता है। तो अभी के लिए जो कठिन परिस्थिति टीम नंबर 6 के प्लेयर के ऊपर हुआ है, वो क्या उससे उतर पाएंगे या फिर नहीं, वो देखना पड़ेगा। टीम नंबर 25 को दिखाओ भाई, प्रोनूब बहुत मार खाएगा भाई, ऐसा मत कर भाई, ये मेरा दोस्त है। टीम नंबर 25 से कोई नहीं खेल रहा तो मैं किसको दिखाऊं बोलो। चलो गाइस, फिलहाल के लिए इसी सिचुएशन के ऊपर हम बात करेंगे, बट ट्रिक्स्टर उनको छोड़ के उनके प्लेयर भाग गए, ये तो बढ़िया नहीं था गुरु, ये बढ़िया नहीं था। उनके जो बाकी प्लेयर थे वो भागे नहीं है, वो यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ एंगल क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, बट टीम स्वराज्य ई स्पोर्ट्स आप 2 प्लेयर के साथ हैं एंड 2 प्लेयर के साथ आप तो ऐसे जो है फाइट्स को ना ले तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा, क्योंकि सामने वाली टीम जो है वो 4 प्लेयर के साथ है एंड वो 4 प्लेयर अगर एक प्लेयर के भी नॉक कर देते हैं तो बाकी बचे एक प्लेयर आपके टीम में से उनके ऊपर पूरी तरीके से धावा बोल दिया जाएगा। एंड डेफिनेटली जो टीम्स यहां तक आए हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से किल फीड पढ़ना जानते हैं एंड किल फीड पढ़ने के साथ साथ उनको ये भी शायद से पता रहेगा कि टीम स्वराज्य ई स्पोर्ट्स के 2 प्लेयर को ऑलरेडी फिनिश कर दिया गया है, 2 ही प्लेयर बचे हुए हैं, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर दैट एनक्लोजर। मीनवाइल मुझे लगता है कि टीम स्वराज्य ई स्पोर्ट्स अगर वो जो 2 भी प्लेयर बचे हुए वो भी अगर थोड़ा सा एज ऑफ द सर्कल गेम प्ले खेले तो उनके पास अभी के लिए मौका जरूर बन सकता है कि वो इस मैच में कुछ अच्छे खासे प्लेसमेंट पॉइंट्स तो एटलीस्ट निकाल के ही जा पाएंगे। बट जिस तरीके से अभी के लिए इनके ऊपर चार्ज आ रहा है, मुश्किलें बहुत ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। पहले एक प्लेयर को स्पॉट करेंगे एंड बीस्ट आपको थोड़ा सा ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाना था, वो ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाने में आप पूरी तरीके से चोक आउट कर जाओगे। एनएसजी फिलहाल के लिए उनका भी जो एक फाइट है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। एनएसजी का पिछला मैच दूसरा पायदान पे वो फिनिश किए थे, इस बार अभी के लिए अगर आप देखें तो उनके जो एक प्लेयर है एथेक्स उनको नॉक किया गया था। एक मिड रेंज का जो ये फाइट है वो देखने को मिलता हुआ, जहां पे सामने टीम नंबर 19 वो रहने वाले हैं। चलिएगा टीम नंबर 19 दैट इज टीम फ्रेशर्स, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एक प्लेयर को नॉक किया जाएगा जिनको यहाँ पे पूरी तरीके से कंफर्म भी कर दिया जाएगा। सामने टीम एनएसडी के यश वो आपको देखने को मिलेंगे। ग्रेनेड करने का शायद से प्रयास किया गया था बट यश वो एक और ग्रेनेड करता हुआ अभी के लिए नजर आ रहा है। बट लेट्स सी टीवीएस का एक बेहतर कनेक्शन, एक उम्दा कनेक्शन एंड साथ ही साथ जो प्लेयर आएंगे उनको नॉक करेंगे। टीम अभी के लिए जो एनएसजी है वो बहुत शानदार गेम प्ले दिखा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन ऑन पॉइंट, गेम प्ले ऑन पॉइंट, रॉ गन पावर ऑन पॉइंट एंड दैट डज मीन द रिजल्ट दैट दे विल बी गेटिंग is also on point। लास्ट प्लेयर आए आपको देखने को मिल जाएंगे टीम नंबर 19 से, दैट इज नोवी। एक भी ग्रेनेड ऑन पॉइंट अगर ठिकाने पे गिरता है, भाई मेरा मुंह क्या ही है, मतलब मैं क्या ही बोला और क्या ही हो गया। वेल यश उनको पता था कि प्लेयर उसी एरिया की तरफ देखने को मिल जा रहे थे एंड इसी के साथ टीम एनएसजी वो अभी के लिए सफाया करेंगे टीम फ्रेशर का। टीम फ्रेशर एक और मैच जो है वो थोड़ा सा खराब शुरुआत उनके लिए। चलिए गाइस 10 टीमें आपको जीवित देखने के लिए मिल जा रहा है। 36 प्लेयर आपको इस लॉबी के ऊपर अभी के लिए स्टैंडिंग करते हुए नजर आएंगे। एंड जो चीज का मैं जिक्र कर रहा था वीकेंडी के शुरुआत से पहले कि यहाँ पे कंपाउंड्स बहुत ज्यादा है, अगर चाहे टीम्स तो ना फाइट लिए भी वो इजीली वो जो 3rd 4th सर्कल है वो तो आसानी से अप्रोच कर सकता है। बट अभी के लिए अगर आप प्लेयर्स का अप्रोच देखें तो वो 3rd मैच में ही ऑल आउट अप्रोच दिखा रहा है। भाई 5 मैचेस का सेगमेंट है, आप यहाँ पे 5 जो मैच है उसमें बेहतर खेले। अगर आप 2 भी मैचेस बेहतर खेल देते तो आपके लिए वो बढ़िया मौका है कि आप एक शानदार मैच निकाल सकते हैं। बट टीम एक्सनॉर वर्सेस टीम नंबर 9, ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने, दोनों टीमें ही हाई हेलो फिलहाल क्लिक करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक बात कर ली जाए ब्लड्स, जी हाँ वो अभी के लिए उनके पास एक ग्रोजा भी देखने को मिलता है, बट इनका जो महंगा वाला गाड़ी है वो अभी के लिए थोड़ा सा मुश्किलों में है, क्योंकि व्हीकल ये एक ऐसी चीज है अगर आपका व्हीकल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आपका जो रोटेशन है वो पूरी तरीके से व्यर्थ हो जाता है, स्पेशली इन द मैप ऑफ एरांगेल मिरामार एंड आल्सो सम पार्शियली इन द मैप ऑफ विकेंडी एज वेल। अगर आप अभी के लिए देखें तो टीम एक्सनॉर के
जेड्स ब्लड्स, जी हाँ, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। 3 फिनिश पॉइंट अकेले अपने टीम से इन्होंने निकाला है। वहीं पे टीम के पास आपको टोटल में 6 फिनिश पॉइंट देखने को मिलते हुए। देखना अभी के लिए ये है कि सर्कल कहाँ जाएगा। वेल सर्कल उसका शिफ्ट आ भी चुका है इस बार। एबी के एरियाज वो सर्कल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, जहां पे आपको टीम नंबर 10 देखने को मिलता हुए। 4 फिनिश पॉइंट उनके पास अभी के लिए देखने को मिल जाएंगे। एंड गाइस, जो भी स्ट्रीम के ऊपर नया, मेक श्योर आप स्ट्रीम को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड शेयर, जी हाँ, वो तो आप जरूर से जरूर कर ही देंगे, इतना आशा है मुझे आप सभी लोगों के ऊपर। टीम अर्थ को एक पिछले मैच में ही वो आपने एक शानदार गेम प्ले दिखाया था, जिसके चलते आपने टॉप 5 तक अपने टीम को लेके आए थे। बट इस बार वो जो एक स्टार खिलाड़ी है अपने टीम से, अस्ता, वो नॉक हो चुके हैं। स्मोक आउट तो जरूर किया गया, बट क्या रिवाइवल वो पॉसिबल हो पाएगा या फिर नहीं? इट इज अ टफ कॉल फॉर टीम नंबर 7 प्लेयर, क्योंकि एक के बदले अगर आप 2 नॉक दे देते हैं तो आपके लिए पूरी तरीके से मिस्टेक भरा सिचुएशन है। बट फिलहाल के लिए टीम नंबर 7 के प्लेयर वो अभी भी कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से बैकएंड से प्लेयर जो है कोई किसी एंगेज करके रखे, एंड सामने जो प्लेयर नॉकआउट हुए उनको रिवाइवल मिल जाए। और जो रिवाइवल है वो देने के लिए प्लेयर आगे आ चुके हैं। टीम नंबर 6, जी हाँ, उनको इतना अग्रसर नहीं होना है इस फाइट में, क्योंकि वो 2 प्लेयर है। एक भी प्लेयर अगर नॉक हो जाते हैं तो जो फाइट का अंजाम है वो पूरी तरीके से उनके लिए डिफिकल्ट होता हुआ नजर आएगा। अस्ता, वो ग्रेनेड उनके ऊपर जाएगा। जो प्लेयर नॉक, जो अभी के लिए रिवाइवल हुए थे, वो फिलहाल के लिए एक बार फिर से नॉक होते हुए, एक बार फिर से वो जो ग्रेनेड्स है वो उनके ऊपर देखने के लिए मिलते हुए। जी हाँ गाइस, जो फाइट है वो फिलहाल के लिए देखने के लिए मिल तो जरूर से जरूर जा रहा है। अभी के लिए बात करना चाहें तो टीम नंबर जो 6 है, जी हाँ, 2 प्लेयर होने के बावजूद भी बढ़िया कहीं ना कहीं जो एक वो पोटेंशियल है वो दिखाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन पीछे देखे, पीछे देखो मेरे भाई, पीछे यहाँ पे दूसरी टीम आ चुकी है, जो कि टीम ग्लोरी ऑफिशियल रहने वाले हैं। टीम ग्लोरी, उनका तो आज का दिन बहुत शानदार जा रहा है। इनफैक्ट उनके पास एक कंपाउंड है, तो आई थिंक दे विल नॉट बी मूविंग अहेड फ्रॉम दिस कंपाउंड। बट फिलहाल के लिए वो जो सर्कल है, जी हाँ, वो एक शिफ्ट लेता हुआ नजर आएगा टूवर्ड्स दैट वेस्टर्न एरिया। एंड वेस्टर्न एरिया में टीम EQK, दैट इज नन अदर देन आवर टीम अर्थक्वेक, वो आपको देखने के लिए मिल जरूर जाएंगे। 0 फिनिश पॉइंट अभी के लिए इनके पास है, बट मौका इनके पास बहुत शानदार है कि इस मैच को वो कन्वर्ट कर सकते हैं। सामने एक प्लेयर देखने को मिलेगा टीम नंबर 13 के, जो कि टीम अर्थक्वेक के लिए मुश्किलें बनाएंगे। वेल चलिए, गॉड ओपी, उनको साथ ही साथ एक रिटेलिएशन ट्रेड पे डाउन किया जाएगा। बट साथ ही साथ एक और जो प्लेयर थे इस एरिया के ऊपर, टीम अर्थक्वेक के इलेक्ट्रो हेड, वो यहाँ पे नॉक आपको होते हुए नजर आ जाएंगे। मुश्किलें टीम अर्थक्वेक के लिए बढ़ते हुए, इनफैक्ट वो मुश्किल बहुत ही ज्यादा हो चुका है इस बार सामने से। नंबर 13, दैट इज नन अदर देन टीम आरबीटी, वो चैंपियन टीम, वो देखने के लिए मिल जरूर जा रहा है। बट वो शायद से रिवाइवल देने के लिए नहीं आएंगे, या फिर आएंगे या फिर नहीं। चलिए, वो डुअल माइंडेड डिसीजन शायद से किया गया था, बट एट लास्ट प्लेयर आएंगे, रिवाइवल देंगे, एंड शायद से इस एरिया को बॉयकॉट करते हुए नजर भी आ जाए। बट टीम ग्लोरी, मैं इसी चीज का जिक्र कर रहा था टीम नंबर 6 के ऊपर, अगर एक प्लेयर डाउन हो जाते हैं तो इट विल बी ओनली एंड ओनली द लास्ट प्लेयर फ्रॉम टीम नंबर 6। चलिए, टीम नंबर 6 के जो लास्ट प्लेयर थे उनको भी यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा। इनफैक्ट एलजी बीस्ट रहेंगे वो, जो कि ट्रिक्स्टर को मैच से बाहर करेंगे। एंड इसी के साथ एक और टीम का इस मैच से जो खात्मा है वो होता हुआ, टीम इक्वेन, उनका भी शायद से खात्मा होता हुआ नजर आ सकता है। बल नहीं, अभी के लिए उनके जो एक प्लेयर है वो जीवित है, इलेक्ट्रो हेड, वो रहने जरूर वाले हैं। एंड लेट्स सी, इलेक्ट्रो, उनके पास ये जो बेहतर एक फाइट के ऊपर वो आ रहे हैं, उनके ऊपर आने से क्या उनका कुछ फायदा होगा? मुझे लगता है कि टीम EQ के टीम इलेक्ट जो अर्थक्वेक है, वो अगर इस एरिया से ये पर्टिकुलर फाइट को लेते हैं तो मुश्किल उनके लिए बहुत ही ज्यादा होने वाला है, क्योंकि सामने टीम आरबीटी के 3 दिग्गज वो आपको देखने को मिल जाएंगे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। गॉड ओपी, जी हाँ, वो आगे बढ़ जरूर जा रहे हैं। एंड लेट्स सी, वो प्लेयर को क्या वो स्पॉट कर पाएंगे? जी हाँ, अभी के लिए बात करें तो स्पॉट कर जरूर सकते हैं, बट अभी भी वो स्पॉट किया नहीं गया। अभी भी वो चांस लिया जाएगा। लास्ट एक बढ़िया शॉट आएगा जो कि डायरेक्टली लैंड करेगा डीबीएस का प्रहार, और कोई भी यहाँ पे दोहरा ही नहीं। साथ ही साथ वो प्लेयर मैच से बाहर। चलिए, टीम अर्थक्वेक, उनका भी इस मैच से जो एक खात्मा है वो होता हुआ हम लोग को नजर आ रहा है। टोटल में बात कर ली जाएगा इस तो 8 टीमें, 30 प्लेयर आपको इस लॉबी के ऊपर देखने के लिए अभी के लिए मिलते हुए, जहां पे क्रॉस ओपी, उनको भी डाउन किया जाएगा। एक्सनॉर की टीम, जी हाँ, एक्सनॉर की टीम का भी यहाँ पे फाइट हो चुका है। इनफैक्ट टीम नंबर 10 के साथ मोस्ट प्रोबेबली वो जो फाइट है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। एक्सनॉर एक वापसी की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। गॉड्सनो, उनके ऊपर एक जो ग्रेनेड है वो जरूर किया जाएगा, लेकिन इनके भी एक प्लेयर एडी अभी के लिए नॉकआउट है, जिनको रिवाइवल का सख्त से सख्त जरूरत है। वहीं पे सामने टीम नंबर 10 के जो प्लेयर रहेंगे उनके भी शायद से 2 ही प्लेयर देखने को मिल जरूर जा रहा है, इमॉर्टल एंड गॉड्सनो। ये 2 प्लेयर क्या इस फाइट को निकाल सकते हैं? वेल, अभी के लिए तो मुश्किल है। मुझे लगता है कि टीम
10 के लिए यहाँ पे होते हुए नजर आ रहा है। टीम बोंगचाई क्या इस फाइट के ऊपर कुछ शानदार जो चेंजेस है वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी के लिए एक प्लेयर डिसएडवांटेज के ऊपर वो देखने को मिल जरूर जा रहा है। एंड टीम नंबर 12 अगर कुछ शानदार ग्रेनेड्स का प्रयोग किया जाता है, कुछ भी यहाँ पे मोलोटॉव या फिर थ्रोएबल का प्रयोग किया जाता है, एक नॉक निकालने में अगर समर्थ होते हैं, तो टीम एक्सनॉर जी हाँ वो चार्ज इन करते हुए नजर आएंगे। टीम जाइप इसी बीच उनका भी जो फाइट है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। चलेंगे यहाँ पे फाइट की तरफ, जहाँ पे फाइट जब वो चलता हुआ नजर आ रहा था। इनफैक्ट आई बिलीव टीम नंबर 16 थे जिनके प्लेयर्स के लिए मुश्किलें बढ़े हैं। अलोन बॉयज से अलोन प्लेयर आपको सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। दैट इज डैड चैंप, डेड चैंप, जी हाँ जो भी आप बोल लीजिए, बट जो अभी के लिए डीवीएस का प्रहार है वो दोनों के दोनों प्लेयर करते हुए एक प्लेयर को डाउन करेंगे, क्या दूसरे प्लेयर को भी डाउन कर सकते हैं, ये देखने वाली चीज है। वेल ऑलरेडी जो डैमेज है वो जरूर दे चुके हैं। डॉट एचपी को वो प्लेयर आपको देखने के लिए मिल जरूर जाएंगे। डैड चैंप वो अभी के लिए आपको देखने के लिए मिलते हुए हील अप करना चाहेंगे। डीवीएस वर्सेस डीवीएस, एक बहुत ज्यादा शानदार फाइट, बट इस फाइट के ऊपर अभी के लिए मुझे लगता है कि डैड चैंप वो इस फाइट को निकाल सकता है। टीम नंबर 4 के प्लेयर को बहुत ज्यादा मुश्किलों में वो डालते हुए नजर आएंगे। एक एक करके प्लेयर्स के लिए मुश्किलें बनाएंगे। लास्ट प्लेयर देखने के लिए मिल जरूर जा रहे हैं डैड चैंप, जी हाँ उनके ऊपर जो शॉट का कनेक्शन वो देखने मिलेगा नहीं। एंड डैड चैंप जी हां वो एक 1v3 निकाल के लेके जाएंगे। टीम नंबर 4 को मैच से पूरी तरीके से एलिमिनेट आउट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन टीम नंबर 5 दैट इज नन अदर देन हमारे ग्लोरी ऑफिशियल, इसी के साथ उनको भी यहां पे मैच से पूरी तरीके से बाहर किया जाएगा। छठे पायदान पे उनका जो सफर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। टीम नंबर 9 दैट इज नन अदर देन आवर टीम एनएसजी, जी हाँ वो जो एक पिछले मैच में दूसरे पायदान तक आए थे, वो इस मैच में ट्राई कर रहे हैं कि चिकन डिनर तक का जो सफर है वो तय किया जाए। बट डैड चैंप क्या ही गेम प्ले दिखा चुके हैं, क्या ही फाइट को इन्होंने लिया था, क्या ही डीवीएस का प्रदर्शन। अगर आपको डीवीएस चलाना है तो कुछ इस तरीके से चलाओ, वरना मत ही चलाओ तो बेहतर है। डीवीएस एक शानदार वेपन, एक शानदार एक्शन, एक शानदार कहीं ना कहीं फाइट, बट चैंप अगर आप इस तरीके से ओपन एरियाज में आकर प्रोन आउट हो जाओगे, वो भी इतने बड़े सर्कल में, क्योंकि दूर से आप स्पॉट आउट हो सकते हो, सामने से टीम नंबर 13 के जो प्लेयर रहेंगे, जी हाँ आरवीटी की भी आपको इकलौते प्लेयर देखने के लिए मिल जरूर जा रहे हैं। वो सर्वाइवल गेम प्ले अभी के लिए दिखाते हुए टॉप 5 में ऑलरेडी अपने टीम को लेके आ चुके हैं। पिछले मैच में ही एक शानदार गेम प्ले उनकी तरफ से हम लोग को देखने के लिए मिला था। टॉप 5 पे इस बार आपको टीम नंबर 18 उनका भी आगमन देखने को मिलता हुआ। टीम अनस्टॉपेबल, जी हाँ उनका पिछला मैच खराब गया था, बट अगर आप अभी के लिए देखें तो कम बैक, जी हाँ वो इस बार देखने को मिल जरूर जा रहा है। एक शानदार जो स्प्रे है वो टीम नंबर 12 के प्लेयर्स के ऊपर करते हुए नजर आएंगे। टीम नंबर 12 से टीम एक्सनॉर वो 2 बैक टू बैक खराब मैचेस के बाद जिस तरीके से इस मैच के ऊपर वापसी कर चुके हैं, काबिल तारीफ प्रदर्शन, बट सर्कल के अभी के लिए बाहर। चलिए वो सर्कल के बाहर है। एंड मुझे लगता है कि एक ही व्हीकल उनके पास प्रेजेंट है, जिसके चलते उनके लिए सर्कल के ऊपर जा पाना भी विल बी अ लिटिल बिट ऑन द टफर साइड। बट टीम नंबर 13 के 20 वो अभी भी आपको सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका जो व्हीकल है वो कहीं ना कहीं स्पॉट डाउन है, एंड व्हीकल स्पॉट डाउन है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लेयर्स है वो तो पूरी तरीके से उनको अंदाजा है कि व्हीकल है मतलब प्लेयर है, व्हीकल फोड़ दो, प्लेयर यहाँ पे आगे नहीं जा पाएगा। अभी के लिए बात करना चाहे एनएसजी चिकन लिवे की, ठीक है लेट्स सी एनएसजी का क्या इस मैच में चिकन हो जाता है। लेकिन डेड चैंप वो अभी भी देखने के लिए मिल रहा है। इनफैक्ट वो अभी भी एक प्लेयर को एक टीम के ऊपर पूरी तरीके से भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से वो जो कहीं ना कहीं शॉट्स है वो लैंड अप करवाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ही एक बेहतर प्रदर्शन डेड चैंप की तरफ से देखने को मिलता हुआ। लेकिन इस बार ओ हो थोड़ा सा तो यहाँ पे चूक गए, बट चलिए जो एक एफर्ट था वो ऑन पॉइंट। एफर्ट में भाई मैं इनको 10 में 100 मार्क्स दे दूंगा। जिस तरीके से उस बंदे ने खेला है, जिस तरीके से वो गेम प्ले दिखाया, दैट इज बहुत शानदार। बट अगर आप एक चीज नोटिस करें, वो एक भी प्लेयर को फिनिश करने के लिए नहीं गए। दैट वाज द की थिंग कि आप जब प्लेयर को फिनिश करने के लिए नहीं जाते हैं तभी आप वो मुमकिन हो पाता है कि आप एक क्लच आउट कर दे। पर्सनली मैं मानू भाई, मैं ऐसा प्लेयर हूं जो किसी को मारेगा तो भाई उसको पूरा खा देगा एकदम। भाई मैं दूसरा देखता ही नहीं हूँ कि सामने से प्लेयर आ रहा है नहीं आ रहा है, जिसको मैं मारूंगा भाई मैं उसको डायरेक्ट एकदम भाई पूरा का पूरा एकदम फिनिश कर देता हूँ। इसीलिए मैं क्लच नहीं कर पाता, वो अलग बात है। बट चलिए इसी के साथ 20 टोपी वो लास्ट प्लेयर देखने को मिल जरूर जा रहे थे, लेकिन उनको भी यहाँ पे फिनिश कर दिया जाएगा। देखते ही देखते टीम नंबर 18 उनका भी जो सफर है इस मैच से पूरी तरीके से कंप्लीट होता हुआ। टीम एक्सनॉर वापसी भाई साहब क्या शानदार यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 प्लेयर मौजूद है, 10 फिनिश पॉइंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं। टोटल में बात कर ली जाएगा इस तो 2 टीम है, 7 प्लेयर आपको जीवित देखने के लिए मिल जाएंगे।
चलिए 7 प्लेयर वो देखने के लिए मिल जरूर से जरूर जाने वाले हैं। एंड इस 7 प्लेयर में से अभी के लिए डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि जो नेक्स्ट सर्कल है वो कहां पे जाएगा। क्या वो सर्कल थोड़ा सा ऊपरी हिस्सों की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है? ऊपरी हिस्सों की तरफ सर्कल जाएगा एंड दैट डज मीन एनएसजी, जी हाँ, उनके पास अभी के लिए एक चिकन डिनर का मौका जो कहीं ना कहीं उनको पिछले मैच में मिला नहीं था, वो इस मैच में उनको मिल जरूर सकता है। कोई भी गलती ना करे तो डेफिनेटली चिकन डिनर इज गोइंग टुवर्ड्स टीम एनएसजी। प्ले विथ प्रोनूब, एक शानदार गेस आपका। जी हाँ, आपने जो गेस किया है टीम एनएसजी शायद चिकन डिनर लेंगे, शायद से वो होता हम लोग को नजर आएगा। बट शायद ये सब जो वर्ड है इसका प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये अनसर्टेनिटी भरा गेम है। अगर 2 प्लेयर को नॉक कर दे आते साथ तो कहीं ना कहीं चिकन डिनर टीम एक्सनॉर के पास भी जा सकता है। बट मैं खुश हूं जिस तरीके से टीम एक्सनॉर वो 2 मैचेस के बाद अभी के लिए कम बैक जो है वो करते हुए नजर आए हैं। बहुत ही कम टीमें रहते हैं कि वो कम बैक पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये ग्रैंड फिनाले का स्टेज है। बट ये तो मैंने नहीं करना था, आई थिंक मैं थोड़ा ज्यादा ही तारीफ कर दिया। बट देखते देखते टीम एक्सनॉर के प्लेयर वो 2 प्लेयर डाउन हो जाएंगे। लास्ट प्लेयर आपको देखने के लिए मिल जरूर जाएंगे, दैट इज जेड प्लेट्स। जी हाँ, वो इकलौते प्लेयर है एंड आई थिंक उनको भी काफी इजीली स्पॉट आउट किया जा सकता है। इनफैक्ट राइट हैंड साइड से एक जो प्लेयर है वो आने का प्रयास जरूर कर चुके हैं, उनको यहाँ पे स्पॉट जरूर करेंगे बट अभी के लिए नॉक निकालने में असफल देखने को मिलते हुए। बट लेट्स सी जो जेड प्लेट्स है क्या उनके ऊपर शॉट्स आएगा। जी उनके ऊपर शॉट जरूर आ चुका है, बहुत ज्यादा ही लो ऑन एचपी वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एक भी बुलेट का कनेक्शन एंड टीम जो एक्सनॉर है उनके पास एक चिकन डिनर जाता हुआ आपको नजर आएगा। बट सामने जो प्लेयर है वो मुश्किलें जरूर बनाएंगे। जी हाँ, वो मुश्किलें बनाएंगे। इनफैक्ट जो स्प्रेज है वो देखने को मिलते हुए आते हुए एंड आई बिलीव जो प्लेयर है वो शायद से प्ले जोन के बाहर ही आपको टेक डाउन होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, अपना जो फिनिश पॉइंट है वो किसी को नहीं देंगे। इसी के साथ टीम एनएसजी तीसरे मैच में वो जो एक चिकन डिनर है वो करते हुए नजर आएंगे। 4 घंटा मेरा गेम के ऊपर हो चुका है। बट टीम एनएसजी बात करें अभी के लिए इनके मैच का, बात करें इनके अभी के लिए प्रदर्शन का, तो जी हाँ, वीकेंडी में वो एक ठंडे मौसम में चिकन डिनर अलग ही मजा है भाई, अलग ही मजा है। बट चिकन डिनर के साथ साथ अभी के लिए वो फिनिश पॉइंट देखे तो 9 फिनिश पॉइंट के साथ एक चिकन डिनर, मतलब टोटल में वो एक बार फिर से 24 पॉइंट का जो आंकड़ा है टच करते हुए नजर आएंगे। एंड बेशक एनएसजी पिछले मैच में दूसरे पायदान पे आए थे, तो इस मैच में चिकन डिनर के साथ वो थोड़ा सा और आपको क्लाइंब अप करते हुए नजर आएंगे। सेकेंड पोजीशन में इस बार वापसी होता हुआ टीम एक्सनॉर की टीम का, क्योंकि मैंने टीम एक्सनॉर को काफी जगहों पे देखा है, बहुत अच्छी एक टीम है। एंड अभी के लिए बात करें तो इनका जो एक शानदार वापसी है वो होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक ही मैच में वापसी हुआ है, बाकी बचे और 2 भी मैच, वो 2 मैच में भी और शानदार इनको खेलना पड़ेगा। अभी के लिए बात करना चाहे 109 के बारे में, तो जी हाँ, कुछ 10 फिनिशेस के साथ दूसरे पायदान पे वो आते हुए नजर आएंगे, मतलब टोटल में 22 पॉइंट। तीसरे पायदान पे जो टीम आई है आई बिलीव ये शायद से टीम अनस्टॉपेबल थी, मोस्ट प्रोबेबली, जी हाँ वही थे। उनके पास 1 फिनिश पॉइंट के साथ तीसरा पोजीशन। चौथे पायदान पे आपको देखने को मिलता है जो टीम, दैट इज टीम आरबीटी। अभी के लिए बात करें उनके पोजीशन के साथ, जो जो फिनिश पॉइंट आए दैट इज 8 फिनिश पॉइंट। पांचवें पायदान पे आपको देखने को मिल जाएंगे टीम डेड जेम की टीम। जी हाँ, जो भी टीम से ये खेल रहे थे मुझे अभी के लिए नाम थोड़ा सा याद नहीं है, बट जी हाँ, जिस तरीके से वो प्लेयर ने खेल के दिखाया इंडिविजुअल 5 फिनिशेस के साथ, एक एमवीपी प्लेयर है। जी हाँ, वो एक एमवीपी प्लेयर है। बट बाकी स्टैंडिंग गाइस वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वेल थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको सारे के सारे जो प्लेयर्स है उनका स्टैंडिंग। चाहे वो जो है मैं क्लासिक्स खेल सकूं। बट फिलहाल के लिए गाइस इसी के साथ हमारा जो आज का दिन का तीसरा मुकाबला है वो फिनिश हो चुका है। 5 मुकाबले के श्रृंखला में 3 हो चुके हैं खत्म, बचे बस 2। 2 मैचेस में जिन टीमों का भी उतना शानदार गेम प्ले नहीं गया है, अभी के लिए वो डाई हार्ड है मैचेस की, आपको उस 2 मैचेस के ऊपर बहुत शानदार कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज प्राइस पूल वो आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर जाता हुआ नजर आएगा। बट आई एम होपिंग कि यहाँ पे कुछ टीमें बहुत शानदार खेलेंगे। लास्ट जो 2 मैचेस है इसमें कुछ ऑल आउट अप्रोचेस भी देखने को मिल सकता है। बट गाइज अगर आपने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट, आपके भाई की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ शेयर, जी हाँ वो भी आप जरूर से जरूर कर दे। एंड यूडीजी ई स्पोर्ट्स एज वेल एज कैरी ई स्पोर्ट्स का जो डिस्कॉर्ड सर्वर है वो आप जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अलॉन्ग विद अदर सोशल लिंक्स। जाएं, ज्वाइन करें, मजा उठाइए। एंड टोटल में बात कर ली जाए जो भी अभी के लिए आने वाले टूर्नामेंट्स, आने वाले इवेंट्स है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। हम ही देखेंगे आपको एक बार फिर से, हम एक बार फिर से आपको देखेंगे तब भी। एंड मेक श्योर करेगी तब जो है आप यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी रहे। बट फिलहाल के लिए गाइस एक छोटा सा ब्रेक रहेगा, ब्रेक के उस पार आप सभी लोगों से मिलते हैं विथ द 4th मैच ऑफ टुडेज
UTG Esports presents Battlemania Season 1 powered by Carry Esports. कहने जाइए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद with the next match. Turn it all out, tell me every secret. Said that I care, ask do you mean it? It's been months since we've been okay. I'm putting off what's coming. Another night staring at the ceiling. You deserve to be alone, to be the one they're always thinking of. And I'm sorry I couldn't be there for you. I admit that I ignored it. You deserve to be alone. You deserve to be alone.
told me every secret. Said that I care, asked do you mean it? It's been months since we've been okay. I'm putting off what's coming. Another night staring at the ceiling. You desire to be alone, to be the one they're always thinking of. And I'm sorry I couldn't be there for you. I admit that I ignored it. You deserve to be alone. You deserve to be loved. You deserve to be Struggling 'cause I'm all you had. You should know that's all in your head. 'Cause it's been weeks and you're not okay. You're putting off what's coming. It's alright to be scared of being lonely. Don't you know that you deserve to be alone, to be the one they're always thinking of? And I'm sorry I couldn't be there for you. Admit that I ignored it. You deserve to be alone. You deserve to be loved. You deserve to be. You deserve to be loved. You deserve to be. जनता एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत डेफिनेटली बनता है। और इसी के साथ हमारा जो
अभी के लिए फिनाले के जो चौथा मैच है गाइस, जी हाँ वो सैनहॉक रहने वाला है। एंड डेफिनेटली अभी के लिए बात करना चाहे तो कुछ ही क्षणों में जो हमारा नेक्स्ट मैच है वो शुरू होता हुआ नजर आ जाएगा। देखना पड़ेगा कि क्या सिनेरियोज रहता है, बट फिलहाल के लिए गाइस ये है हमारा यूडीजी ई स्पोर्ट्स प्रेजेंस बैटलमेनिया सीजन 1 फाइनल पावर्ड बाय कैरी ई स्पोर्ट्स एंड 10,000 रुपीज जिसका प्राइज पूल टोटल में रहने वाला है। अभी के लिए कुछ शानदार जो 3 मैचेस है जी आप वो जरूर कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा मैच जो कि सैनहॉक का है वो कुछ ही क्षणों में आपके स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ये जो बेहतरीन टीम्स है वो आपको एक बार फिर से फाइट्स के ऊपर उतरते हुए नजर आएंगे। देखना पड़ेगा क्या सिनेरियोज देखने के लिए हमें मिलते हैं, कौन सी टीम का वो एक बेहतर कमबैक देखने को मिलता है या फिर एक कंसिस्टेंसी जो कुछ टीमों के जो है तरफ से देखने के लिए मिल जा रहा है अभी तक के लिए, वो फिलहाल के लिए एक बार फिर से हमारे सामने उपस्थित होगा। तो ये बहुत सारे सवाल जिसका जवाब जो है हमें जरूर से जरूर मिल जाएगा। मैप शेड्यूल, जी हाँ एक बार मैप शेड्यूल की तरफ आगे बढ़ेंगे जहाँ पे आपको भी बात करें तो ये मैच हमारा मैच 4th है जो कि सैनहॉक है। एंड डेफिनेटली सैनहॉक के साथ साथ काफी ज्यादा एक्शन जो है वो भी हमारे सामने आते हुए नजर आएंगे। एंड लास्ट मैच एरांगल का रहने वाला है। तो इसी के साथ गाइस 14 मैच वो कुछ ही क्षणों में आपको शुरू होता हुआ नजर आ जाएगा। तब तक के लिए क्या बता रहे हो भाई महेश भाई, क्या नाम है, शानदार नाम है। ओपी कास्टिंग, ओपी स्ट्रीम, ओपी मैनेजमेंट, यूडीजी स्पोर्ट्स, धन्यवाद मेरे भाई। कुछ इसी तरीके से जो सपोर्ट है वो बनाए रखे। तो जी हाँ जिस चीज का मैं बात कर रहा था कि अभी के लिए कुछ ही क्षणों में जो है जो मैच है वो शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए गाइस आप जो है थोड़े से जो है सैनहॉक के सिनेमैटिक्स के लुफ्त उठाइए। हम मिलते हैं एक बार मैच स्टार्ट हो जाए उसके साथ। तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का देवी और सज्जनों हमारे चौथे मैच के ऊपर। आज के दिन के पांचों मैचेस में ये हमारा आज का दिन का चौथा मैच रहने वाला है। एंड डेफिनेटली अभी के लिए बात करें सैनहॉक है तो आपको अनएक्सपेक्टेड एक्शन देखने के लिए मिलेगा। देखना यह है कि इस बारी में वो कौन सी टीम का लक जो है वो चमकता और नजर आता है, क्योंकि सैनहॉक में थोड़ा सा लक जरूर से जरूर चाहिए। इस बार अभी के लिए बात करेगा इस तो आपको 16 टीमें 64 प्लेयर जी हाँ वो आपको शानदार तरीके से इस मैच के ऊपर भी जुड़ते हुए नजर आ जरूर जाने वाले हैं। एंड टॉकिंग अबाउट फ्लाइट पाथ, तो जी हाँ वो फ्लाइट पाथ जो एकदम ही मैप का सीधा हाथिन से निकलता हुआ आपको नजर आएगा टू वर्ड्स डॉक्स एरिया। डेफिनेटली हाथिन में हमें 2 टीमें देखने को मिल रहा है जो कि टीम एनएफएस वो देखने को मिल जाएंगे। एक पहले मैच के बाद कहीं ना कहीं वो थोड़े से खो से चुके हैं। मुझे लग रहा है कि टीम एनएफएस का एक प्रदर्शन जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं वो उतना ज्यादा भी निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बट 2 ही मैचेस हैं एंड 2 मैचेस के साथ आपको वो कुछ शानदार जो है वो करके दिखाना पड़ेगा। बट इसी बीच टीम आरबीटी का जो फाइट है वो शुरू हो चुका है। बिलीव उनको नॉक किया गया तो उनको पूरी तरीके से फिनिश भी कर दिया जाएगा। एलजी बीस्ट वो आपको देखने के लिए मिलते हुए कैंप अल्फा पे ये जो फाइट है वो देखने के लिए मिल जरूर जा रहा है, जहां पे टीम नंबर 17 बहुत शानदार एक एग्रेसिव टीम, जी हाँ गोकू वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। टीम नंबर 17 से गोकू, ड्रैगन बॉल जी के गोकू इनका नाम है वो क्या क्रॉट है। एंड वो आगे बढ़ने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। एंड स्पेशली सैनहॉक में जो सरप्राइज अटैक है ना वो थोड़ा सा ज्यादा ही मिल जाता है कभी कभी प्लेयर्स को, तो वो इंश्योर करने के लिए धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। पर टीम ZYP इस बीच उनका भी जो फाइट है वो शुरू जरूर हो चुका है। कितने ज्यादा फाइट्स देखने को मिल रहे हैं। डेफिनेटली ये जो है लास्ट जो मैच है सेकेंड लास्ट मैच है, तो आप यहाँ पे जो भी टीम्स को उतना ज्यादा पॉइंट नहीं मिला है अभी के लिए
वो तो पूरी तरीके से फाइट्स के ऊपर रिलाई करेंगे। गोट फिलहाल के लिए उनको पीछे से स्पॉट किया जाएगा, इसी के साथ उनको पूरी तरीके से डाउन भी कर दिया जाएगा। सामने से टीम नंबर 8 के प्लेयर्स का ये जो स्प्लिट है वो तो अभी के लिए बेहतर देखने को मिल जरूर जा रहा है। टीम होप, इस बार वो जो होप है वो शायद से थोड़ा सा बेहतर, बट सामने ही एक प्लेयर प्रेजेंट है जिनको पूरी तरीके से वो कंफर्म भी जरूर कर सकते हैं। बट क्या वो ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं उस प्लेयर को? जी हाँ, ट्राई जरूर कर रहे थे बट उनको मिला नहीं। अभी के लिए उनके सामने टीम नंबर 4 दैट इज टीम ZYP ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी आपको देखने को मिल जरूर जाएंगे। ZYP के रेक्स वो इस एरिया की तरफ देखने को मिल जरूर जा रहा है। चुपचाप वो बैठे हुए हैं क्योंकि उनके पास मात्र 15 गोलियां हैं एंड 15 गोलियों के साथ तो वो फाइट ही नहीं ले पाएंगे ऑलरेडी। चलिए वो यहाँ पे पीछे जाने का प्रयास, अपने टीममेट्स का कवर के ऊपर जाने का जो प्रयास है वो जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे पीछे जाएंगे, पीछे यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े से बचते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन शॉट्स उनके ऊपर भी दिए जाएंगे। एंड अभी के लिए इस एरिया का तरफ 3 टीम में मौजूद है। टीम फैबुलस के प्लेयर भी आपको फाइट के ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो टीम फैबुलस के ऊपर भी एक बार जल्द से जल्द चलना पड़ेगा क्योंकि वो एक फिनिश पॉइंट तो निकाल चुके हैं। बाकी प्लेयर के ऊपर भी मुश्किल है वो बना सकते हैं। वेल लेट्स सी क्या सिनेरियो रहते हैं। एक प्लेयर वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इस एरिया का तो छुपे हुए थे, डेड थे वो प्लेयर जो कि अभी के लिए छुपे हुए थे, लेकिन फाइनली डेड। जी हाँ, वो बेहतरीन फाइट्स ले रहे हैं, एक एक करके प्लेयर्स के लिए जरूर मुश्किलें बना रहे हैं। एक बार फिर से वो फाइट के ऊपर आएंगे, लेकिन इस बार कैकरोट के यूएमपी के द्वारा उनको नॉक किया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक और जो टीम है वो भी इस एरिया की तरफ आपको देखने के लिए मिलते हुए नजर आएंगे। चलिए टीम नंबर 9 है, टीम एनएसजी है, जो कि अभी के लिए इस एरिया की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। टीम नंबर 17 के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा होता हुआ क्योंकि कैकरॉट ही इज द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग इन दिस एरिया। उनके जो बाकी खिलाड़ी हैं करण, वो दूसरे एरिया की तरफ भी देखने को मिल जरूर जा रहा है। एक मोलोटॉप वो करने का प्रयास उनकी तरफ से देखने को मिल जरूर जा रहा है, बट क्या वो बचे हुए रह सकते हैं? मुझे लगता है वो बचे हुए रहना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा रहेगा क्योंकि उनके ऊपर जो प्लेयर्स है वो आते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ टीम नंबर 17 वो अपने प्लेयर को लूज भी करेंगे। लास्ट प्लेयर आपको देखने को मिल जरूर जाएंगे, दैट इज करण। वो अपने टीम से पूरी तरीके से दूर जा चुके हैं क्योंकि उनको भी सरवाइव करना है। बट इसी बीच टीम एनएफएस, क्या उनका एलिमिनेशन हो चुका है? जी हां, टीम एनएफएस का एलिमिनेशन होता हुआ नजर आ रहा है। टीम ZYP ई स्पोर्ट्स के प्लेयर भी यहां पे फाइट्स के ऊपर जाएंगे। रेक्स इज द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग। कितने ज्यादा मुश्किलों से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं ये टीम। रेक्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं इस मोमेंट पे बच पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि एक ही छोटा सा पेड़ का, पतला सा पेड़ का कवर है, दूर से वो स्पॉट डाउन भी है। एंड अभी के लिए टीम नंबर 8 के प्लेयर उन्होंने स्पॉट नहीं किया है, अदरवाइज तो वो उनको फिनिश ही कर देते। टीम नंबर 8 के नाइट ओजी वो एक बेहतरीन ऑफ गार्ड एंगल पकड़े हुए हैं काफी देर से। टीम होप का होप इस मैच के ऊपर वो वापस थोड़ा थोड़ा आता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि 3 फिनिश पॉइंट उनके पास अभी के लिए जरूर आ चुके हैं। साथ ही साथ वो जो चारों के चारों प्लेयर है वो देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इस बार उनका जो मुकाबला है वो सामने स्वराज्य ई स्पोर्ट्स के साथ देखने के लिए मिल जरूर जाएगा। स्वराज्य ई स्पोर्ट्स, क्या उनके 4 प्लेयर मौजूद है? जी हाँ, अभी के लिए उनके 4 प्लेयर मौजूद, जहां पे आपको बीस्ट देखने के लिए मिलेंगे, वाइपर देखने को मिलेंगे, थंडर एंड साथ ही साथ ट्रिक्स्टर देखने के लिए मिलते हुए। एंड वो जो पर्टिकुलर प्लेयर है नाइट, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल भरा एक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है हर एक वो ओपोनेंट के प्लेयर्स के लिए, क्योंकि ये जो एंगल है मुझे नहीं लगता किसी भी प्लेयर को ये अंदाजा है कि इतने ऊपर भी प्लेयर चढ़ के बैठे हैं एंड वो एक डेडली सिचुएशन रह सकता है। टीम नंबर 18 इसी बीच उनका भी एक फिनिश पॉइंट हम लोग को देखने के लिए मिल जरूर जा रहा है। पिछले मैच में टॉप 4 आए थे टीम नंबर 18, टीम टॉप 3 आए थे। जी हाँ, टॉप 3 आए थे। टीम अनस्टॉपेबल एक फिनिश पॉइंट के साथ अभी के लिए देखने को मिलते हुए। सर्कल इस बार थोड़ा सा फिर से ईस्टर्न एरिया को ज्यादा फेवर करता हुआ नजर आएगा। वहीं पे टीम नंबर 16, जी हाँ, ये टीम थी डैड चैंप, जहां पे उनका शानदार कुछ क्लच हम लोगों को देखने को मिला था पिछले मैच में। अभी के लिए बूट कैंप के एरियाज के ऊपर अपने जो लूट है वो कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। 4 प्लेयर मौजूद है सामने, दूर दूर तक कोई टीम नहीं है तो मुश्किल तो नहीं होगा। टीम अर्थक्वेक, इस बीच उनका भी एक रोटेशन आपको देखने को मिल जाएगा। पैदल रोटेशन, पैदल यात्रा ही कर रहे हैं एंड सैनहॉक में फिलहाल के लिए काफी दिनों तक जो है पैदल ही सब यात्रा करते थे, बट अभी अगर आप देखें सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी जो है टीमें गाड़ी के ऊपर भी रिलाई ज्यादा से ज्यादा करते हैं क्योंकि एक तो फटाक से वो पहुंच जाते हैं, वो स्पीड ऑफ रोटेशन वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ वो जो एक ड्राइव बाय करने का सिचुएशन है वो बेहतर रहता है सैनहॉक में, क्योंकि आपको पता नहीं है किस पहाड़ी के किस एक पेड़ के पीछे प्लेयर है। तो कुछ टीमें यहाँ पे जरूर से जरूर रिलाई करते हैं गाड़ी के ऊपर, बट लेट्स सी टीम अर्थक्वेक के खिलाड़ी वो फिलहाल के लिए आपको पैदल यात्रा करते हुए नजर आएंगे। चलना चाहेंगे एक बार फिर से टीम नंबर 8 के प्लेयर्स के भी ऊपर, क्योंकि इन्हीं के ऊपर जो फाइट का एक एंगेजमेंट होने का चांस है। बट चलिए, थंडर को एक ग्रेनेड के साथ डाउन किया जाएगा। वाइपर वो आगे बढ़ते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, उनके पास एक बढ़िया एक डीबीएस जो है वो देखने को मिलता हुआ, बट इस बार
टीम नंबर 9 वो चार्ज इन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स सी टीम नंबर 6 जी, टीम नंबर 6 के प्लेयर के ऊपर जो है चार्ज इन किया जा रहा है। वाइपर फिलहाल के लिए एक प्लेयर को टेक डाउन कर जरूर सकते हैं, दूसरे प्लेयर के ऊपर भी जो शॉट है वो लेने का जो प्रयास है वो जरूर कर रहे हैं, बट क्या पॉसिबल हो पाएगा क्या नहीं। एक और प्लेयर को टेक डाउन करेंगे। वाइपर इज लिटरली किलिंग इन दिस मैच, जहां पे वो एक ऑलरेडी 1v2 जरूर निकाल चुके हैं। 1v3 क्या पॉसिबल हो पाएगा? जी हाँ, 1v3 भी यहाँ पे करके दिखा चुके हैं टीम नंबर 6 के प्लेयर। क्या ही शानदार गेम प्ले अभी के लिए उनके तरफ से देखने के लिए मिलता हुआ, जहां पे एक एक करके टीम होप को वो जो है मैच से पूरी तरीके से बाहर करते हुए नजर आएंगे। नाइटो जी वो अपने टीम से दूर प्रेजेंट थे, वो कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे थे कि अगर मेरे प्लेयर किसको नॉक करते हैं तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, बट उनके प्लेयर यहाँ पे नॉक हो जाएंगे, साथ ही साथ वो फिनिश भी होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, फिलहाल के लिए बात करेगा इस तो एक एक करके टीमों के लिए जो मुश्किलें हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। पे टीम फैब के करण, ही इज द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, वो अभी के लिए पूर्ण तरीके से ये जो फाइट है उसको अवॉइड आपको करते हुए नजर आ जाएंगे। टीम इक्वेशन उनके ऊपर भी चलना चाहेंगे क्योंकि उनके 2 प्लेयर ऑलरेडी आपको फिनिश होते हुए नजर आ रहे हैं, 2 ही प्लेयर आपको बचे हुए नजर आएंगे। चलिए 2 प्लेयर बचे हुए नजर आएंगे। ध्रुव उनको डाउन किया जाएगा। सामने टीम नंबर 10 के जो प्लेयर्स रहेंगे टीम बोंगचाई वो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन टीम इक्वेशन उनको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है क्योंकि वो 2 ही प्लेयर प्रेजेंट है एंड अगर एक भी प्लेयर नॉक हो जाते हैं तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से एक प्लेयर आने का जो प्रयास है वो जरूर कर रहा है, राइट हैंड साइड से भी जो प्लेयर है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ग्राउंड लेवल के ऊपर बात कर ली जाए तो अभी के लिए प्लेयर को स्पॉट करेंगे। जी हाँ, इतने तो पतले से पेड़ के ऊपर आप तो बच नहीं सकते। अभी के लिए जो सिचुएशन है पूरी तरीके से इवन होता हुआ नजर आ रहा है, दोनों टीमें से ही आपको एक एक खिलाड़ी देखने को मिल जरूर जाएगा। रेकर वो ओपन एरिया पे जाके फाइट लेने का एक गलती उनको जो है काफी ज्यादा पीछे धकेलता हुआ नजर आएगा ये फाइट में। वेव मीनवाइल वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, अपने डीबीएस के ऊपर रिलाई जरूर कर सकते हैं, बट इस बीच जो प्लेयर नॉक हुए थे उनको रिवाइवल मिल जरूर चुका है। चलिए वो जो लास्ट प्लेयर है टीम इक्वेशन टीम अर्थक्वेक के, उनके लिए बच पाना इस फाइट के ऊपर मुश्किल भरा बहुत ज्यादा है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से भी जो प्लेयर है वो इनक्लोज करते हुए नजर आ रहे हैं, राइट हैंड साइड से ऑलरेडी प्लेयर है एंड टीम नंबर 10 के जो प्लेयर नॉक हुए थे उनको तो रिवाइवल भी मिल चुका है। जी हाँ, रिवाइवल मिलेगा। वेव इज द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, वो प्रयास ही कर रहे हैं, दोनों तरफ से घिर जरूर चुके हैं एंड ये तो होना तय था। चलिए वो जो है पूरी तरीके से मैच से बाहर होंगे। 4 फिनिशर्स इसी के साथ टीम नंबर 10 दैट इज टीम बोंगचाइट के खाते में जाते हुए बड़े एक और टीम का एलिमिनेशन होता हुआ इस मैच में टीम खीर थी, आई बिलीव उनका भी यहाँ पे जो फाइट है वो शुरू हो चुका है। चलना एक बार चाहूंगा टीम नंबर 15 के प्लेयर्स की तरफ भी, वेल जो फाइट हुआ था वो खत्म भी हो चुका है। 4 फिनिशेस उनको मिल जरूर चुके हैं, जो प्लेयर नॉक थे उनको रिवाइवल में मिल जाएगा। 3 प्लेयर के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे, एक कैजुअलिटी एंड 3 के बदले एक ट्रेड। फेयर इनफ है। बट चलिए फिलहाल के लिए हम देखेंगे कि ये जो मैच में अभी के लिए 12 टीमें बचे हुए हैं उनमें से कौन सी टीम का सेकंड टर्नर होगा एंड डेफिनेटली ये सेकंड लास्ट मैच है तो जो टीम्स है उनका अग्रेसिव होना काफी ज्यादा लाजमी है क्योंकि अभी के लिए उतने ज्यादा मैचेस बचे हुए ही है नहीं है। ये 2 मैचेस में ही कुछ ना कुछ तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। बट कमिंग ऑन टू टीम एक्सनॉर, जी हाँ, वो एक 11 मोस्ट प्रोबेबली फिनिशेस का जो 10 फिनिशेस का जो पिछला मैच का एक दूसरा पायदान है वो देखने के लिए मिला था इनके पास, जिसके बाद अभी के लिए थोड़े से ये अपने से खुश होंगे। जो एक कमबैक का आशा कर रहे थे वो अभी के लिए मिलता हुआ, बट ये 2 मैचेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर टीमों के लिए। एंड कमिंग ऑन टू दिस अनदर टीम जो कि टीम रॉड, इस बार वो 4 प्लेयर्स के साथ आए थे, 4 फिनिश पॉइंट उनको मिले हैं, एक प्लेयर का कैजुअलिटी उनको भी मिलता हुआ। इस बार बात करें तो जेनॉस एफटीडब्ल्यू, साथ ही साथ क्या नाम है इनका, पनकाटा, क्या नाम है इनका, पैन, जो भी है मैं पैन ही बोल लेता हूं। तीसरे प्लेयर जी हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे रॉड के हुश, तो हुश एंड साथ ही साथ उनके बाकी 2 खिलाड़ी वो धीरे धीरे आपको फिर से एक बार सर्कल के ऊपर अप्रोच करते हुए नजर आ ही रहे। बट सामने टीम नंबर 16, जी हाँ, वो आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज नन अदर दैट टीम अलोन बॉयज से 4 प्लेयर वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एंड चारों के चारों प्लेयर पैराडाइज रिजॉर्ट में वो लूट कंप्लीट किए थे, जिसके बाद अभी के लिए वो भी धीरे धीरे आपको सर्कल के अंदर जो अंदरूनी हिस्से हैं उस एरिया की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। मीनवाइल टीम नंबर 6, जी हाँ, अभी के लिए ये मैच का शुरुआत उनका बेहतर हुआ है, बट कैपिटलाइज करना पड़ेगा। जो आपने शुरुआत बेहतर किया है उसको आखिरी तक लेके जाना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है ओवरऑल स्टैंडिंग में क्लाइंब अप कर सकते हैं क्योंकि 3 मैचेस हो चुके हैं, ये चौथा मैच है, आपके पास ज्यादा मौका है नहीं एंड आप अगर चैंपियन बनना चाहते हैं तो वो चैंपियन जो प्रदर्शन है वो आपको दिखाना भी पड़ेगा। लिटरली मैं अगर बोलूं कि मुझे लगता है कि कौन सी टीम अभी के लिए टॉप पे चल रहा है, मैं लिटरली बोलूं तो मुझे अभी के लिए
लगता है कि मैं भी गेस नहीं कर पाऊंगा कौन सा टीम का भी जो है टॉप वो जो पायदान है वो चल रहा है। हो सकता है कि टीम एनएसजी एक बार में उनका जो है एक टॉप पोजीशन अभी के लिए चलता हुआ नजर आ रहा है, बट दैट इज ऑल्सो 50% चांस मेरे तरफ से मैं बोलूंगा, क्योंकि बाकी कुछ टीमें भी बहुत शानदार खेल रहे हैं। अगर आप अभी के लिए देखें तो टीम एक्सनॉर उनका भी एक वापसी हो जरूर चुका है। वहीं पे टीम आरबीटी वो भी एक शानदार जो गेम प्ले वो दिखाए हैं, वो एक चिकन डिनर उनके पास गया, जिसके बाद तीसरे मैच में भी वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी आपको दिखाते हुए नजर आए। तो ये टीमों का जो गेम प्ले वो कहीं ना कहीं शानदार हम लोग को देखने के लिए मिला है। बस कहीं ना कहीं इंतजार है ये 2 मैचेस का, जिसके बाद आपको अनाउंस होता हुआ नजर आएगा कि वो चैंपियन टीम कौन सी है। बट फिलहाल के लिए टीम नंबर 6 के प्लेयर वो अपने लिए फिलहाल जो थोड़ा सा लूट है वो फिर से कंप्लीट करते हुए नजर आ रहा है। शायद से वो जो थोड़े से लूट्स के साथ साथ एक बार जो हील बैटल करने का चांस है वो भी हमें देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि सैनहॉक में कई बार हम देखते हैं कि हील बैटल प्लेयर करते हुए नजर आते हैं। एंड सैनहॉक में ये पॉसिबल है कि आप हील बैटल करके अपने टीम को काफी ऊपर लेके जा सकते हैं। बट इसी बीच टीम रॉड उनका फाइट चलता हुआ नजर आ जाएगा। वेल, 2 ही प्लेयर अभी के लिए बचे हुए रहेंगे, डैड चैंप रहेंगे जिनको नॉक किया जाएगा। वो स्टार प्लेयर पिछले मैच के जिनको अभी के लिए नॉक किया गया, बट जीनोस एफटीडब्ल्यू जिनको नॉक किया गया था उनको रिवाइवल मिल जरूर जा रहा है, लेकिन हुश वो अपने टीम से बहुत ज्यादा आगे चले गए थे, जिसके चलते उनको नॉक करने के साथ साथ वो जो रिवाइवल का प्रक्रिया है वो किसी भी हालत में मिलेगा नहीं। एंड अभी के लिए टीम नंबर 16 उनके पास अपना एक पहला फिनिश पॉइंट जाता हुआ। गाइस, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप जरूर से जरूर चैट सेक्शन के अंदर बताएं। पर टीम ग्लोरी इसी के साथ उनका भी जो फाइट है वो शुरू हो चुका है। 2 प्लेयर यहाँ पे टेक डाउन हो चुके हैं। मुश्किलें बहुत ज्यादा जो टीम को हम लोगों ने देखा है कि वो बैक टू बैक मैचेस में एक बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका अभी के लिए ये जो मैच है वो थोड़ा सा खराब होता हुआ नजर आ रहा है। डिवाइन जी हाँ, वो आपको देखने को मिलेंगे। वेल, अपने टीम से वो थोड़े से दूर है, एंड डेफिनेटली वो दूर रहे तभी उनके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ते हैं तो मुश्किलें यहाँ पे उनके लिए हो सकते हैं। एंड मुश्किल अगर ज्यादा हो गया तो वो पीछे भी यहाँ पे धकेले जा सकता है। इमॉर्टल इस बीच उनका एक ग्रेनेड आएगा जो कि एक प्लेयर को टेक डाउन जरूर से जरूर करेगा। लेट्स सी कहाँ ये ग्रेनेड गया है, एक बार मुझे देखने दो भाई। कहाँ पे ग्रेनेड गया है, क्या यहाँ पे ग्रेनेड गया? जी हाँ, यहीं पे गया है, यहीं पे ग्रेनेड गया है। टीम नंबर 10, जी हाँ, नन अदर देन दैट इज टीम बॉन्गचाइट। वो अभी के लिए आपको टीम नंबर 19 के अगेंस्ट से फाइट है वो इनिशिएट करते हुए नजर आएंगे। टीम फ्रेशर देखते ही देखते पूरी की पूरी जो टीम है वो इस वक्त बिखरते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ड्रेकन इज द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, इज द लोन प्लेयर इन दिस लॉबी। बट टीम नंबर 10, जी हाँ, वो इस फिनिश पॉइंट को भी अपने नाम करने का प्रयास कर रहे हैं। बट इमॉर्टल, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इतना ज्यादा कमिट नहीं करना है। अगर आप ज्यादा कमिट कर दोगे तो मुश्किल आपके लिए जरूर हो सकता है। बट टीम नंबर 9 उनका भी इस एरिया का तरफ आगमन देखने को मिलता है। टीम एनएसजी कंपाउंड टू कंपाउंड ओरिएंटेड में स्टेज का ये फाइट फिलहाल के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। टीम नंबर 13 का बात कर रहा हूं मेरे भाई। टीम नंबर 13 शायद से एलिमिनेट आउट हो चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट आउट हो गए थे। जी हाँ, वो एलिमिनेट आउट हो गए हैं अभी के लिए। टीम आरबीटी का ये मैच थोड़ा सा खराब गया है, तो बाकी टीमों के पास चांस है कि अगर किसी भी एक टीम का मैच खराब हो जाता है तो बाकी टीम वो यहाँ पे कैपिटलाइज कर सकते हैं। स्पेशली टीम एनएसजी, उनके पास एक बेहतर मौका है कि वो इस मैच को कुछ शानदार पॉइंट्स के साथ अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। इस बार अभी के लिए उनके पास 6 फिनिशेस देखने को मिल रहे हैं। यूट्यूब जेटली, जी हाँ, यूट्यूब जेटली आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ एथेक्स, मोहित, यश देखने को मिलते हुए। यश ही थे वो प्लेयर जो कि शानदार गेम प्ले दिखाए थे हमारे मोस्ट प्रोबेबली विकेंडी का गेम में। जी हाँ, पिछला वाला ही तो विकेंडी का गेम था, तो विकेंडी के गेम में शानदार गेम प्ले दिखाए थे उन्होंने। बट अभी के लिए 6 फिनिशेस के साथ वो देखने को मिलते हुए। सर्कल का ऑलरेडी एक अच्छा खासा जो कंट्रोल इनके पास है नहीं, क्योंकि इनको सर्कल के ऊपर जाना पड़ेगा, कुछ 200 मीटर का दूर का जो सफर है वो तय करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें ये टीम को, जो कि टीम नंबर 10 है, वो भी अभी आपको सर्कल के अंदर धीरे धीरे प्रवेश करती हुई नजर आ रही है। दैट इज नन अदर देन टीम बॉन्गचाइट। इनके भी पास एक मौका है कि इस मैच को वो बढ़िया तरीके से तब्दील कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, एक शानदार जो मैच है उसके साथ शानदार पॉइंट निकाल कर लेके जा सकते हैं। लेकिन सामने ही टीम एनएसजी के प्लेयर देखने को मिल रहे हैं। वेल, ध्रुव वो तो गन साउंड दे ही देंगे, एंड टीम एनएसजी के प्लेयर वो ग्रेनेड करते हुए नजर आ रहे हैं। बट लेट्स सी ग्रेनेड का क्या जो कनेक्शन है वो देखने को मिलेगा। ध्रुव वो बहुत ज्यादा क्लोज है, एंड सामने टीम एनएसजी के प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक प्लेयर डाउन करेंगे, दूसरे प्लेयर को डाउन करेंगे। जी हाँ, इसी के साथ टीम नंबर 10 के लिए मुश्किलें बनते हुए एक और प्लेयर सामने से आते हुए नजर आएंगे, जो कि रहने वाले क्रॉस ओपी। एक प्लेयर को भी डाउन नहीं कर पाएंगे। लास्ट प्लेयर आपको देखने को मिल जरूर जा रहा है, जो कि रहने वाले सेनपाई, एंड उनके पास अभी के लिए होल्ड करने के अलावा कोई भी डिसीजन नहीं।
आई बिलीव टीम नंबर 9 के जो प्लेयर है वो कूदम फांद करके कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं कि वो जो लास्ट प्लेयर है उनको भी यहाँ पे मैच से डाउन किया जाए। जेटली उनका एक ग्रेनेड, जी हाँ ग्रेनेड किया जाएगा एंड डेफिनेटली उनको जो बचे हुए थे लास्ट प्लेयर को वो उनको फिनिश भी कर देंगे। साथ ही साथ टीम नंबर 9 से अभी के लिए 10 फिनिशेस आपको देखने के लिए मिल जरूर से जरूर जाने वाले हैं। जी हाँ 10 फिनिशेस। टीम एनएसजी अभी के लिए तो उनका जो मैच है वो बहुत शानदार देखने के लिए मिलता हुआ। चले यहाँ पे देखे क्या सिनारियोज जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। ग्लोरी ऑफिशियल, जी हाँ ग्लोरी ऑफिशियल का यहाँ पे चैट के ऊपर पूरी तरीके से जो स्पैम है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। ग्लोरी ऑफिशियल के प्लेयर वेल दो प्लेयर हैं एंड दो प्लेयर अभी के लिए पूरी तरीके से अगर आप अभी के लिए देखें तो वो तैराकी लगा रहे, जी हाँ तैराकी लगा के सर्कल के ऊपर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं एंड आई बिलीव वो पहुंच जाएंगे। स्टेज 3 का सर्कल है, ज्यादा मुश्किल होगा नहीं। टीम नंबर 15 दैट इज टीम कीर्ति, अभी के लिए उनके पास 6 फिनिशेस देखने को मिलते हुए। टीम कीर्ति उनका फाइट अच्छा होता है, वो स्टार्टिंग में फाइट जरूर अच्छे रहते हैं लेकिन मिड स्टेज पे वो एलिमिनेट आउट हो जाते हैं। वो जो एक कन्वर्जन चाहिए रहता है वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं। बट चलिए एनएसजी के प्लेयर वो बैक टू बैक फाइट्स ले रहे हैं, बैक टू बैक फिनिशेस निकाल रहे हैं। अगर अभी के लिए देखें तो 11 फिनिशेस के साथ वो देखने के लिए मिल जरूर जाएंगे। बट अभी के लिए क्या इस मैच में भी एक चिकन डिनर टीम एनएसजी के पास जा पाएगा, क्योंकि पिछले मैच में ही तो उन्होंने एक चिकन डिनर निकाला था। इस बार भी वो जो प्लेयर्स हैं वो शानदार गेम प्ले दिखाते हुए नजर तो आ रहे हैं। बट टीम फैबुलस के करण वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। वो जो सर्वाइवल गेम है वो ऑन पॉइंट देखने को मिलते हुए इनके पास अगर थोड़े से और फर्स्ट एड्स आ जाते हैं तो शायद से वो जो हील बैटल करके अपने टीम के लिए जो पोजीशन पॉइंट है वो लेने में सक्षम हो सकते हैं। बट धीरे धीरे सर्कल का जो श्रिंकन है वो आता हुआ आपको नजर आ रहा है। बट लेट्स सी नेक्स्ट जो सर्कल है वो किस एरिया की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर सर्कल थोड़ा सा भी सेंट्रलाइज हो गया तो बहुत सारे टीमों के लिए फायदा हो सकता है। जहां पे टीम एक्सनॉर वो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन टीम एनएसजी वो एक बार फिर से फाइट लेते हुए एनएसजी के प्लेयर इस बार टारगेट करेंगे टीम नंबर 6 के प्लेयर को, दैट इज नन अदर देन टीम स्वराज्य ई स्पोर्ट्स। वाइपर उनको डाउन किया जाएगा, बीस्ट उनको भी डाउन करा जाएगा। लास्ट प्लेयर आपको स्टैंड करते हुए नजर आएंगे इस वक्त। लेट्स सी टीम एनएसजी वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। यूट्यूब जेटली वो भी आपको देखने को मिल जरूर जाएंगे एंड आई बिलीव वो जो लास्ट प्लेयर है जी हाँ उनको अंदाजा है कि वो लास्ट प्लेयर किस एरिया की तरफ देखने के लिए मिल जरूर जा रहा है। स्वराज्य ई स्पोर्ट्स का वो लास्ट प्लेयर देखने के लिए मिलेगा एंड डेफिनेटली स्वराज्य ई स्पोर्ट्स के वो जो लास्ट प्लेयर है वो नीचे जा चुके हैं। ट्रिक्स्टर रहने वाले वो प्लेयर जो कि अभी के लिए नीचे आपको देखने के लिए मिल जरूर जाएंगे। होल्ड जरूर कर रहे हैं लेकिन इनके ऊपर जंप किया जा सकता है। जेटली वो ट्राई कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से एक एंगल उनके ऊपर मिल जाए, एंगल उनको मिलेगा भी सही लेकिन जेटली वो गिर के नॉक हो सकता है। बट चलिए जेटली को जो टीम थे जी हाँ उनसे सामने से एक प्रहार आया था। बट ट्रिक्स्टर वो रहेंगे जो कि अपना जो डीबीएस का प्रदर्शन है वो बेहतरीन तरीके से दिखाते हुए नजर आएंगे। एक प्लेयर को नॉक करेंगे, उनको फिनिश करेंगे, दूसरे प्लेयर के ऊपर ग्रेनेड करने का जो प्रयास है वो जरूर कर रहे हैं। बट एक मोलोटॉव आएगा, मोलोटॉव से जो डैमेज है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनके ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है एंड सामने से लेफ्ट हैंड साइड से भी जो प्लेयर है वो चार्ज इन करते हुए नजर आएंगे एंड ट्रिक्स्टर के लिए मुश्किल जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ट्रिक्स्टर वो एक और प्लेयर को डाउन करेंगे, 1v2 वो जरूर निकाल चुके हैं। स्वराज्य ई स्पोर्ट्स का जो राज है वो अभी भी देखने के लिए मिलता हुआ, एक एक करके प्लेयर आ रहे हैं, एक एक करके प्लेयर जा रहे हैं। यही तो अभी के लिए जरूर से जरूर हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। टीम एनएसजी के लिए वो जो एक मुश्किल है, वो जो एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुश्किल है वो इस बार बनते हुए नजर आ रहा है टीम एसआरई के ट्रिक्स्टर। चलिए एक और प्लेयर आएंगे जिनके ऊपर कहीं ना कहीं जो शॉट है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। इनफैक्ट उनको ऊपर जो शॉट है वो दिया जाएगा लेकिन ये डीबीएस का जो प्रहार है इतने दूर पे आप नहीं कर सकते। डीबीएस का प्रहार से तो ये प्लेयर डाउन नहीं होंगे। बल चलिए डीबीएस के प्लेयर से प्लेयर डाउन नहीं होंगे। टीम स्वराज्य ई स्पोर्ट्स इसी के साथ उनका भी जो मैच है वो पूरी तरीके से समाप्त होता हुआ, लेकिन एफर्ट बहुत शानदार था। पर चलिए वो जो लास्ट मैच है अभी के लिए उसी के ऊपर निर्भर उनको रहना पड़ेगा। एक्सनॉर के प्लेयर के लिए भी थोड़े से मुश्किलें जरूर हो चुके हैं। एक प्लेयर को डायरेक्टली नॉक एंड फिनिश कर दिया गया एंड 3 ही प्लेयर अभी के लिए आपको बचे हुए नजर आएंगे। सर्कल जी वो एक बार सेंट्रलाइजर हो चुका है। भान के एरियाज के अकॉर्डिंग ये सर्कल हमें अभी के लिए देखने को मिलता है, जहां पर टीम नंबर 16 दैट इज नन अदर देन टीम अलोन बॉयज आपको देखने को मिल जाएंगे। टीम अलोन बॉयज क्या इस मैच में सामने टीम एक्सनॉर जो कि मौजूद है उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं? चांस है, 4 प्लेयर मौजूद है। वो एक बढ़िया कहीं ना कहीं ग्रेनेड अगर निकल जाता है उनसे ठिकाने पे गिरता है तो एक नॉक उनके लिए जरूर से जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। बट चलिए अभी के लिए जहां ग्रेनेड कर रहे हैं वहां पे कोई भी प्लेयर नहीं है तो कनेक्शन जी हाँ वो देखने के लिए मिलेगा नहीं। मीनवाइल टीम एक्सनॉर वो भी आपको ग्रेनेड ही करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों टीमें ही ग्रेनेड करने का जो प्रयास है वो बहुत शानदार अभी के लिए करते हुए एक दूसरे के ऊपर ग्रेनेड किया जा रहा है। ब्लेड्स वो अभी के लिए देखने को मिलेंगे। फ्लेम उनको काफी ज्यादा डैमेज दिया जाएगा, ग्रेनेड से वो उनको डाउन भी कर दिया जाएगा। दूसरे प्लेयर को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डैमेज दे चुके हैं। एक प्लेयर सामने थे जिनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लो एचपी करेंगे, डाउन करेंगे एंड साथ ही साथ टीम नंबर 16 दैट इज नन अदर देन अलोन बॉयज उनके लिए मुश्किलें बढ़ते हुए, लेकिन टीम
12 जो कि हमारे एक्सनॉर थे भाई, बहुत शानदार फाइट्स ले रहे थे, लेकिन कुछ गलतियां, कुछ खामियां जिसके चलते उनको यहाँ पे मैच से बाहर किया जाएगा। मीनवाइल टीम नंबर 16 दे विल लिव अप टू सी अनदर डे, एक शानदार फाइट, एंड अभी के लिए उनका भी जो मैच है वो अभी के लिए बरकरार रहेगा। बट इसी के साथ आई बिलीव अभी भी टीम एनएसजी की टीम वो आपको सर्कल के बाहर देखने को मिल जरूर जाएंगे। 2 ही प्लेयर रहने वाले, 15 फिनिश पॉइंट वो निकाल चुके हैं। bonkers amount of finish point is they what are having currently. बट एनएसजी मोहित, जी हाँ, वो अभी के लिए आपको आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ एथेक्स उनके साथ रहने वाला साथी खिलाड़ी, दोनों प्लेयर को सर्कल का जो एडवांटेज वो जरूर मिल चुका है। दूसरी तरफ आई बिलीव टीम कीर्ति, उनके पास 6 फिनिश पॉइंट देखने को मिलते हुए, अभी भी वो जो 3 प्लेयर का एडवांटेज है वो भी उनके पास मौजूद है। तो चांसेस ये भी है कि ये मैच टीम कीर्ति वो भी निकाल सकते हैं। बट ग्लोरी ऑफिशियल वो तैराकी लगाना, वो स्विम करके आना कहीं ना कहीं अभी के लिए उनके लिए फायदेमंद होता हुआ, क्योंकि सर्कल के ऊपर एक अच्छा खासा एंट्री उनको मिल जाएगा, जिससे वो जो है अपने लिए और भी कुछ फिनिश जो पोजीशन पॉइंट है, जी हाँ, वो अपने नाम कर सकते हैं। साथ ही साथ फिनिश पॉइंट वो भी अपने नाम कर जरूर सकते हैं। चलिए, एक प्लेयर को स्पॉट करेंगे एंड डेफिनेटली उनको डाउन भी करेंगे। रेज रहेंगे जो कि प्लेयर को स्पॉट करने के साथ इंस्टेंटली उनको टेक डाउन करते हुए नजर आएंगे। लेट्स सी, उन प्लेयर को फिनिश भी कर दिया जाएगा। ग्लोरी ऑफिशियल इसी के साथ अपना फिनिश पॉइंट का जो खाता वो खोलते नजर आएंगे। दूसरे प्लेयर को भी यहाँ पे स्पॉट करेंगे एंड जी हाँ, उनको भी फिनिश कर दिया जाएगा। रेज की तरफ से आएगा वो कुछ शॉट्स जिसके चलते उनको फिनिश किया जाएगा। लेकिन ये एक कहीं ना कहीं चीज है कि आपने फाइट तो ले लिया, बट साथ ही साथ अपना जो पोजीशन है वो भी रिवील आप करवा बैठे। एंड टीम नंबर 16 वो अभी के लिए आपके ऊपर पूरी तरीके से वो जो नजरें हैं वो गड़ाए रखने वाले हैं, क्योंकि वेयरहाउस का एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया से निकल पाना इट्स इटसेल्फ अ प्रीटी बिग टास्क। अभी के लिए अगर आप देखें तो किलर गॉड वो आपको देखने को मिल जरूर जा रहा है, स्मोक्स के सहारे बचे हुए हैं जरूर, बट टीम ग्लोरी क्या वो बच पाएंगे? मीनवाइल करण वो अभी भी सरवाइव करते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, उनका सर्वाइवल गेम तो बहुत शानदार है, लेकिन नाइट ओजी डैड चैम्प के द्वारा उनको यहाँ पे मैच से फिनिश किया जाएगा। 5 टीमें ही आपको जीवित देखने को मिल जरूर जा रहा है। ग्लोरी के प्लेयर, क्या उनको अंदाजा है कि उनके जस्ट ऊपर ही एक टीम मौजूद है? एंड शायद से उनको अंदाजा है जरूर, जी हाँ, उनको अंदाजा है कि उनके ऊपर एक प्लेयर, एक टीम पूरी तरीके से मौजूद है जो कि उनके लिए मुश्किलें जरूर बना सकते हैं। 2 प्लेयर दूसरे दो एरियाज को यहाँ पे जरूर से जरूर गाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ये 2 प्लेयर जो है 2 एरियाज की तरफ देखने को मिल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा डेडली हो सकता है टीम ग्लोरी के प्लेयर के लिए। बट रेक्स इस बीच टीम ZYP esports के प्लेयर जो बचे हुए थे उनको भी यहाँ पे मैच से पूरी तरीके से बाहर होना पड़ेगा। वी आर हैविंग ओनली आवर टॉप 4 टीम्स, जहां पे आपको इस बार देखने को मिल रहा है टीम एनएसजी, साथ ही साथ टीम फैबुलस। जी हाँ, वो पहले थे फैबुलस की टीम जो कि फाइट लेते, लेकिन अभी के लिए देखे तो वो फाइट के बाद जो सर्वाइवल गेम है वो पूरी तरीके से दिखाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। धीरे धीरे अपने टीम को टॉप 4 के ऊपर भी लेके आने में वो समर्थ हो चुके, लेकिन इस बार जो खोज है वो है सर्कल का, एंड शायद से वो सर्कल के ऊपर एक बार फिर से आपको पहुंचते हुए नजर भी आ जाएंगे। जी हाँ, सर्कल के ऊपर पहुंच जाएंगे टीम ग्लोरी। इस बार उनको निकलना पड़ेगा क्योंकि उनके पास सर्कल नहीं है, तो मुश्किल बहुत ज्यादा होने वाला है। लेकिन सामने ही टीम नंबर 16 के जो प्लेयर है वो सामने देखने को मिल रहे हैं, उनको नॉक नहीं किया है। आई बिलीव ये क्या डिसीजन है ये भाई साहब? अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो मुश्किल है। वेल आई बिलीव डिवाइन वो हील बैटल के लिए जा रहे हैं, जी हाँ, जिसके चलते वो अभी के लिए फाइट नहीं ले रहे। एक बेहतर उनका जो है एक डिसीजन है। बट एनएसजी की टीम, जी हाँ, उनका भी इस बीच आगमन होता आपको नजर आ जाएगा। बैक टू बैक वो चिकन डिनर के ऊपर एनएसजी जरूर से जरूर आपको आगे बढ़ते हुए नजर आ सकता है। मोहित वो देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ एथेक्स वो देखने को मिलेंगे। 2 प्लेयर ही मौजूद है, तो लेट्स सी ये जो 2 प्लेयर है क्या अपने टीम से वो चिकन डिनर एक बार फिर से निकाल सकते हैं। मीनवाइल फैब के करण रहेंगे वो जो कि अभी के लिए मोहित को टेक डाउन करेंगे, एंड डेफिनेटली वो जो चिकन डिनर में एक रास्ते का कांटा है वो यहाँ पे फैबुलस की टीम के करण जरूर बनते हुए नजर आ रहे हैं। 4 टीमें जीवित, 7 प्लेयर अभी के लिए बचे हुए इस मैच के ऊपर। टीम ग्लोरी उनका भी चांस है, साथ ही साथ टीम नंबर 16 उनका भी चांस है। डिवाइन फिलहाल के लिए वो अभी के लिए हील बैटल करते हुए नजर तो आ रहे हैं, बट उनको भी यहाँ पे सर्कल के ऊपर पहुंचना पड़ेगा। आई थिंक वो सर्कल के ऊपर पहुंच जाते अगर वो थोड़ा सा भी आगे बढ़ते, बट टीम नंबर 16 उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि बेचारा ऑप्टिक इज द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, वो अभी के लिए किसी ना किसी तरीके से बचे हुए है जरूर। ग्लोरी ऑफिशियल उनको भी यहाँ पे निकलना पड़ेगा, सर्कल के ऊपर पहुंचना पड़ेगा। 25 सेकंड यहाँ पे उनके पास समय रहने वाला है, बट मोहित क्या उनको रिवाइवल मिल सकता है? मीनवाइल सर्कल, जी हाँ, वो सर्कल के आप इतने बाहर हैं, ये रिवाइवल इनिशिएट करना ही टीम एनएसजी के लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत वाला सिचुएशन था। एथेक्स फिलहाल के लिए वो प्ले जोन के बाहर डाउन हो जाएंगे, एंड इसी बीच जो चिकन डिनर है आई बिलीव उसके कंटेंडर में सबसे ऊपर यहाँ पे फैब के करण हो सकते हैं। जी
जी हाँ, फैब के करण के पास वो चिकन डिनर जा सकता है। 5 फिनिशेस उनके पास देखने को मिल रहे हैं। डिवाइन वो भी अपना जो हील बैटल है वो कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑप्टेक वो आपको देखने को मिलेंगे एकमात्र प्लेयर सर्कल के ऊपर, एंड रेज जी हाँ, उनको स्पॉट करके मैच से बाहर कर दिया जाएगा। 3 टीमें जीवित, जहां पे टीम नंबर 16 के जो प्लेयर हैं उनके पास चिकन डिनर किया जाएगा या फिर टीम फैब के प्लेयर के पास चिकन डिनर जाएगा। और कितना मैच बाकी है सर? एक ही मैच बाकी है सर, और इसके बाद एक जो है हमारा लास्ट एरांगल रहने वाला है। जी हाँ, एरांगल से हम लोगों ने शुरू किया था, एरांगल में ही हम खत्म करेंगे। बट चलिए, फैब के करंट वो फाइनली निकल जरूर जाएंगे। ऑप्टेक क्या उन्होंने स्पॉट किया है? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने स्पॉट किया है। करण क्या वो एक चिकन डिनर के दावेदार के ऊपर वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लग तो रहा है कि वो चिकन डिनर बन जाएंगे। वेल, अभी के लिए 2 ही प्लेयर बचे हुए रहेंगे, क्योंकि डिवाइन वो भी फिनिश होते हुए नजर आएंगे सर्कल के बाहर। वी आर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 टीम्स, जहां पे फैबुलस का फैबुलस के जो करण है, जी हाँ, सर्वाइवल गेम प्ले के साथ साथ वो जो चिकन डिनर वो अपने नाम करेंगे। लेकिन ऑप्टेक उनको अभी के लिए ओपन में बढ़ना पड़ेगा। करण उनके पास एक कवर है। लेट्स सी कौन सी प्लेयर का वो जो चिकन डिनर हो सकता है। ग्रेनेड, जी हाँ, ग्रेनेड ऑन पॉइंट जाएगा। करण, व्हाट अ गेम, व्हाट अ सर्वाइवल, व्हाट अ मैच इट वाज, जहां पे लगा नहीं था कि टीम फैबुलस, जिनके 3 प्लेयर वो स्टार्टिंग में इनिशियल में फाइट लिए थे, जिसके बाद उनके 3 प्लेयर फिनिश हो गए, करण अकेले बचे हुए थे, लेकिन जिस तरीके से वो घसीट के अपने टीम को लेके आए, एक चिकन डिनर दिला के गए। एंड जी हाँ, ये सिचुएशंस ही रहते हैं जो कि आपको सिखाते हैं किस तरीके से आपको खेलना है। एंड वो सिचुएशंस में पूरी तरीके से करण जो है वो 10 ऑन 10 एक जो परफॉर्मेंस है वो डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। दूसरे पायदान पे आपको देखने को मिलेंगे टीम मोस्ट प्रोबब्ली दैट इज टीम नंबर 10 बोंगचाइट। तीसरे पायदान पे आपको टीम ग्लोरी ऑफिशियल देखने को मिलते हुए, जहां पे इनके पास 3 फिनिशेस ऑलरेडी। दूसरे पायदान पे जो टीम है, जी हाँ, उनका भी फिनिश पॉइंट का बात किया जाए तो 11 फिनिश पॉइंट उनके पास आपको जाता हुआ नजर आएगा। चौथे पायदान पे टीम एनएसजी बंको समट ऑफ फिनिशेस वो निकाल के लेके गए हैं इस मैच से, जहां पे टोटल में अभी के लिए बात करना चाहें तो 4 5 9 9 4 13 13 3 16 16 फिनिश पॉइंट उनके भी खाते में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ जीवाईपी ई स्पोर्ट्स, जी हाँ, एक भी फिनिश पॉइंट नहीं, लेकिन जो 5वां पायदान है वो उनके खाते में। टीम होप इस बार कहीं ना कहीं वो जो सर्वाइवल है वो किया गया था, छठे पायदान तक आने में अपने टीम से समर्थ हुए हैं 4 फिनिशेस के साथ। तो टीम कृति, जी हाँ, उनके पास अभी के लिए 7वें पायदान एंड 6 फिनिश पॉइंट के साथ वो देखने को मिलते हुए। बाकी का जो स्टैंडिंग है गाइस वो अपने स्क्रीन के ऊपर आप जरूर से जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बट एक्सनॉर वो अपने आप से थोड़ा सा खुश होंगे, थोड़ा सा नाखुश होंगे, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि पिछला मैच ही वो दूसरे पायदान तक आए थे एंड इस मैच में वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए। तो ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन हो चुका है। रिलाई करना पड़ेगा नेक्स्ट मैच के ऊपर। बट बढ़ेंगे हम हमारे स्टार ऑफ द प्लेयर के ऊपर, इस मैच के स्टार ऑफ द मैच के ऊपर। एंड स्टार ऑफ द मैच, जी हाँ, जो एमवीपी खिलाड़ी इस मैच से वो एनएसजी एथेक्स ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि 5 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। सबसे ज्यादा फिनिश पॉइंट का आंकड़ा इस मैच से वो टच आउट करते हुए नजर आएंगे। बेचारा ऑप्टिक विल बी द वन जो कि सबसे ज्यादा रिवाइवल, जी हाँ, 4 रेस्क्यू प्रोवाइड करेंगे। करण विल बी द वन जो कि लास्ट प्लेयर को इस मैच से बाहर करेंगे एंड एक चिकन डिनर, जी हाँ, वो दिलाएंगे अपने टीम को। तो 4 मैचेस हो चुके हैं, 5वां जो मैच है वो आपको कुछ ही देर बाद देखने को मिल जाएगा। बट ये चीज है कि कुछ टीमों का जो है वो गेम उतना शानदार नहीं गया है, जो कि नेक्स्ट मैच में कुछ ऐसे टीमों का गेम भी खराब कर सकते हैं जिनका मैच अभी के लिए बहुत शानदार गया है। तो ये पॉसिबिलिटीज है, ये चांसेस है, क्योंकि गेम है तो गेम के ऊपर वो हर एक चीज लाजमी है, वो आप कर ही सकते हैं। ये गेम का पार्ट है, आप टारगेट भी यहाँ पे जरूर कर सकते हैं। वेल, वी हैव टू सी कि क्या कोई टीम किसी टीम को टारगेट करते हैं। काफी टीमें अभी के लिए अच्छा खेल रही है, टीम एनएसजी अच्छा खेल रही है। साथ ही साथ बात कर ली जाए तो अभी के लिए टीम फैबुलस, उनका भी एक कमबैक होता हम लोग को नजर आ रहा है। साथ ही साथ अभी के लिए टीम बोंगचाइट वो भी एक बेहतर गेम प्ले दिखा के गए हैं। टीम ग्लोरियस ग्लोरी, जी हाँ, ग्लोरी ऑफिशियल वो भी एक शानदार गेम प्ले दिखा के गए हैं। तो मुश्किलें तो हैं भाई यहाँ पे बोल पाना कि कौन सी टीम का अभी के लिए वो जो एक पहला खिताब चल रहा है अभी तक। टॉप जो चार चार मैचेस हुए उनमें से टॉप पे कौन सी टीम है ये बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा है। बट फिलहाल के लिए गाइस जो लास्ट मैच है, जी हाँ, उसमें आपको कुछ टीमें ऑल आउट अप्रोच भी दिखाते हुए नजर आएंगी, क्योंकि लास्ट मैच है तो डेफिनेटली कुछ टीमें मारने के लिए जरूर जाएंगे, फिनिश के लिए जरूर से जरूर जाएंगे, क्योंकि दे नो जब पाने के लिए कुछ नहीं है तो जब खोने के लिए, जी हाँ, जब खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली वो जाएंगे आगे, वो बढ़ेंगे आगे। बट लेट्स सी, अभी के लिए इस मैच के साथ तो एक शानदार जो मैच है उसका खात्मा होते हुए नजर आ रहा है। बढ़ेंगे हम दूसरे मैच के ऊपर कुछ ही क्षणों में। जो नेक्स्ट मैच है वो नेक्स्ट मैच के ऊपर कुछ ही क्षणों में, जो कि आज के दिन का 5वां। एंड ये जो सीरीज है ये हमारे
यूडीजी ई स्पोर्ट्स प्रेजेंस बैटलमेनिया सीजन 1, वो सीजन 1 का लास्ट मैच होने वाला है। तो कहीं नहीं जाइए, स्ट्रीम के ऊपर बने रहिए। एंड जो भी यहाँ पे व्यूअर्स स्ट्रीम के ऊपर प्रेजेंट है, अगर आप अभी भी स्ट्रीम पे बने हैं, अगर आपने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्त, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर से जरूर कर दे। साथ ही साथ यूडीजी स्पोर्ट्स एंड कैरी स्पोर्ट्स का जो डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, along with the other social links। तो अगर आप चाहें जरूर से जरूर फॉलो करें फॉर द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इंफॉर्मेशन। बट फिलहाल के लिए गाइस हम लेते छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आप सभी लोगों से एक छोटे से ब्रेक के बाद with the next match and support your team, don't spread negativity। yes, जी हाँ भाई, जो भी हो आप अपने टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे टीम को नीचा दिखाओ, ये मत कीजिए, ये खराब लगता है देखने में भी। आप अपने टीम को सपोर्ट जरूर से जरूर करते जाइए। एंड बाकी टीमें भी जो है वो अपने अपने टीमों को सपोर्ट करेंगे, बट नेगेटिविटी वो किसी के ऊपर भी आप मत फैलाओ। नेगेटिविटी अगर फैलाओगे तो कहीं ना कहीं भगवान तो ऊपर है, वो तो देख ही रहा है। चलिए इसी के साथ गाइज हम जो है एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। एंड दिस वाज नॉट फॉर एनीवन गाइज, मैं ऐसे ही बोला कि नेगेटिविटी मत फैलाइए, किसी को भी नहीं, मैंने एड्रेस करके पर्टिकुलर नहीं बोला नेगेटिविटी मत फैलाइए, पॉजिटिविटी, जी हाँ पॉजिटिविटी, स्प्रेड द लव एंड पॉजिटिविटी इन द वर्ल्ड, क्योंकि कुछ ही दिन के लिए तो आए हैं भाई, पॉजिटिविटी एंड लव ही यहाँ पे फैलाते जाइए। बट फिलहाल के लिए गाइज लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आप सभी लोगों से एक छोटे से ब्रेक के बाद विद द नेक्स्ट मैच।
वेल गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूडीजी ई स्पोर्ट्स के ऊपर, जहां पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं नन अदर देन यूडीजी ई स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स बैटलमेनिया सीजन 1 फिनाले के मैचेस पावर्ड यू बाय कैरी ई स्पोर्ट्स। जी हां, ये जो है आज के दिन का एंड ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट का लास्ट मैच होने वाला है। यस, लेट्स गो टू आवर मैप शेड्यूल। एक बार फिर से दिखा दें आप सभी लोगों को मैप शेड्यूल किस तरीके से था एंड कहां तक हम पहुंचे हैं। हियर वी गो। तो अभी के लिए बात करेगा इस मैप शेड्यूल में 4 मैचेस ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुके हैं
जहाँ पे सैनहॉक का जो मैच था वो टीम फैबुलस ई स्पोर्ट्स ने अपने नाम किया विद अ बैंगर चिकन डिनर। बट ये जो है आपको लास्ट मैच देखने को मिलेगा एरांगल का एक बार फिर से। जी हाँ, हम एरांगल से शुरू किए थे तो एरांगल में खत्म करना बनता है। और इसी के साथ साथ एक बार फिर से वो जो प्राइज पूल है, जी हाँ, उसके ऊपर चलना चाहें तो 10,000 रुपीज INR, जी हाँ, टोटल प्राइज पूल है, जिसमें से जो टीम अभी के लिए ये पांचों मैचेस के बाद ओवरऑल फर्स्ट पे आएंगे उनको 5,000 रुपए मिलने वाले हैं। वहीं पे दूसरा जो आने वाले हैं दूसरे पायदान पे उनको मिलने वाले हैं 3,000 रुपए। तीसरे पायदान पे जो टीम आए हैं उनको यहाँ पे मिलेंगे कुछ 1,500 रुपए। MVP, जी हाँ, उनको भी यहाँ पे कुछ मिलेंगे 500 रुपए INR उनको मिलने वाला है। तो जी हाँ, थोड़ा सा इंतजार है गाइज, क्योंकि 10 बजे जो है, 10 बजे नहीं, 50 में, यस 9:50 में ही मैच जो है शुरू होने वाला है। तो कुछ ही क्षण में यहाँ पे जो मैच है वो शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए गाइज आप जो है मैप सिनेमैटिक्स का एक बार फिर से लुत्फ उठाइए, वो आखिरी बार के लिए, क्योंकि मैच जो है वो थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। तो डेफिनेटली लास्ट मैच है। लास्ट मैच में आपको पता है कि वो जो एक ऑल आउट अप्रोच है वो काफी टीमों की तरफ से हमें देखने के लिए मिलेगा। देखते हैं कौन सी टीम किस तरीके से अप्रोच रखती है, कौन सी टीम का क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलता है एंड क्या कुछ हमें होते हुए नजर आता है, क्योंकि लास्ट मैच ये इंपॉर्टेंट बहुत है। हमें कुछ ऐसा यहाँ पे मैच देखने के लिए मिला नहीं है आज के दिन में, जहां पे एक ही टीम ने हर मैच में डोमिनेट किया है। जी हाँ, जो मैं बोल रहा था कि हमें ऐसे मैचेस आज देखने के लिए मिले नहीं है कि जहाँ पे एक ही टीम ने पूरा का पूरा डोमिनेट कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि जो सिनेरियोज है किस तरीके से चलते हुए नजर आते हैं। बट फिलहाल के लिए गाइस आप जो है सिनेमैटिक्स के मजा उठाइए। मिलते हैं मैच शुरू होने के साथ। तो चलिए वापस आ चुके हैं हम आपके साथ। दिस इज योर कास्टर along with your journey, that is my name is DesDX aka सूर्यदीप।
जी हाँ, वो जो लास्ट मैच है उसका शुरुआत हो चुका है। एंड गाइस यहाँ पे मैं एक बार फिर से आप सभी लोग को बता दूं कि यहाँ पे स्ट्रीम जो है डिले रहता है, क्योंकि टूर्नामेंट है, तो ऑफ कोर्स वी नीड टू मेक श्योर दैट यहाँ पे डिले जो है वो काफी इनफ हो। ऑलरेडी बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2-2.5 मिनट के ऊपर का डिले है, तो आपको जो है स्ट्रीम है आपको थोड़ा देरी के साथ पहुंचता है, तो आप इतना चिंतित ना रहिए। बट फिलहाल के लिए गाइस ये प्लेयर्स जो है इनको चिंतित रहने का जरूरत है, क्योंकि ये लास्ट मैच है। 240 टीमें वो सफर शुरू किए थे इस टूर्नामेंट में, जिसके बाद कुछ 18-16 टीमें, जी हाँ 16 टीमें ही आपको देखने के लिए मिले थे टोटल इस फाइनाले में आते हुए। एंड इस बार वो 16 टीमों में से 15 टीमें खेल रही है, तो शायद से एक टीम को कुछ मुश्किल हो चुका है। बट फिलहाल के लिए जो एक फ्लाइट पाथ है वो आपको देखने के लिए मिलता हुआ नूर नॉइज के जस्ट ऊपर मिल्टा पावर के एरिया से शुरू होता हुआ एंड ये जाएगा टुवर्ड शूटिंग रेंज। तो डेफिनेटली जो फ्लाइट पाथ है गाइस वो ईस्टर्न एरिया को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। एंड काफी टीमें अभी के लिए ऐसे भी रहेंगे जो कि एक इनिशियल ही फाइट लेना चाहेंगे, क्योंकि टीम रॉड एक ऐसी टीम है जिनका भी यहाँ पे कुछ आज के दिन में उतना शानदार प्रदर्शन देखने के लिए मिला नहीं है। तो वो कुछ टीम्स हैं जिनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कुछ उनको मिले या फिर ना मिले, बट देखना ये है कि कौन सी टीम का गेम यहाँ पे खराब कर सकते हैं वो कुछ टीमें। इस वक्त में टीम आपको जो है देखने को मिल रहे हैं, टीम अर्थक्वेक वो आपको देखने को मिलेंगे मिल्टा के एरियाज की तरफ आते हुए। क्या यहाँ पे चल रहा है हलचल चैट के ऊपर? एनीवन कैलकुलेटिंग पॉइंट्स, हु इज विनिंग? आई डोंट नो मेरे भाई। अंशुल शर्मा मेरे भाई, मेरे को खुद नहीं पता कि कौन से टीम अभी के लिए जीत रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ही कुछ यहाँ पे एक अलग सा मैचेस चल रहा है। क्योंकि अगर आप पहले देखें तो किसी को जो एक पहला मैच का अगर किसी का अच्छा हुआ है तो दूसरा मैच उनका खराब गया है, तो ये चीज आज देखने को मिला है। बट इसी बीच टीम रॉड्स के एक प्लेयर को मैच से बाहर किया जाएगा। टीम अर्थक्वेक किसी के साथ वो दूसरे प्लेयर को भी बाहर करेंगे एंड टीम अर्थक्वेक के भी एक प्लेयर को कहीं ना कहीं डाउन किया गया है। सामने से एक प्लेयर जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक 1v1 का फाइट रहने वाला है एंड 1v1 के फाइट के ऊपर एक शॉट जो वो कनेक्शन जरूर बनाया था, बट दूसरा शॉट का जो कनेक्शन वो देखने को मिलेगा नहीं। टीम रॉड्स वो इस मैच में पूरी तरीके से एलिमिनेट आउट हो जाएंगे 15वें पायदान पे। टीम अर्थक्वेक उनको फिलहाल के लिए 4 फिनिश पॉइंट मिलते हुए एंड एक भी कोई भी कैजुअलिटी नहीं। इसी के साथ टीम जेवाईपी गाइस, जी हाँ उनका भी कहीं ना कहीं जो फाइट है वो शुरू हो चुका है। देखना पड़ेगा टीम जेवाईपी इस बार वो जो है आपको याशना के एरियाज की तरफ आते हुए नजर आ रहा है। याशना के एरियाज की तरफ देखने को मिल जा रहा है। रेक्स अगर आप उनका पोजीशन देखें तो उतरे ही थे इस एरिया की तरफ, वो अभी भी उसी एरिया के छत के ऊपर देखने को मिल जरूर जा रहा है। डेफिनेटली होल्ड करने का प्रयास रहेगा। सामने टीम एनएफएस, एक टीम जिनसे मैं थोड़ा सा नाखुश हूं, क्योंकि अगर आप पहला मैच में चिकन डिनर निकालते हैं और उसके बाद के आप तीन के तीनों मैचेस में कहीं ना कहीं वो एवरेज सा गेम प्ले दिखाते हैं, तो मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो कि आपको ठीक करने का जरूरत है। एक ऐसी टीम जो कि पहला मैच में चिकन डिनर निकालते टीम एनएफएस, बाकी 3 मैचेस काफी ज्यादा ही साधारण उनके देखने को मिले, बट इस बार अगर लास्ट मैच भी वो अच्छा कर देते हैं तो मैं मानता हूं कि उनके पास चांसेस है वो एक कमबैक वो जरूर कर सकता है। जाइब के रेक्स आपको देखने को मिल जरूर जाएंगे, वो फिलहाल के लिए जा चुके हैं अपने प्लेयर के पास है। जी हाँ एक गन भी उनको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उनका हेल्थ देखें तो जी हाँ वो बहुत ज्यादा लो एचपी देखने को मिलते हुए। एक और टीम जो कि इसी एरिया की तरफ आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं वो रहेंगे टीम नंबर 16, दैट इज नन अदर देन टीम अलोन बॉयज। जी हाँ टीम अलोन बॉयज ये रहने वाले हैं। 4 प्लेयर ये भी मौजूद हैं याशना के एरियाज की तरफ फिलहाल के लिए देखने को मिलते हैं। बट टीम ग्लोरी ऑफिशियल, क्या है दिन रहा है आज के दिन में। आज अभी के लिए बात करें तो उनके तेरे तो क्या वो ऑफलाइन है? जी हाँ वो ऑफलाइन है एंड बाकी 3 प्लेयर वो मौजूद है। प्रजित जहाँ पे एक शानदार वो प्लेयर है एंड अपने टीम से हर बार कहीं ना कहीं कुछ शानदार जो पॉइंट्स है वो निकाल कर लेके जाने में सक्षम भी हुए हैं। बट 3 प्लेयर अभी के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि टेनेटो वो शायद से कुछ देर तक ऑफलाइन रहेंगे और उसके बाद आ जाएंगे मुझे लगता है। जी हाँ वो आ जाएंगे, शायद से वो आ भी चुके हैं एंड चलिए आने साथ साथ वो जो लूट है वो कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए तो जॉर्जपुल नॉर्दर्न सिटी में दे आर द ओनली टीम, तो कोई भी मुश्किलात उनको फेस नहीं करना पड़ेगा, बट मुश्किलें बढ़ सकते हैं जो टीमों के गाइज उनके ऊपर मैं आप सभी को एक बार लेके जाना चाहता हूं, जो कि इस बार टीम नंबर 19 दैट इज टीम फ्रेशर वो रहने वाले हैं। एंड एक बार फिर से ये दोनों टीमों का जो कहीं ना कहीं ड्रॉप क्लैश है उन लोगों को देखने को मिला था पहले वाले एरांगल में भी,
इस बारे में भी अगर बात करें तो एक बार फिर से वो ड्रॉप क्लच देखने को मिलता है, जहां पे टीम एनएसजी अभी के लिए उनको जो है इस मैच में अगर यहां पे थोड़ा सा भी इधर उधर लेफ्ट राइट परफॉर्मेंस हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा कुछ चेंज कर सकता है ओवरऑल स्टैंडिंग में। ये ध्यान में रख के ही ये जो फाइट है उसको कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। यूट्यूब जेटली वो देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ एनएसजी के प्रथम मोहित यशु, आई बिलीव यशु, जी हाँ यशु इस बार देखने को मिल रहा है, यश नहीं खेल रहे, बट टीम नंबर 19 उनके लिए भी ये जो मैच है वो एक डू और डाई मैच है। फ्रेशर की टीम ये देखने के लिए मिल जरूर जा रहा है, जहां पे 4 प्लेयर मौजूद है। बट चलिए वो जो शॉट्स है वो देखने के लिए मिलते हुए, जहां पे यशु वो बैकएंड में जो एक एरियाज है जहां उसके ऊपर चढ़े हुए जरूर है, डबल स्टोरी के ऊपर वो चढ़े हुए शॉट देते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो शॉट है उसका कनेक्शन देखने को मिल जरूर जाएगा। अंकित को यहाँ पे डॉट एचपी किया जाएगा। हेल जो है वो जल्द से जल्द इनको करना पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल यहाँ पे बढ़ जरूर सकते हैं। टीम नंबर 9 जी हाँ वो फाइट पे ही पूरी तरीके से अभी के लिए रिलाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है कि फिलहाल के लिए उनके ऊपर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है कि जी हाँ ये फाइट को हम निकाल सकते हैं। बट अभी के लिए जेटली वो जो गाड़ी है वो जो फिलहाल के लिए ये है एक डोर है, वो डोर को फिलहाल के लिए फोड़ जरूर देंगे। लेकिन टीम फैब के प्लेयर्स के लिए मुश्किलें बन चुके हैं। अभी के लिए अभी उनके प्लेयर के ऊपर गाड़ी रैन ओवर से उनके 2 प्लेयर को मैच से बाहर किया जाएगा। 2 ही प्लेयर बचे हुए रहेंगे। जी हाँ करण जो कि स्टार ऑफ द प्लेयर थे, जी हाँ स्टार थे पिछले मैच के, वो अभी के लिए देखें तो पूरी तरीके से इस मैच से बाहर जाते हुए नजर आएंगे। इस बार वो यश रहेंगे और साथ ही साथ कैकरॉड रहेंगे। ये दोनों प्लेयर को ही इस मैच के ऊपर कुछ ना कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बेहतर करना पड़ेगा। बट क्या वो पॉसिबिलिटीज एक रियलिटी में कन्वर्ट होगा या फिर नहीं, विल हैव टू सी। बट इस बीच टीम जीवाईपी जीप की जो टीम है वो भी आपको चार्जिंग करती हुई नजर आ रही है। आई बिलीव यहाँ पे एक ना एक प्लेयर प्रेजेंट है। चलिए एक प्लेयर प्रेजेंट है जो कि आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ एनएफएस के गॉड ओपी उनको यहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा। टीम एनएफएस के लिए मुश्किलें एक बार फिर से बहुत ज्यादा। वो एक ही मैच चिकन डिनर गया था, बट उसके बाद हर एक मैच में बहुत ज्यादा साधारण परफॉर्मेंस। अभी के लिए एक बार फिर से बात करें, उनके जो 3 प्लेयर है वो मैच से बाहर जा चुके हैं। इकलौते प्लेयर जेनिक्स वो बचे हुए रहेंगे। चलिए जेनिक्स इज द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, इज द लोन प्लेयर इन दिस लॉबी। कितने देर तक वो बचे रह सकते हैं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मुश्किल तो है, इकलौते प्लेयर है, मुश्किल बहुत ज्यादा है। उनके ऊपर अभी के लिए टीम नंबर 16 के जो प्लेयर है वो भी आपको चार्ज इन करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ टीम नंबर 16 के प्लेयर वो चार्ज इन करने का जो प्रयास है वो जरूर कर सकते हैं। एक ही प्लेयर है तो चार्ज इन तो यहाँ पे करना लाजमी है। टीम लोन बॉयज वो चारों प्लेयर्स एकजुट होने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं वो जो प्लेयर एक बचे हुए टीम नंबर 3 से उनको यहाँ पे मैच से बाहर करने का प्रयास वो करते हुए नजर आएंगे जेनेक्स। मीनवाइल उनके ऊपर पूरी की पूरी टीम का जो जिम्मेदारी है वो इस बार आपको देखने को मिलता हुआ फ्लेम, जी हाँ उनको नॉक किया जाएगा। बट टीम नंबर 11 टीम नंबर 16 के प्लेयर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते नजर आएंगे। एक प्लेयर को यहाँ पे टेक डाउन करने का ट्राई कर रहे थे लेकिन पॉसिबल होगा नहीं। टीम नेफेरियस स्पोर्ट्स एक बार फिर से वो जो है एक खराब प्रदर्शन के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन टीम नंबर 16 के फ्लेम वो एक ऑफ एंगल क्रिएट करने का प्रयास किया गया था, बट उनको मैच से फिलहाल के लिए तो थोड़े से मुश्किलों में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन टीम आरबीटी ये टीम भी बहुत शानदार खेले थे, लेकिन वही चीजें हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि एक मैच बढ़िया तो बाकी मैचेस कहीं ना कहीं थोड़े से साधारण, वो भी के लिए देखने को मिलते हुए रियल। एंड लास्टली बिलीव द लास्ट 2 प्लेयर आर स्टैंडिंग इन दिस लॉबी राइट नाउ। जीवाईपी के प्लेयर एक बार फिर से वो आपको फाइट के ऊपर जाते हुए नजर आ जाएंगे, जहां पे फेट उनको नॉक किया गया है। एंड ये तो होना तय था कि टीम्स जो है ज्यादा से ज्यादा फाइट लेंगे, क्योंकि लास्ट मैच है, जिनके पास पाने के लिए कुछ नहीं है वो फिलहाल के लिए कुछ भी यहाँ पे डरते हुए नजर नहीं आएंगे, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर ही आएंगे। बट इसी बीच एनएसजी के प्लेयर, जी हाँ उनको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मुश्किलों में देखने को मिल रहे हैं, शायद से नहीं। वो जो 2 फिनिश पॉइंट है वो अपने नाम जरूर कर चुके हैं, बट साथ ही साथ उनके सामने बाकी जो प्लेयर है टीम नंबर 19 के वो भी आपको मौजूद अभी के लिए देखने को मिल जाएंगे। आरबीटी के प्लेयर्स के लिए मुश्किलें और ज्यादा हो चुके हैं। इनफैक्ट आरबीटी क्या उनका एलिमिनेशन हो चुका है? जी हाँ आरबीटी का एलिमिनेशन होता हुआ एक और बहुत बड़ा नाम, लेकिन एक परफॉर्मेंस जो चाहिए था वो तो फिलहाल के लिए देखने को मिला नहीं है। बट इसी बीच टीम होप उनका भी कहीं ना कहीं जो फाइट है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। टीम होप के जो प्लेयर्स हैं वो भी आपको मुश्किलों में देखने के लिए मिल जरूर जा रहे हैं, क्योंकि उनके 2 प्लेयर अभी के लिए नॉक है। सामने टीम नंबर 6 के प्लेयर के ऊपर डायरेक्ट एक चार्ज इन किया जाएगा। टीम नंबर 6 के जो प्लेयर रहेंगे, जी हां गाइस, उनसे भी एक लौते प्लेयर बचे हुए वाइपर एंड उनका एचपी पूरी तरीके से लोअर डाउन है। एक भी बुलेट का कनेक्शन, वेल चलिए वो जो व्हीकल है वो व्हीकल ब्लास्ट डाउन करने का जो प्रयास है वो जरूर किया जा रहा है। एक प्लेयर सामने से आएंगे जिनको यहाँ पे कहीं ना कहीं टेक डाउन करने का प्रयास किया गया था, बट नहीं वो पॉसिबल होगा नहीं, गाड़ी चढ़ा दिया जाएगा। साथ ही साथ टीम नंबर 6 उनका भी सफर इस मैच में इतना ही तक।
12वें पायदान पे मैच से बाहर होंगे एंड टीम होप 4 फिनिशेस के साथ अभी के लिए वो जो चारों के चारों खिलाड़ी है वो आपको मौजूद देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस बार टीम नंबर 17 दैट इज नन अदर देन टीम अर्थक्वेक, जी हाँ, उनके प्लेयर आपको देखने को मिलते हुए सामने से टीम नंबर 15 के प्लेयर्स के लिए मुश्किल बनाएंगे। टीम नंबर 15 अभी के अभी उनके चारों प्लेयर बचे थे, लेकिन अभी के अभी उनके जो लास्ट प्लेयर है वो बचते हुए नजर आएंगे। राउडी उनको भी मैच से बाहर करेंगे। टीम नंबर 15 दैट इज टीम कीर्ति, उनका भी जो सफर है 11वें पायदान तक इस मैच में फिलहाल के लिए गाइस 10 टीमें जीवित। कितने ज्यादा फाइट हुए अगर आप देखें, बहुत ज्यादा इनफैक्ट फाइट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतने फाइट्स हो रहे हैं, यहाँ पे भी फाइट हो रहे हैं, वहां पे भी फाइट हो रहे हैं, कहां कहां फाइट हो रहे हैं। एक एक प्लेयर को यहाँ पे मुश्किलों में जो वो डाला जा रहा है। मीनवाइल आई बिलीव जो प्लेयर रहेंगे फ्रॉम टीम ईक्यू वो फाइनली मैनेज कर चुके हैं। जी हाँ, वो आए थे वो फाइट लेने के लिए एंड फाइट लेके वो जाएंगे भी सही। 12 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं, लेकिन अभी के लिए एक मुश्किल वाला सिचुएशन ये भी है कि 2 प्लेयर ऑलरेडी मैच से बाहर जा चुके हैं। बट इसी बीच टीम एनएसजी उनका भी एक फाइट जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। जो टीमें उनके सामने देखने को मिल रहे थे उनको वो परास्त करेंगे एंड दैट वाज टीम नंबर 19 टीम फ्रेशर, उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है। कितने ज्यादा फाइट्स हम लोगों ने इनिशियली इस मैच में देख लिया है, इतने ज्यादा फाइट्स देख लिया है कि 8 ही टीमें वो आपको इस मैच के ऊपर अभी के लिए बचे हुए नजर आएंगे। एंड टीम ग्लोरी ऑफिशियल कहाँ पे वो लूट रहे हैं मैं एक बार देखूं तो वो तो अभी के लिए इस फाइट से इस पूरी की पूरी लॉबी से वाकिफ है जरूर एंड वो अभी के लिए अपने लूट्स को ही प्रायोरिटाइज करते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, वो टोकन एक्सचेंज किया जा रहा है। मीनवाइल एक्सनॉर की टीम उनका भी फाइट हो चुका है। जी हाँ, उनका भी फाइट हो चुका है। हाँ, ये क्या हो चुका है लॉबी को, इतने ज्यादा फाइट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फाइट होगा, बट इतने ज्यादा फाइट जहां पे एक एक टीम के लिए जो फाइट्स है वो एंगेज होते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सनॉर के मिकी वो डेक्स्टर ओजी के ऊपर एक चार्ज इन करने का जो प्रयास है वो जरूर करते हुए नजर आ रहा है इस वक्त। टीम नंबर 9, जी हाँ, टीम नंबर 8 जो कि नन अदर देन हमारे टीम होप है। जी हाँ, उनके लिए होप जो है वो थोड़ा सा सीमित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आई बिलीव उनके प्लेयर जो है वो बहुत ज्यादा कम बचे हुए, एक प्लेयर बचे हुए थे एंड उनको भी मैच से बाहर करेंगे। 7 टीमें 21 प्लेयर टीम जीवाईपी अभी के लिए क्या वो भी फाइट के लिए जाएंगे? आप देखें गाइस, हम लोगों ने कुछ ही क्षण पहले मैच को स्टार्ट किया है एंड 7 टीमें बचे हुए हैं। तो मैं क्या ही बोलूं, लास्ट का मैच हर बार कुछ इसी तरीके से देखने को मिलता है कि टीम्स जिनको पता है कि जी हाँ हमारा हो चुका है, हमारा उतना कुछ तो अभी के लिए होने नहीं वाला है, वो पूरी तरीके से फाइट के ऊपर रिलाई करते हैं। अभी के लिए वो फाइट के ऊपर रिलायबिलिटी देखने को मिलता हुआ काफी टीमों की तरफ से। बट जी हाँ, ये एक टूर्नामेंट है महज एंड ये टूर्नामेंट में अगर आप उतने शानदार नहीं कर पाए तो नाखुश होने का जो जरूरत है नहीं। अब बस जो भी गलतियां की है इस टूर्नामेंट में वो नेक्स्ट टूर्नामेंट में ना करे, ये आप अपने आप से वादा कीजिए एंड डेफिनेटली आई थिंक यू विल इम्प्रूव अ हल लॉट। ये मिस्टेक्स ही रहते हैं जो कि आपको भी सिखाते हैं, साथ ही साथ ये मिस्टेक्स ही रहते हैं जो कि आपको नीचे भी लेके आते हैं। बट यू डेफिनेटली वांट टू इंश्योर दैट आप वो मिस्टेक से सीखोगे एंड साथ ही साथ वो जो मिस्टेक से जो आप सीख रहे हो उसको आपके नेक्स्ट मैचेस के ऊपर इम्प्रोवाइज भी करोगे। ये मैचेस के ऊपर भी लागू होता है, साथ ही साथ अपने जीवन के ऊपर भी लागू होता है। बट फिलहाल के लिए टीम नंबर 12 टीम एक्सनॉर वो यहाँ पे गाड़ी लेके ढूंढ रहे हैं कि प्लेयर कहाँ पे है, जहां पे प्लेयर है वहां पे फाइट लेने का जो ट्राई वो जरूर कर सकते हैं। 4 फिनिश पॉइंट अभी के लिए उनके खाते में देखने को मिल जरूर जा रहा है। एंड एक्सनॉर अगर उनका एक चिकन डिनर आता है तो शायद से वो जो चांस है एक प्राइज पूल के ऊपर आने का, वो पॉसिबिलिटी वो देखने के लिए मिल जरूर जा सकता है। बट गाइज मैं एक बार आपको बता दूं कि जो ओवरऑल स्टैंडिंग है वो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर आता हुआ नजर आएगा, यूजी ई स्पोर्ट्स एज वेल एज कैरी ई स्पोर्ट्स का। तो मेक श्योर करिए कि आप फॉलो करके रखे हैं, क्योंकि वो जो ओवरऑल स्टैंडिंग्स है जी हाँ वो आज नहीं तो कल, मोस्ट प्रॉब्ली कल ही आएगा सुबह सुबह। तो जी हाँ, कल सुबह आपको देखने के लिए मिलेगा। तो डेफिनेटली आप इंश्योर कीजिए कि आप फॉलो करके रखें ताकि आप पहले वो रहो जो कि ओवरऑल स्टैंडिंग से अपने आप को वाकिफ कराएं। बट अभी के लिए गाइस जी हाँ देखेंगे कि क्या सिनारियोज रहते हैं। टीम जीवाईपी वो पूरी तरीके से अभी के लिए जो एक कंपाउंड का एरिया है, अपार्टमेंट का एरिया, वो उनके कंट्रोल में एंड कुछ करने के लिए खास है भी नहीं। बट कैकरॉड इस बीच उनका जो फाइट है वो आपको देखने को मिलेगा। ग्लोरी ऑफिशियल्स काका, ग्लोरी ऑफिशियल वो पूरी तरीके से भाई, वो पूरी तरीके से अगर आप देखें तो वो सर्कल से दूर है। वो अभी के लिए जस्ट अपना रोटेशन इनिशिएट किए हैं, इतने ज्यादा फाइट से वो पूरी तरीके से दूर। अभी के लिए जो है वो धीरे धीरे आपको सर्कल के अंदर बढ़ते हुए नजर आएंगे। एंड ग्लोरी ऑफिशियल आज एक ऐसी टीम है जो कि बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रही है अगर आप देखें मैचेस के ऊपर। एंड साथ ही साथ एनएसजी भी एक टीम है जो कि बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखाए हैं। तो ये दोनों टीमों के बीच में से ही मुझे लगता है कि कोई टीम तो एक सेकंड जो चैंपियन है वो बनते हुए नजर आएंगे। बट क्या मैंने किसी टीम को मिस कर दिया, ये देखना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि
टीम आरवीटी वो एक ऐसी टीम थी जो कि 2 मैचेस बहुत शानदार खेले थे, बट बाकी 3 मैचेस उनका भी थोड़ा शानदार वो जो है एक साधारण देखने को मिलता हो। बट चलिए इसी बीच मैंने नाम लिया और जो फाइट है वो शुरू भी हो चुका है। टीम एनएसजी अभी के लिए उनके ऊपर जो मुश्किलें बनते हुए नजर आ रही है, क्योंकि 2 ही प्लेयर अभी के लिए बचे रहेंगे। यशु, उनके ऊपर जो शॉट है वो लिया जाएगा, यशु को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। टीम एनएसजी वो भी पूरी तरीके से आपको बैक फुट के ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग फ्रॉम टीम एनएसजी, इट इज नन अदर देन प्रथम। एंड टीम एक्सनॉर वो मानो पूरी तरीके से अभी के लिए पागल से हो चुके हैं। उनको फिनिशेस चाहिए, उनको बस फिनिशेस से मतलब है। 6 फिनिश पॉइंट तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बाकी जो 2 फिनिश पॉइंट है आई बिलीव वो भी निकालने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। आई बिलीव एक ही फिनिश पॉइंट वो निकाल पाएंगे, क्योंकि लास्ट प्लेयर ही बचे हुए हैं। एंड इनके ऊपर शॉट जब वो भी दिया जा रहा है, शॉट दिया जाएगा एंड डेफिनेटली शॉट देने के साथ साथ जो प्लेयर नॉक थे उनको पूरी तरीके से फिनिश भी कर दिया जाएगा। वी आर हैविंग टॉप 6 टीम्स, क्योंकि प्रथम उनको भी हमें मैच से पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाएगा। जी हाँ, टीम एनएसजी का भी जो सफर है वो पूरी तरीके से इस मैच में फिनिश होता हुआ नजर आ रहा है। टीम 7 कहां है? वो यहीं पे है। अगर आप देखें वो फाइट से दूर है ही नहीं। वो 13 फिनिश पॉइंट इस मैच में निकाल चुके हैं। टीम अर्थक्वेक वो लास्ट मैच में जो है एक अर्थक्वेक लेके जरूर आ रहे हैं। अभी के लिए तो बात करें 13 फिनिश पॉइंट निकाल चुके हैं। 2 प्लेयर है, बट 2 प्लेयर होने के बावजूद भी पूरा पूरा एक अग्रेसिव गेम प्ले ये अभी तक दिखाते हुए नजर आ रहा है। देखेंगे गाइस क्या रहता है, क्या सिनारियोज रहता है। टीम नंबर 12 के जो प्लेयर रहेंगे उनको स्पॉट किया जाएगा। इलेक्ट्रो हिट फिलहाल के लिए वो प्रोन होके जो एक शॉट है वो देने का प्रयास करते हुए, बट साथ ही साथ अपना जो पोजीशन है वो भी रिवील करवा चुके हैं। चलिए वो जो पोजीशन है वो रिवील करवाने के बाद अभी के लिए अपने आप को थोड़े से सेफर एरियाज की तरफ लेके जाएंगे। एंड टीम एनएसजी उनका एलिमिनेशन हो चुका है, ये ध्यान पे रखें। एनएसजी का एलिमिनेशन हो चुका है, मतलब ये है कि टीम ग्लोरी उनके पास अभी के लिए मौका है, वो ऊपर आ सकते हैं। बट इस बीच टीम फैब के प्लेयर जी हाँ वो इकलौते प्लेयर ही बचे हुए रहेंगे। कैकरॉट पिछले मैच में उनके एक प्लेयर करण थे जो कि चिकन डिनर तक का जो सफर है वो तय किए थे। सोलो प्लेयर होने के बावजूद भी चिकन डिनर निकाले थे एंड दैट वाज समथिंग वेरी गुड परफॉर्मेंस। बट फिलहाल के लिए टीम नंबर जो हमारे 16 है दैट इज नन अदर देन टीम अलोन बॉयज, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। पीछे यहाँ पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। आई बिलीव ये ईरा को डिसएंगेज करने का प्रयास क्या कर रहे हैं? जी नहीं, वो भी फाइट के लिए जाएंगे। जी हाँ, लास्ट मैच है तो व्हाई नॉट टू गो फॉर फाइट। एवरीवन इज गोइंग फॉर द फाइट, एवरीवन वांट्स टू गेट द फिनिशेस। चलिए बेचारा ऑप्टिक वो आपको देखने को मिलेंगे एंड उनको अभी तक लग रहा है कि जो प्लेयर है वो इसी एरिया की तरफ कहीं ना कहीं छुप के बैठा हुआ है। मीनवाइल कैकरॉट वो पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। कैकरॉट ये मैच उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भरा एक मैच है। टीम एक्सनॉर के लिए भी ये मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भरा है। मिकी फिलहाल के लिए वो डाउन हो जाएंगे, ईस्ट उनको भी डाउन किया जाएगा। लास्ट प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे टीम एक्सनॉर की तरफ से दैट इज ब्लेड्स। फिलहाल के लिए सामने से जो प्लेयर है वो चार्जिंग करते हुए नजर आएंगे। शॉट यहां पे जरूर जरूर दिया जाएगा, बट क्या वो प्लेयर को टेक डाउन कर पाएंगे? वो एक प्लेयर को टेक डाउन करेंगे, दूसरे प्लेयर को भी टेक डाउन कर ही सकते थे, बट आहा ये होगा नहीं। जेवाईपी वो लास्ट मैच बहुत शानदार अभी के लिए जरूर खेल रहे हैं, बट लास्ट मैच शानदार खेल रहे हैं, बाकी 4 मैचेस उतना भी कुछ शानदार देखने को मिला नहीं है इनके तरफ से। जय श्री राम गाइस, जय श्री राम इन ओपी इन द चैट। बट फिलहाल के लिए गाइस अभी के लिए 5 ही टीम आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पे टीम ग्लोरी वो एक ग्लोरियस मैच, वो एक लास्ट मैच, वो एक लास्ट चिकन डिनर। टीम ग्लोरी क्या उनके पास जा सकता है? अभी भी वो 4 प्लेयर का जो एडवांटेज है वो टीम ग्लोरी के पास देखने को मिलता हुआ। अगर चिकन डिनर ये निकाल लेते तो हो सकता है दे हैव द प्रोबेबिलिटी, दे हैव द चांस, दे हैव द प्रोबेबिलिटी। बट कैकरॉट वो अभी के लिए देखने को मिल जरूर जाएंगे। एफपीपी के ऊपर अपने आप को जरूर लेके आ चुके हैं एंड साथ ही साथ ग्रोजा उनके पास प्रेजेंट था, बट सामने जब डीबीएस हो तो मुश्किल है। सामने से डीबीएस यहाँ पे चलाया जाएगा एंड साथ ही साथ उनको पूरी तरीके से फिनिश भी कर दिया जाएगा। इस बार टीम ग्लोरी वो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इतने फाइट से वो दूर थे, बट चलिए वो क्यों इतने फाइट से दूर रहे ये सोचते हुए वो भी आगे बढ़ेंगे। एंड टीम नंबर 16 इस बार उनके लिए मुश्किलें बना सकते हैं। लेट्स सी टीम नंबर 16 के जो प्लेयर रहेंगे उनको इजीली स्पॉट आउट किया गया है। डिवाइन वो अभी के लिए कहीं ना कहीं एक एंगल क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 ही प्लेयर बचे हुए हैं, 2 प्लेयर के ऊपर चार्ज इन भी करते हुए नजर आएंगे। डिवाइन वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एक प्लेयर को यहाँ पे डाउन किया गया है टीम ग्लोरी का, क्योंकि डीबीएस है तो ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। जहां तक अभी के लिए बात करना चाहे बेचारा ऑप्टिक विद डीबीएस राइट नाउ इन हिज हैंड, एक ग्रेनेड करने का प्रयास जरूर कर सकते हैं, नीचे जाने का प्रयास जरूर करेंगे। बल एक प्लेयर नीचे जाएंगे, दूसरे प्लेयर को भी अब टेक डाउन कर सकते हैं, बट क्या किसका ये ग्रेनेड था? क्या एक ग्रेनेड ग्लोरी के प्लेयर का था? जी हां, ग्लोरी के प्लेयर का ही था। बट इसी के साथ साथ टीम नंबर 16 वो पूरी तरीके से इस मैच में मुश्किलों में आपको देखने को मिलते हुए। किलर गॉड इज द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, बट बच पाना तो मुश्किल भरा है।
अपने प्लेयर को रिवाइवल देने का जो प्रयास है वो जरूर किया जा रहा है, बट ग्लोरी की अगर टीम को आप देखें तो ग्लोरी के भी आपको 2 प्लेयर देखने को मिल जरूर जा रहा है। डिवाइन उनके पास मौका है, वो आगे बढ़ सकते हैं, वो जो सामने प्लेयर है उनको फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सुनहरा मौका है। वो जो लास्ट प्लेयर प्रेजेंट है उनको अगर फिनिश कर देते हैं तो वो फिनिश पॉइंट उनके पास जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बीच ऑप्टेक उनको रिवाइवल मिल चुका है। ऑप्टेक वो जो आज जो डीवीएस का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या एक 1v3 टीम ग्लोरी के अगेंस्ट देखने को मिलेगा। लास्ट ये मैच है, लास्ट मैच में पूरी तरीके से जो लॉबी है वो आग बबूला जरूर हो चुका है। बेचारा ऑप्टेक इज द लास्ट, ही इज द टू प्लेयर, ही इज अमंग द टू प्लेयर फ्रॉम टीम नंबर 16। एक बार फिर से, जी हां गाइस, एक बार फिर से वो जो डीबीएस है वो रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। रेज इस बार उनको डाउन किया जाएगा। ग्लोरी के लिए भी थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस में बाधा है वो देखने को मिलता हुआ। ऑप्टेक इस बार वो जो है ग्रेनेड के ऊपर अपने आप को जरूर लेके जाएंगे। टिनेटो वो बहुत ज्यादा क्लोज देखने को मिल जरूर जा रहा है। ग्रेनेड अगर सही एरिया पे जाते तो कहीं ना कहीं प्लेयर को डाउन करेगा। जी हां, प्लेयर को डाउन करेंगे। ऑप्टेक क्या ही खेल रहे हैं अभी के लिए, वो इकलौते जो अपने टीम से एक 1v, जो मैं मानता हूं कि वो जो एक 1 मैन आर्मी है वो तो बनते हुए नजर आ रहा है, लेकिन डिवाइन वो लास्ट प्लेयर प्रेजेंट है, वो इस फाइट को पूरी तरीके से डिसएंगेज करने का जो ट्राई है वो जरूर कर रहे हैं। डिसएंगेज करना एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि आप इतने ऊपर जो है वो ओवरऑल स्टैंडिंग पे हो, तो अगर आप डिसएंगेज कर दे तो ये फाइट को सक्सेसफुली, तो हो सकता है कि आपके पास वो जो टोटल स्टैंडिंग में है एक बढ़िया इजाफा देखने को मिल जाए। क्योंकि अभी के लिए प्लेयर जो वो फाइट ही लेंगे, फाइट ले लेंगे। एक्सनॉर प्लेड वेल ब्रो, यस एक्सनॉर प्लेड वेल, बट डेफिनेटली वो अभी के लिए एलिमिनेट आउट हो चुके हैं। टीम जीवाईपी उनका भी आगमन होता हुआ नजर आ रहा है इस एरिया की तरफ। 4 ही टीमें हैं, 4 टीमों में अभी भी टीम अर्थक्वेक वो भी देखने को मिलते हुए। 13 फिनिश पॉइंट उनके भी पास है, तो कौन चिकन डिनर ले रहा है, एंड मैं मानूं तो यहाँ पे कौन फर्स्ट हो रहा है, ये तो भाई मुझे भी यहाँ पे कुछ भी अंदाजा नहीं लग रहा है। मैनेजमेंट से अगर कोई है गाइस जिनके पास थोड़ा सा भी इंसाइट है कि this team is actually heading towards that position, तो do let me know। प्राइवेट डीएम कर दो, और चैट पे नहीं बोलना रहेगा तो मुझे डीएम ही कर दो, क्योंकि मुझे भी जानना है कि अभी के लिए वो कौन से टीम है जिनका अभी के लिए जो टॉप का एक पोजीशन है वो चल रहा है। बट चलिए, टीम अर्थक्वेक वो भी आ चुके हैं भाई, ये भी आ चुके हैं। सभी टीमों को फाइट लेना है, चारों के चारों टीम फिलहाल के लिए स्टेज 4 के सर्कल में ही आपको फाइट लेते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, स्टेज 5 का सर्कल आ चुका है, बट लेट्स सी अभी भी डिवाइन वो अपने टीम से अपने जो टीम का सर्वाइवल है वो कंटिन्यू करेंगे। एंड कंटिन्यू करने के साथ साथ फिलहाल के लिए अपने टीम को शायद से वो कुछ और जो पोजीशन पॉइंट है वो दिला सकते हैं, क्योंकि डिवाइन आई बिलीव वो एक शानदार निर्णय उनके तरफ से लिया गया। उनको इतना अंदाजा था कि अगर फाइट के ऊपर वो फेल कर जाते हैं तो वो अगर फॉल बैक भी कर ले, इतने ज्यादा फाइट्स हो रहे हैं, वो अपने आप ही ऊपर स्टैंडिंग पे आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल हो सकता है। अगर ये 3 टीम हमने एक दूसरे के साथ फाइट ले लिया तो शायद से आपको पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकता है। एंडलेस पॉसिबिलिटीज आर देयर, एंड डेफिनेटली एंडलेस पॉसिबिलिटी के साथ साथ वो जो टीम नंबर 4 है वो अभी के लिए ट्राई कर रहे हैं कि टीम नंबर 16 उनके ऊपर जो कुछ नॉक्स है वो निकाले जाए, बट अभी भी कोई भी टीम किसी भी टीम के ऊपर सफल नहीं हुए। चलिए गाइस, वी आर हैविंग ओनली 4 टीम्स। रोजॉ के एरियाज की तरफ सारे के सारे जो टीम्स हैं वो देखने के लिए मिल जरूर से जरूर जा रहे हैं। एंड पर्टिकुलरली बात करें तो अभी के लिए शायद से मुझे नहीं लगता फाइट होने वाला है। जी हाँ, जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था कि शायद से जो फाइट है वो ना होते हुए नजर आए, क्योंकि तीनों टीमों के बीच में फिलहाल के लिए डिस्टेंस है। एंड अभी के लिए मुझे लगता है कि कोई भी टीम किसी के ऊपर चार्ज इन करने का जो प्रयास है वो इस बार नहीं कर रहे हैं। इतने देर तक तो बहुत फाइट ले रहे थे, लेकिन अभी के लिए अगर आप देखें तो वो एक नॉक नॉक का जो गेम है वो खेलते हुए नजर आ रहा है कि मैं पहले नॉक करूंगा, तो वो सोच रहे हैं मैं पहले नॉक करूंगा, जो पहले नॉक करेगा वो पहले चार्ज इन करेगा। चलिए, जीवाईपी के ऊपर वो जो नॉक है वो देखने को मिलता हुआ। टीम नंबर 16 क्या इस बार वो चार्ज इन करने का प्रयास वो कर सकता है? जी नहीं, अभी भी वो नहीं कर रहे हैं। क्या हो गया टीम नंबर 16 आपको? आप तो अभी के अभी चार्ज इन कर रहे थे, अभी अभी के अभी फाइट ले रहे थे, लेकिन अभी के लिए शायद से वो थोड़े से होल्ड करते हुए, क्योंकि चिकन डिनर अगर वो उनके पास जाता है तो शायद से उनके पास भी वो प्राइस पूल लेने का जो चांस है वो बढ़ जरूर सकता है। बट विल हैव टू वेट, विल हैव टू सी कि क्या हो पाता है क्या नहीं। मीनवाइल जो प्लेयर है वो अपने प्लेयर को रिवाइवल देंगे। टीम जीवाईपी वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या ये प्लेयर्स फाइट नहीं लेंगे अभी के लिए? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये फाइट लेने वाले हैं, क्योंकि इतने जो टीम्स हैं काफी देर तक फाइट लिए बट अभी के लिए शांत हो गए हैं। टीम ई क्यू के अर्थक्वेक वो तो ट्राई कर रहे हैं कि बस
सामने वाली जो टीम है वो फाइट ले ले, हम जाके थर्ड पार्टी कर दे। थर्ड पार्टी करने में टीम को एक माहिर है, फिलहाल के लिए वो थर्ड पार्टी करने का जो एक समय है, एक उपयुक्त जो समय है उसका यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। पॉइंट्स टेबल कब तक आएगा करण भाई? पॉइंट्स टेबल हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको बोलूंगा कल सुबह तक तो आ ही जाएगा, जितना मुझे लगता है। आज रात में आ पाना इट्स अ बिट लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत सारे चेक्स हैं वो भी करना पड़ेगा, यू नो दैट। तो कल सुबह तक तो आ ही जाएगा। यू विल बी गेटिंग द पॉइंट्स टेबल टुमारो मॉर्निंग मोस्ट प्रॉब्ली, एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो भी हो जाएगा। उतना तो आप मैनेजमेंट से पूछ भी सकते हैं कि पॉइंट टेबल कब तक आएगा। मुझे जितना लगता है कल तक आएगा। M4 के स्प्रेज प्रैक्टिस हो रहे हैं गाइस, अगर आप अभी के लिए देखें तो दोनों टीम वो लग रहा है कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड में है, कुछ इस तरीके से M4 की स्प्रेज प्रैक्टिस कर रहे हैं दोनों के दोनों टीम। दोनों के टीम ही एक दूसरे के ऊपर जो शॉट्स है वो ले रहे हैं। एंड चलिए एक बार फिर से वो सर्कल का जो शिफ्ट है वो आ चुका है। इस बार वो देखिए मैनेजमेंट के जो टीम है वो आ चुके हैं। मैनेजमेंट के एडमिन आपको देखने के लिए मिलते हुए। पॉइंट टेबल विल बी अपडेटेड एट टुमारो। पॉइंट टेबल विल बी अपडेटेड, will be revealed tomorrow at afternoon. Okay, tomorrow at afternoon, कल आफ्टरनून में देखने को मिल जाएगा गाइस। तो चिल करिए, अभी के लिए थोड़ा रिलैक्स रहिए। 5 मैचेस हो गए, इतना आपने ग्रैंड फाइनल में मैचेस खेल लिए, तो आप थोड़ा चिल करके रहिए। बट टीम ग्लोरी के डिवाइन जी हाँ वो निकल जाएंगे, ये उनको फाइट से मतलब ही नहीं है। उनको तो अभी के लिए पोजीशन पॉइंट्स चाहिए, बट पोजीशन पॉइंट्स चाहने के लिए भी थोड़ा सा तो स्ट्रगल इनके लिए भी करना पड़ेगा। पर 3 टीमें जो देखने के लिए मिल जा रहे हैं वो 3 टीमें एक दूसरे के फाइट्स ले ले, तो टीम ग्लोरी वो आपको दूसरे पायदान तक भी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। बट क्या वो पॉसिबिलिटीज होगा, क्योंकि अभी भी वो जो है होल्ड ही कर रहे हैं। तीनों टीमों के पास सर्कल का एरिया है। भाई साहब क्या बोलूं मैं, इतने देर तक तो फाइट हो रहा था, लेकिन अभी के लिए फाइट ही नहीं हो रहा है। स्लॉट जोन देखने को मिलता हुआ, वो भी ऐसे समय पे। यूजुअली हम स्लॉट जोन देखते हैं थर्ड या फिर फोर्थ फेज ऑफ सर्कल में, जहां पे टीम्स फाइट लेना प्रेफर नहीं करती है, लेकिन एस यहाँ पे उल्टा हो गया है। यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ फेज में हम लोगों को बहुत ज्यादा फाइट देखने को मिले। एंड फिफ्थ स्टेज में बात कर ली जाए तो अभी के लिए कोई भी फाइट नहीं ले रहा है। महज कुछ ही टीमें बची हैं, जिसके चलते फाइट जो है वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है। स्लॉट जोन अभी आ चुका है, लीजिए स्लॉट जोन आ चुका है। टीम नंबर 4 के प्लेयर टीम जीवाईपी वो भी अभी के लिए होल्ड आपको करते हुए नजर आएंगे। सामने जो टीम प्रेजेंट है वो भी होल्ड कर रहे हैं। होल्ड के ऊपर होल्ड गेम प्ले चलता हुआ हम लोग को नजर आ रहा है गाइस। एंड मेक श्योर गाइस यहाँ पे जो भी व्यूअर्स अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किए, लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। क्या हम लोग आज 50 लाइक तक हिट कर पाएंगे, क्योंकि 40 लाइक्स वो ऑलरेडी क्रॉस हो गए थे जब मैंने देखा था। तो अगर आपने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर से जरूर वो भी आप कर ही दीजिए अपने दोस्तों अपने यारों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। बट देखना ये है कि अभी के लिए ये जो नेक्स्ट सर्कल है शायद से उसमें आपको फाइट देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि वो जो टीम्स हैं वो एक बार फिर से आपको रोटेट करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, इस बार सर्कल का जो शिफ्ट है वो आपको आता हुआ नजर आएगा। पूरी तरीके से प्रेफरेंस देता हुआ टीम नंबर 4 की टीम को टीम से वाईपी। क्या इस कंटेनर उनका हो सकता है? जहां तक बात करें इलेक्ट्रोहेड, वो धीरे धीरे क्रॉल करके अपने आप को सर्कल के ऊपर ऑलरेडी लेके आने का जो प्रयास है वो जरूर कर चुके हैं। चलिए वो सर्कल के ऊपर पहुंच भी जाएंगे, जी हाँ वो पहुंच जाएंगे। एंड दैट डज मीन कि टीम जीवाईपी उनके लिए ये जो एक फाइट है वो थोड़ा सा खिंचता हुआ नजर आएगा, क्योंकि टीम जीवाईपी के एक प्लेयर क्या उस एरिया का तरफ प्रेजेंट है? जी हाँ वो है जरूर। तो चलिए वो स्पॉट करने का प्रयास कर जरूर सकते हैं। वो अभी के लिए कोई भी फुटस्टेप्स देते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि प्लेयर तो नहीं आने वाले हैं। एंड जी हाँ वो प्लेयर का जो फुट है वो आ जरूर चुका है। एक प्लेयर एंट्री अभी के लिए लेने वाले, बट लेट्स सी रेक्स क्या उनको डाउन कर पाएंगे। जी हाँ एक प्लेयर आएंगे, लेकिन रेक्स उनको डाउन नहीं कर पाएंगे। रेक्स को डाउन कर दिया जाएगा, उनको फिनिश कर दिया जाएगा। बहुत देर बाद फाइट हुआ है, बहुत देर बाद यहाँ पे एक इनिशिएशन लिया गया है। बट अभी के लिए बात करना चाहे तो आपको इस मौके पे टीम नंबर 16 उनको भी निकलना पड़ेगा। टीम अलोन बॉयज, यहाँ वो 2 ही प्लेयर मौजूद है जिनको निकलना पड़ेगा। बट पॉसिबिलिटीज है ये 2 प्लेयर किस तरीके से सर्कल के ऊपर आते हैं, विल हैव टू सी। बट टीम ग्लोरी, जी हाँ डिवाइन वो लास्ट प्लेयर देखने के लिए जरूर जा रहे थे। उनके जो कार है, जी हाँ कार के ऊपर बहुत शानदार जो स्प्रेज है वो देखने के लिए मिल जरूर जा रहा है। एंड वो अपना कार को लेके आएंगे डायरेक्ट यहाँ पे पानी के अंदर घुसा देंगे। ये एक बेहतर अप्रोच है, वो बचे रह सकते हैं। वो काफी देर तक इनफैक्ट एरिया का तरफ सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी टीमों को जो फाइट है वो लेने दे सकते हैं इजीली। वो अपने आप को टॉप 2 में मुझे लगता है लेके आ जाएंगे। बट टीम नंबर 16 इसी के साथ उनका भी एंट्री होता हुआ नजर आ रहा है। बेचारा ऑप्टेक, वी आर विटनेसिंग हिम फिलहाल के लिए। तो यहाँ ऑप्टेक जो है वो शानदार आज के दिन पे जो एक डीवीएस एक्शन है लास्ट मैच में पर्टिकुलरली बात करें वो दिखाते हुए नजर आ रहा है। बट क्या
इस बार वो जो डीबीएस एक्शन है वो एक बार फिर से देखने को मिलेगा। मीनवाइल आई बिलीव दे आर ट्राइंग टू डू द ग्रेनेड, बट जीवाईपी के प्लेयर का ग्रेनेड आएगा, एक प्लेयर को डाउन करेगा ऑप्टेक। ही इज द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, ही इज द लोन प्लेयर राइट नाउ। बट सर्कल, जी हां सर्कल अगर आप देखें तो सर्कल पानी के ऊपर जा चुका है। ओ माय गुडनेस, डिवाइन वो भी के लिए पानी के ऊपर सुरक्षित रहेंगे, बट एक लौते प्लेयर दैट इज ऑप्टेक वो बचे हुए रहेंगे। एक 1v1 का बैटल स्पेशली इस टाइम पे आपको देखने को मिल जरूर जाएगा, जहां पे जीवाईपी वो भी आपको इकलौते प्लेयर के साथ देखने को मिलते हुए, एंड टीम नंबर 16 वो भी इकलौते प्लेयर के साथ देखने को मिलते हुए। बट इस बीच टीम 7 उनका आगमन होता हुआ हम लोग को नजर आ रहा है। चलिए वो भी यहाँ पे पानी के अंदर आने का जो प्रयास है वो जरूर करते हुए नजर आएंगे। डिवाइन, जी हाँ वो पानी के ऊपर से, पानी के अंदर से पानी के बाहर आ चुके हैं। मुश्किल यहाँ पे जरूर होगा डिवाइन के लिए सरवाइव कर पाना, एंड चौथे पे ही शायद से वो फिनिश होते हुए नजर आ जाए। चलिए उनके ऊपर जो शॉट्स है वो दिया जाएगा, एंड डेफिनेटली इतने देर तक उन्होंने सरवाइव किया, बट चौथे पायदान तक ही वो सीमित आपको होते हुए नजर आएंगे। टोटल में गाइस बात कर ली जाए तो 3 टीमें जीवित है। टीम जीवाईपी उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है, 2 टीमें आपको देखने को मिल जाएंगे। बेचारा ऑप्टेक आज तो भाई ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये आज पूरी तरीके से वो जो डीबीएस एक्शन है वो प्रहार पे प्रहार किए जा रहे हैं, एक एक करके प्लेयर को डाउन कर रहे हैं। बट सर्कल, जी हाँ वो इस बार इनसे थोड़ा सा दूर जा चुका है, 22 सेकंड है, जिसके बाद इनको भी सर्कल के ऊपर जाना पड़ेगा। एंड मुझे लगता है कि इस बार जो चिकन डिनर है वो शायद से टीम अर्थक्वेक के पास, शायद से जो ग्रेनेड है वो उठाने का प्रयास किया जा रहा है। 6 ग्रेनेड इनके पास देखने को मिलते हुए, 6 ग्रेनेड का जो स्पैमिंग है वो किया जाएगा। एक ना एक ग्रेनेड का अगर कनेक्शन देखने को मिल जाता है तो बढ़िया कुछ यहाँ पे कहीं ना कहीं पुशन देखने को मिल सकता है हमारे टीम नंबर 16 के प्लेयर के द्वारा, टीम लोन बॉयज के प्लेयर के द्वारा। लेट्स सी कौन सी टीम का चिकन डिनर होता है गाइस, क्या टीम लोन बॉयज वो रहेंगे या फिर टीम अर्थक्वेक रहेंगे। वो दोनों टीमों के पास ये भी के चांस है, बट जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चांस है वो तो टीम नंबर 7 के पास, क्योंकि सर्कल के ऊपर वो पहले ही पहुंच चुके हैं। एक प्लेयर आएंगे, गाड़ी को यहाँ पे डायरेक्टली पानी के अंदर कुदा देंगे। चलिए वो पानी के अंदर आ चुके हैं। बेहतर स्ट्रेटजीज, जी हाँ बेहतर स्ट्रेटजीज का प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्टेक फिलहाल के लिए वो भी धीरे धीरे आपको सर्कल के अंदर जो है वो आते हुए नजर आएंगे। इस बार सामने ही 2 प्लेयर देखने को मिल जरूर जा रहे हैं, अगर एक प्लेयर को भी डाउन कर देते हैं तो दूसरे प्लेयर के लिए मुश्किल जरूर रहेगा। चलिए वो एक प्लेयर को डाउन करेंगे, दूसरे प्लेयर आपको देखने को मिलते हुए ऑप्टेक। लेट्स सी क्या वो इस बार ये फाइट को भी तब्दील कर सकते हैं। वेल टीम इक्वेंट से बात किया जाए तो इलेक्ट्रो हेड ही इज द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग। रिवाइवल देने का अगर चांस वो लेते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किल है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकता है। टीम नंबर 18 के प्लेयर्स के ऊपर एक ग्रेनेड करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। लेट्स सी क्या ग्रेनेड वो कनेक्शन देखने को मिलेगा, ग्रेनेड का कनेक्शन देखने को मिलेगा नहीं, एंड टीम नंबर 16 उनके पास जाएगा इस मैच का एक विनर चिकन डिनर। तो गाइस इसी के साथ आज के दिन का जो पांचों के पांचों मैचेस है गाइस, जी हाँ वो फिनिश होते हुए नजर आ जाएंगे। टीम है लोन बॉयज वो लास्ट पे एक चिकन डिनर उनके पास आता हुआ नजर आएगा। वो फिनिशेस की बात कर ली जाए गाइस तो डेफिनेटली दे आर हैविंग सम गुड अमाउंट ऑफ फिनिशेस। टोटल में 12 फिनिश पॉइंट उनके पास देखने को मिल जरूर जा रहा है, एंड एक शानदार जो एंडिंग है, एक परफेक्ट एंडिंग उनके लिए मिलते हुए। बट इसी के साथ दूसरे पायदान में टीम अर्थक्वेक वो देखने को मिल जाएंगे विद ऑल्सो सम गुड अमाउंट ऑफ फिनिशेस, जहां पे उनके पास कितने फिनिशेस है, 15 फिनिश पॉइंट एक दूसरा पायदान। ओ माय गॉड, इनके पास टोटल में मतलब 27 पॉइंट जाते हुए नजर आएंगे। वहीं पे तीसरे पायदान पर टीम जीवाईपी आपको देखने को मिल जाएंगे विद 6 फिनिशेस। चौथे पायदान पे हम लोगों को देखने को मिला टीम ग्लोरी विद 0 फिनिशेस। पांचवे पे टीम फैब, जी हाँ उनके पास अभी के लिए देखने को मिलेंगे 5 फिनिशेस। तो इसी के साथ गाइस अभी के लिए हमारा जो पांचों का पांचों मैच है वो खत्म हो चुका है। स्टार ऑफ द मैच की बात कर ली जाए तो यहाँ ऑप्टेक रहेंगे जो कि सबसे ज्यादा फिनिशेस मैच से निकाल चुके हैं, 7 फिनिशेस। फेट रहेंगे वो प्लेयर जो कि सबसे ज्यादा रेस्क्यू प्रोवाइड करेंगे, एंड किलर गॉड रहेंगे वो प्लेयर जो कि लास्ट प्लेयर को डाउन करेंगे, साथ ही साथ चिकन डिनर अपने नाम करेंगे। इसी के साथ अभी के लिए हमारे आज के दिन के एंड स्पेशली बात करें यूडीजी स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स बैटलमेनिया सीजन 1 पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है वो फिनिश होता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी मैचेस थे वो फिनिश हो चुके हैं, जितने भी टीम्स थे उनका गेम पे कंप्लीट हो चुका है। बस इंतजार है तो है बस वो ओवरऑल पॉइंट स्टैंडिंग का, जो कि जैसे आपको बताया गया है पे चैट पे वो कल आफ्टरनून तक देखने को मिल जाएगा। तो डू मेक श्योर कि आप इंस्टाग्राम में जुड़े हुए जरा यूडीजी एज वेल एज हमारे कैरी ई स्पोर्ट्स के साथ, ताकि आप जो मिस आउट ना करें कोई भी अपडेट। बट फिलहाल के लिए गाइस इसी के साथ हमारे आज के दिन के जो सब मैचेस वो फिनिश हो चुके हैं, एंड दिस इज द टाइम कि हम जो है आप सभी लोगों से अलविदा लेंगे। मजा बहुत ज्यादा आया, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इंटेंस मैचेस देखने को मिले, एंड थैंक यू टू यूडीजी ई स्पोर्ट्स क्योंकि मुझे एक मौका फिर से दिया गया यहाँ पे कास्टिंग करने के लिए। एंड थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु ट्यून इनटू द स्ट्रीम, जो कि स्ट्रीम को आज इतना बेहतर बनाए, अपने फेवरेट टीमों को सपोर्ट किया, अपने फेवरेट टीमों के लिए वो चीयर अप आप करते हुए नजर आए। दैट इज वेरी गुड, प्योर सपोर्टिव पॉजिटिव एनवायरनमेंट दैट वाज मेड टुडे। बट फिलहाल के लिए गाइस इसी के साथ हमारे आज के दिन के सारे मैचेस होते खत्म, टूर्नामेंट होता हुआ खत्म। बस इंतजार है वो ओवरऑल स्टैंडिंग का, जो कि आपको कल के दिन के ऊपर मिल जरूर जाएगा। बट अभी के लिए गाइस हम लेंगे आप सभी लोगों से अलविदा, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें,
मिलेंगे एक बार फिर से कुछ ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग यूडीजी और बाकी सारे ई स्पोर्ट्स जो भी नेटवर्क्स हैं उनके टूर्नामेंट्स के साथ साथ। बट जुड़े रहिए एंड अगर आपको कास्टिंग अच्छा लगेगा तो मेक श्योर कि आप मुझे भी इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं @IMDESTX इज माई वाज व्हाट माई इंस्टाग्राम आईडी इज। तो डेफिनेटली अगर चाहे तो फॉलो जरूर कर सकते हैं अपने भाई को। बट इसी के साथ गाइज लेते हैं अलविदा आप सभी लोगों से, मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ज्यादा जल्दी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। दिस इज योर कास्टर DustDX राइट नाउ साइनिंग आउट। Peace out from UDG Esports. Bye bye. Take care and good night. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.